In the meantime, for more people to join, if you can take a screenshot and retweet it so that I get more visibility, more people join. Okay. Questions I'll be taking today will be on personal finance, especially on term insurance, life insurance, medical insurance, and beyond that, we can also talk about asset allocation, various kinds of assets, appropriate, which kind of asset is appropriate at what age, and so on. Of late, you might have seen I have reduced my number of spaces again because I don't get what I seek from you guys. It cannot be one-way traffic, right? So please spread the word. Let more people join so that I am also motivated enough to answer all your questions till I'm really tired. Okay, you can send your speaker request and don't share any information which you cannot share publicly. This is being recorded. And as and when we generally questions are pretty common in personal finance space. Seemingly, it is not rocket science. Why I started taking what prompted me to do spaces today was that my brother-in-law was taking term insurance and he did not have any idea about till what age you should take term insurance or what kind of policy you should take, and premium was coming out to be 5 times more expensive than what we initially imagined. So I went through the various parameters and I realized that a lot of people might not be knowing, why to take it, how much to take it, when to take it, and so on. So yeah, Shubham, go ahead. You, I don't see any speaker request. Uh, Send your speaker request, guys, and we can talk. You can start speaking. Don't wait. Am I audible, guys? Make an emoji, any emoji if I'm audible. Hello? Hello? Seems I'm not audible, right? Hello? Yes, Yeah, you are go ahead, audible, yeah. brother. Hello? Go ahead. Yeah. Two people have taken speaker request. Come on, guys. If you need to speak, that's the purpose of taking the mic. Otherwise, there is no point sending a speaker request, right? Krish and Shubham. Anybody else? Nobody in the audience has any question on personal finance, right? Yeah, go ahead. Ask your question. Hi, I'm Anupam this side. I wanted to know. Yeah, I was Anupam. planning How to. are you? I'm 40. I'm 40. I'm very well. Thank you so much. How are you doing? I'm I'm okay. I'm not very well. I'll not lie to you, but yeah, I'm okay. I am 40 years old. I'm planning to take a ULIP plan with a monthly payout of 10,000 rupees for 7 years and hold it for another 10 or 15 years. You think that is a good investment plan? I mean, my idea is not to do cover insurance. It's basically for investment return. Okay, Anupam. Whatever I'll tell Anupam, it is not only for Anupam. Okay. Uh, Anupam, apart from being 40-year old, like, uh, tell me more about your achievements. So basically, I am in my family business and I have a few startups that I'm working on. And this is something that I want to save up for my son. Basically,
create a corpus separately. So I do SIPs regularly, but the problem with SIPs is that because they are liquid, at some point in time when I need finances, I will, get tempted to redeem them. So if I take a ULIP or something, that will basically lock the fund in. That was the idea. But do you think it will give a return which will be okay? And how did you come to know about this ULIP? I have taken ULIPs before, like 10, 12 years before, and they have done decently well. But they have the SIP returns have beaten the ULIP returns. So I am confused. The only Your good part voice is about ULIP is that cracking. the Hello. corpus. Yeah. Your voice is Yeah. cracking. SIP return? SA. Uh, I have done SIP. The return Hello. of SIP has been better than ULIP, but the Hmm. thing is that money, the ULIP is basically locks in the money. So you tend to hold it for longer periods. Okay. Okay. Whereas you pay a decent amount of charge on the ULIP, whereas on SIP you're hardly paying 1% to 2% AMC charges. Hmm. So what is your take on this part? Yeah, I'm coming to that. I was just making my coffee. So yeah, see, Anupam, what is your business? Core business? We are into textile imports. Okay. And when did you take this ULIP, the last one, which has I given took you this decent with return? that was 14 years back when I was 26. I'm paying about 3,000 rupees a month for that, and there I'm what I've paid till now is about. I'm not exact about the numbers right now, but I think I've paid about 5.5, 6 lakhs. It is about 9 lakhs right now, and it is again a long term one, so I'm still holding it. It's for 20, 25 years So payment term. 14 years, 5 lakh becomes 9 lakhs, Not right? 5.9. I'm not. I don't have the numbers, but it is approximately 10%. It is giving me return. I don't have the exact numbers No, right no, now. no. Anupam, I'm really sorry. I'm really sorry, Anupam. As I always say, guys, this is for everybody. It's not only for Anupam. Where Anupam is standing right now, probably 15 years back, I was standing there. Personal finance cannot be your hobby. Okay. You have to plan it the way your life depends on it. Okay. If you're doing a business of textile, okay, whatever the variables are, cotton ka bhav, your textile ka end product ka bhav, which are the customers, even if I wake you up at 3 o'clock in the morning, you will know the details if you are successful in that business. Why don't we take our personal finance like that? Yeah, here now अभी सुनो अभी ये प्रवचन का time हो गया. And it is not personal against you, Anupam. Okay. See, we have to be expert on personal finance. There is no other choice. Whether you are a professor or a doctor or a businessman, whether you multiply your money in 3 years, 5 years, or 10 years, 14 years, it does matter to your family. It does matter to you. It does matter a lot in your life. You have only single life, single shot at this. We have to enjoy, we have to save, we have to do everything. And personal finance or understanding the finance, basics of finance is a vehicle to that. How many of you are going to be very surprised if I tell you that your fixed deposit at 7% will double in 8 years? Probably it will become 4 times in 16 years, right? So anything which doubles in 7 years, 8 years is a terrible return. Whether it is 10% or 8%, it's immaterial. It's terrible return because when you're comparing it with risk free, which is like fixed deposit, almost risk free, you have to have some more return if you're talking about investment. Okay, so my first advice to everyone here, not only to you Anupam personally, is we have to be on top of the numbers. You have to manage your personal finance in such a way that you are on top of your numbers. It's not very difficult. You can put your numbers in Excel. If you don't know, there are plenty of videos. Okay, how to calculate XIRR. If you have made, let's say, 10 investments in 2009, then 11, then 13, and of various different amounts. Okay, what will be the rate? And now the value of the investment is, let's say, some you are invested 100 rupees each 5 times, and now the investment value is 1700 rupees. What is the percentage return you got in so many years? That should be on the tip of your hand. That's my
Feedback number one. Feedback number two. I don't know. People spend so much of time on Twitter. Twitter is littered. The way you go to Mount Everest or you go to any religious place in India, the place is littered with plastic, right? Similarly, Twitter is littered with this fact that ULIP is a toxic product. Okay, you are not supposed to buy ULIP. So many well-meaning people have written long threads longer than light years, that ULIP is a bad product. It's a pretty bad product. Your money is stolen from you. Your hard-earned money is stolen. It's not about small amount, 5 lakhs, 2 lakhs, 3 lakhs, or somebody trying to advocate or somebody trying to leverage the relationship. ULIP is a toxic product. Why it is a toxic product? I'll try to cover it in this places. It's not very complicated either. But this feedback number two is it's a toxic product. Feedback number three is term insurance has to be seen as a different kind of investment on your life, betting on your life. It's very simple. I mean, I can cover it in one space is what you're supposed to do, but most of you will not do it because it requires repeatedly hitting on your brain. You know what is the correct thing to do. The correct thing to do is you have to buy an insurance where if you die you get money, if you don't die you don't get. Simple. Okay. If someone is offering you money while you don't die, that is not a term insurance. That is some kind of ULIP or some other structured product. That's a terrible product, because insurance as an investment vehicle is a bad choice financially. We'll come to behavioral part, Anupam, but insurance very simple. Even if anybody who doesn't understand any of the finance, you have to understand: you die, you get money. You don't die, you don't get money. Okay. Why it is very important? See, IRDA is evolving just like SEBI is evolving a lot, and it's very easy for us normal people who have not encountered any law or any lawyer or any courts. It's very easy for us also to establish that the person is dead. कल तक सांस चल रही थी, छोले भटूरे खा रहे थे, आज सांस नहीं चल रही है, डॉक्टर ने भी डेथ सर्टिफिकेट दे दिया, मर गए, मेरा पैसा दे दो. In any other products, it's far more complicated, and the chances of your claim being rejected is very high. And it's not any contract is not a fair contract when the two parties are not equally informed, they are not equally strong. So in insurance, what happens? The insurance company is a very strong party, and once you are dead, and once any person, let's say I am dead, and my family is struggling down there, and I'm looking from above, I can't help them. It has to be a very very easy contract for them to go through. हाँ, ये मरा था तो मिलना था, ऐसा लिखा है कॉन्ट्रैक्ट में, तो मेरे को दे दो पैसा. That's why it's very important. The contract has to be very simple, because the person who is buying the term insurance, unfortunately, will not be there to run around or to defend his contract. Smoker था, नहीं था, दारू पीता था, नहीं पीता था, अय्याश था, लड़कीबाज था, क्या था, doesn't matter. मर गया है, पैसा दो. That kind of contract. A lot of companies exclude suicide for 1 year or 2 years. I think LIC excludes suicide also for 1 year. HDFC Life and all for 2 years, which is a fair exclusion. Apart from that, there should not be any exclusion. क्योंकि ये it's a very very rare contract. मरा तो पैसे दो, नहीं मरा तो नहीं दो. That's why it's a very cheap contract. Okay. Now, if you are taking a 20-year term insurance, probably from a private, सबका आसपास ही भाव रहता है, तो साल का, महीने का नहीं बोल रहा हूँ, साल का 10,000 रुपए पड़ता है to secure a family by 1 crore. अगर मैं यही 10,000 देके एक यूलिप लूंगा, तो मुझे लाइफ कवर कि मैं नहीं रहा तो कितना पैसा मिलेगा, लाइफ कवर शायद मुझे 5 लाख का भी ना मिले. तो सी द डिफरेंस. एक तरफ आपके जब नहीं रहते हो, जब मैं नहीं रहूंगा तो मेरी फैमिली को 5 लाख मिलेगा, दूसरी तरफ मेरी फैमिली को 1 करोड़ मिल रहा है. सो आई वांट कि व्हेन आई एम नॉट देयर, a big corpus for them to rebuild their life. Right. That is the idea of term insurance. यूलिप में क्या होता है कि इट्स एन ओपेक प्रोडक्ट. इसमें आपको यूनिट होती है, बोनस होती है, वो सब कुछ भी. हमको तो शेयर मार्केट समझने में इतना टाइम लग जाता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, और उसमें सारा ओपेक होता है. एटलीस्ट शेयर मार्केट में रोज आपका नैव कैसे अपडेट हो रहा है, क्या आपकी होल्डिंग, एवरीथिंग इज वेरी ट्रांसपेरेंट. यूलिप में ऐसा नहीं होता है. तो विदाउट गेटिंग इनटू टू मच कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, मैं तो यहाँ बैठ के कुछ भी बेच नहीं रहा हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ यूलिप को बिल्कुल नहीं खरीदना. और एनीबडी, अगर आपको किसी को भी पता करना है कि वो कैसा एडवाइजर है,
बहुत लोग वी कम अक्रॉस चाचा, ताऊजी, फ्रेंड, प्रोफेशनल एडवाइजर्स, तो उनको पहला क्वेश्चन पूछो कि यार मैं ये यूलिप खरीदने जा रहा हूँ, कैसा रहेगा? If they don't say what I'm saying right now, कि it's a toxic product, you should never ever buy it. Okay, you should not trust them Nobody says that, bro. about any other product. Okay, that's my view. Okay, and so mera humble answer to you, Anupam, is don't buy ULIP. Okay, you're already 40-year-old, so buy a term insurance for your family. Probably 5 to 10 times your annual expenses. Minimum you should buy term insurance. आपका एक मिडिल क्लास आदमी का, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 15 लाख रुपए साल में सारे शौक पूरे हो जाते हैं, तो 1.5 करोड़ से 1 करोड़ से 1.5 करोड़ का मिनिमम तो होना ही चाहिए. जितना ज्यादा हो तो और भी अच्छी बात है. तो ये मेरी आपको एडवाइस है. राइट, बोलिए. Noted. As far as the term goes, I am holding a term. हाँ, और मेरी कोई भी बात को बुरा मत मानिएगा दोस्त. मैं ये देखिएगा कि मेरा इंटेंट आपका हेल्प करना है, और ये मेरी बात को आपको पर्सनली नहीं लेना है. राइट, मे भी आपके किसी जानने वाले ने बताया होगा और मैं उनके बारे में बुरी बात कर रहा हूँ. इट्स नॉट पर्सनल. राइट. हाँ. No, I understand, totally understand. So I already have a term for about 1 crore, and I'm going to increase that. आपके एक्सपेंसेस, मैं थोड़ा सा पर्सनल जा रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा. साल में आपका वो बैंकॉक पटाया वगैरह मिला के एक्सपेंसेस कितने होते हैं एक साल का? What you're saying is 15. वो भी कैलकुलेट नहीं किया कभी. 20 लाख ना, तो मिनिमम 5 करोड़ का आपको टर्म इंश्योरेंस चाहिए बॉस. और 5 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस अगर आप लेंगे तो आपको LIC का, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सारी अच्छी कंपनियां हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, जो काफी साल से बिजनेस कर रहे हैं, किसी का भी ले सकते हैं. वो 60-70 हजार में आ जाएगा साल का. 60-70 हजार में मरे तो 5 करोड़ रुपए मिलेगा. तो योर फैमिली फॉर एवर कैन गो टू यूरोप, फॉर न्यूजीलैंड एंड थिंग्स लाइक दैट. उनकी आपकी कमी बहुत खलेगी उनको, बट फाइनेंशियली आपकी कमी कम खलेगी, बहुत कम खलेगी. तो इसलिए 5 करोड़ कर लीजिए उसको मिनिमम, अगर 20 लाख आपके प्रेजेंट एक्सपेंसेस हैं साल के तो. ओके, नोटेड, थैंक यू. और हाँ, एक चीज और आपको बताता हूँ, ये सभी के लिए है कि जो मेरे ब्रदर इन लॉ ने जो गलती करी थी, जिससे जो विच प्रॉम्प्टेड मी टू डू स्पेसेस टुडे, कि जब टर्म इंश्योरेंस बाई करने जाइए तो डोंट बाई फॉर 50 इयर्स, कि अभी मैं 40 का हूं, मैं 90 तक ले लेता हूँ, साला कभी तो मर ही जाऊंगा, मेरे दांत हाथ में आ जाएंगे, मेरे कूल्हे काम करना बंद कर देंगे, यू नो माय फीमर एंड माय हिप जॉइंट विल नॉट वर्क, तो एक दिन तो बाथरूम में गिर के मरूंगा ही मरूंगा पक्का से, तो मेरे को पैसा तो मिलना ही मिलना है. डोंट हैव दैट मेंटालिटी. बाय इट ओनली फॉर 15 to 20 years. आइडिया इज कि 15 साल में आपने एग्रेसिवली सेव करके या कुछ करके इतना पैसा बचा लिया होगा कि you know your family will be any which ways financially secure because of your other products, जो आप दूसरे प्रोडक्ट्स में कर. एग्जैक्टली. और दूसरी चीज ये है कि जैसे अगर आप 40 साल के हैं और लेट्स से आपके बच्चे अभी 5-6 साल के हैं या 10 साल के हैं, तो जब आप 55 के पहुंचेंगे तो उनका भी डिसाइड हो चुका होगा कि वो UCLA जा रहे हैं या वो दिन रात गांजा फूक रहे हैं. उनका एक डिसाइड हो जाएगा, या तो आप कुछ मतलब फाइनेंशियली यू कांट हेल्प मच. राइट. तो इसलिए हाँ, तो इसलिए मतलब 15 साल का या 20 साल का ही लीजिएगा, बहुत सस्ता पड़ेगा आपको. डोंट गो फॉर 30 ईयर और 40 ईयर. ओके, एनी फॉलो अप क्वेश्चन यू हैव? नो, आई अंडरस्टैंड. थैंक यू. ओके, थोड़ा सा यार. हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो जाएगा. क्रिश, आप सबसे पहले आए थे, फिर छोड़ के चले गए. मैं बोलिए, कोई भी शुरू कर सकता है. हाँ आनंद भाई, अमिताभ बोलिए क्या? अरे अमिताभ बच्चन जी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके. बोलिए. अरे सर थैंक यू. ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सा व्यक्ति हूँ. एक्चुअली 33 की उम्र है और बेटी मेरी 2.5 महीने की है, और अभी 20,000 पर मंथ का SIP है. मैं बेसिकली टर्म इंश्योरेंस पे ही आपसे पूछना चाह रहा था, जो अभी आपने 15 साल वाली बात करी. सो जब भी उसको कहीं देखो तो वी फील कि 1-1.5 करोड़ का होना चाहिए. ऑल ऑफ दैट चलो ठीक है, अभी आपको सुन लिया. बट देन वन थिंग आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट डिफरेंस बिटवीन टर्म एंड होल लाइफ. हालांकि अभी जो आपने 15 साल वाली बात की, इट मेक्स सेंस एंड इट हैज बीन लॉट ऑफ थिंग्स क्लियर. 33 साल के ना, देखिए एक चीज, इंश्योरेंस इज अ वेरी पर्सनलाइज्ड सब्जेक्ट. हाँ प्लीज कंटिन्यू, सॉरी टू डिस्टर्ब यू. बोलिए. हाँ, तो टर्म लेने का मेरा भी वैसा मकसद नहीं था कि यार आई शुड टेक इट फॉर 80-90 की कभी तो मरेंगे टाइप्स.
बट अब नाउ आई थिंक थोड़ा सा आपका व्यू चाहिए रिगार्डिंग होल लाइफ इंश्योरेंस एंड टर्म, क्योंकि ये इंश्योरेंस एज ए प्रोडक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट वाले फंडे तो कभी मेरे नहीं, रहे बीच नहीं। में आपकी आवाज चली गई थी। नाउ के बाद आपकी मेंटालिटी जी, 90 तक थी, उसके बाद क्या हुआ? नहीं 90 तक नहीं है। अच्छा। आई मीन आई आल्सो डोंट थिंक कि मुझे आखिरी तक कभी तो मरूंगा टाइप्स। हम्म बट देन होल लाइफ और टर्म थोड़ा सा इसके ऊपर आई जस्ट नीड योर वर्ड्स फॉर 5 मिनट्स हम्म। बस, बाकी तो ठीक है। इज गोइंग। क्या बात है अमिताभ बच्चन, आप क्या इलाहाबाद के रहने वाले हैं क्या? नहीं नहीं सर, वो दादाजी वगैरह थे कभी कन्नौज के। नाउ आई एम फ्रॉम एमपी। इफ यू रिमेम्बर ट्विटर पे आपको किसी ने भोपाल की सलाह दी थी, आई एम दैट पर्सन। हाँ, यस यस यस। तो मतलब आप इलाहाबाद में पैदा हुए थे? नहीं, आई वाज बोर्न बॉट अप एवरीथिंग सब एमपी। मेरे दादाजी कभी वहां से माइग्रेट हुए थे कन्नौज से। तो ये अमिताभ नाम कैसे पड़ा? मतलब आप 33 साल के हैं, तब तक तो अमित जी जो है वो थोड़ा सा ढल भी चुके थे। किसने डाला आपका हाँ, अमिताभ अब नाम? सर ये थोड़ा सा जी, मेरे घर में टीवी नहीं थी एंड आई वाज बोर्न इन 1988। तो उस समय मेरे घर में नई टीवी आई थी एंड बाय दैट टाइम शायद दीवार या ऐसी कोई मूवी अमिताभ जी की रिलीज हुई थी। क्या बात कर, तो मैं 1988 में छोटा तो, था अरे and नहीं 1988 में तो ये आई थी। मेरे को भी बहुत दीवार के साथ दूसरी आई थी। नहीं, मेरे को भी बहुत धक धक सा हुआ था। वो आमिर खान की कौन सी थी, पहला नशा वाली मूवी? नहीं वो तो खैर उस समय तो सर मैं पैदा ही हुआ था, बट आई थिंक इट वाज दीवार के साथ जंजीर। आई थिंक जंजीर और दीवार में से कोई एक उस समय चल रही होगी टीवी हाँ, पे। टीवी पे चल रही होगी। ये सब 70s की मूवीज हैं दोस्त। मुझे याद है, चल मुझे रही जब होगी पहली टीवी बार में प्यार तो हुआ था तो पिक्चर चल रही है, वो अमिताभ बच्चन की पहला नशा वाला गाना चल रहा था। तो 88 89 तो वो दौर था जिसमें सलमान खान की वो हाँ, आई थी, so मैंने it प्यार was किया। ये लोग भी बूढ़े हाँ हो गए। एग्जैक्टली हाँ। बिल्कुल। तो गाना तो मतलब वो बेसिकली टीवी तो, में चल रही। हाँ, तो फिर जब आप एक बार स्कूल पहुंचे या कहीं पहुंचे तो फिर आपको लोगों ने मतलब अमित जी करके बुलाना शुरू किया? नहीं, नॉट लाइक दैट सर। वो टीवी पे चल रही थी और मैं टीवी से चिपका हुआ था। तो मेरी मौसी बैठी हुई थी एंड उन्होंने पापा को बोला कि आई थिंक ही लाइक्स बच्चन, ऑल्दो मैं तो बहुत छोटा था, इसका नाम अमिताभ रख देते हैं। तो वो अमिताभ हो गया बस। राइट, वेरी गुड। सो तो दैट्स तो अमित जी, आप क्या मतलब आप क्या प्रोफेशन है आपका? मैं कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। अच्छा, ओके। और यहाँ पे होशंगाबाद इज अ टाउन इन एमपी, भोपाल के सरकारी पास। जॉब है आपकी? सो सरकारी जॉब है बिल्कुल। ओके। तो देखिए, टर्म इंश्योरेंस मेरे हिसाब से 1 करोड़ का तो ठीक है एट एन एज ऑफ 33, और आपकी एक ही बच्ची है, राइट? जी। एक टर्म इंश्योरेंस ठीक है। और इसमें ये ध्यान मतलब रखिए। पर्पस ये है कि माय वाइफ, जी सॉरी टू डिस्टर्ब यू, माय वाइफ इज अ हाउसवाइफ। तो वो वी आर प्लानिंग कि वो थोड़ा हाउस मेकर ही रहना चाहती है। हाँ। सो वही बात है कि अगर कभी चले गए तो बच्ची और बेटा मतलब वाइफ के लिए एक डिसेंट कॉर्पस छोड़ जाएं, जैसा आपने कहा कि दे कैन एटलीस्ट रीबिल्ड देयर लाइफ, उनको अपने ऑप्शन सोचने का मौका मिल जाए, टाइम मिल जाए। राइट। तो ऐसे में मेरे ख्याल से एक चीज का ध्यान रखिए, गलती से वाइफ का इंश्योरेंस मत बाई कर लीजिएगा कोई भी। Insurance as a product has to be bought अच्छा only for the earning member because it's to supplement the financial loss of income. It's not an emotional ओके। product कि यार मैं अपने लिए एक पिज्जा मंगा रहा हूँ तो अब अच्छा थोड़ी ना लगता है तुम्हारे लिए भी एक मंगाएगा। It's not like ये अभी मॉर्निंग में मेरे ब्रदर इन लॉ अच्छा से मतलब बात वो हो रही थी और मेरी सिस्टर इन लॉ आल्सो नॉट वर्किंग राइट नाउ, एंड ही सेड कि ये दो करोड़ का मैं अपना ले लेता हूँ, 2 करोड़ का मतलब इसका ले लेता हूँ, एंड माय सिस्टर इज नॉट वर्किंग, सो इट डजंट मेक एनी फाइनेंशियल सेंस to buy term insurance for someone who is not working. Okay, I have. तो मतलब ये आप इसलिए कह रहे हैं बिकॉज वो प्रीमियम नहीं दे पाएंगे इसलिए? नहीं, या मतलब मैं exact समझाता reason हूँ, क्या है? मैं समझाता हूँ। आई हैव, उससे पहले 1000 डिस्क्लेमर दे दो क्योंकि ट्विटर है कि आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हाउसवाइफ। माय मॉम इज अ हाउसवाइफ एंड they work more than people who claim to do 9 to 5. So it's not about dignity of हाँ labor, or it's not about hard work. It's about financial हाँ income. अभी इमेजिन करिए, अब बुरा मत मानिएगा, इंशाल्लाह आपकी उम्र बहुत लंबी होगी और आप जब 90 के होंगे तो मैं भोपाल घूमने आऊंगा, मैं उस टाइम 100 का हो जाऊंगा। थैंक यू। लेकिन अगर आप मतलब ये प्लेनेट से अर्ली चेकआउट कर गए तो जी आपकी फैमिली के पास फाइनेंशियल डिफिकल्टीज काफी आ जाएंगी, राइट? अपार्ट फ्रॉम इमोशनल डिफिकल्टी काफी फाइनेंशियल डिफिकल्टी आ जाएगी, और उसको कैसे सप्लीमेंट करना है, प्रॉब्ली योर वाइफ विल हैव टू टेक सम जॉब, या फिर किसी से पैसे उधार मांगने पड़ेंगे, बहुत दिक्कत शुरू हो जाएगी, राइट? बच्ची भी छोटी है। और अगर बाय चांस आपकी वाइफ को पसंद नहीं आया एंड शी डिसाइड्स टू चेक आउट अर्ली, आपको काफी इमोशनल डिस्टर्बेंस होगा और आप बहुत डिस्ट्रॉट हो जाएंगे, लेकिन फाइनेंशियली आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
आपकी सिक्योर्ड सरकारी जॉब है, आप अभी से लेके बच्ची को ग्रेजुएशन कराना, उसको यूसीएलए भेजना, उसकी शादी कराना, सब कुछ आपका अफेक्ट नहीं होगा, नॉट इवन 1%। ओके, तो इंश्योरेंस को यही देख के लिया जाता है कि जिस जिस इंसान के लिए टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं, उसके नहीं रहने पे कितना लॉस ऑफ इनकम होगा, कितनी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आएंगी, उसी हिसाब से इंश्योरेंस प्लान किया जाता है। तो चूंकि वाइफ फाइनेंशियली वर्क नहीं कर रही है, तो इसलिए उनके लिए गलती से भी मत लीजिएगा, 1 रुपए का भी मत लीजिएगा, कोई यूलिप मत लीजिएगा। और आपके लिए टर्म इंश्योरेंस, मुझे लगता है भोपाल जैसे सुंदर और शांत जगह पे आपकी सालाना 10 लाख में आपका काम हो जाता होगा, तो आई थिंक 1 करोड़ इज अ गुड प्लेस टू स्टार्ट। और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती रहेगी, तो इसको आप टॉप अप करते रहिएगा। अभी आफ्टर सेक्शन 143 ऑफ इरिडा, अभी कोई भी प्राइवेट कंपनी से भी आप ले सकते हैं, बट मेक श्योर कि वो कंपनी 5-7 साल से बिजनेस में है। किसी बैटरी वाली कंपनी या किसी 2 व्हीलर कंपनी, इसका लाइफ इंश्योरेंस मत लीजिए। वो लाइफ इंश्योरेंस के धंधे में 5-7-10 साल से है, तो बहुत अच्छी बात है। किसी के भी प्रीमियम में ज्यादा फर्क नहीं होता है। आई थिंक LIC का प्रीमियम 1 करोड़ का आपका बैठेगा अराउंड 20-22 हजार रुपये बैठेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, साल का, है ना। और LIC से ले पाए अगर, उसमें काफी कराते टाइम बहुत फुटवर्क चाहिए होता है, बहुत दौड़ाते हैं वो लोग, मतलब आपको ट्रेडमिल पे भी दौड़ाते हैं, आपका इको, TMT और बहुत कुछ कराते हैं, बट अच्छा होता है LIC का मेरे हिसाब से। और आपकी एज 33 है, तो आप सरकारी जॉब है आपकी, तो आप 60 तक ले लीजिए। ओके, तो 60 की उम्र तक, मतलब वही रिटायरमेंट को। हाँ, तो जब आप रिटायर होंगे तो आपको एनीवेज आपको कॉर्पस मिलेगा, और जब आप रिटायर होंगे तो बेटी भी आपकी US में होगी उस टाइम, तो फाइनेंशियली भी शी विल बी सेटल्ड। तो इसलिए आप 60 लिए, 60 से ऊपर की एज का मत लीजिएगा। इसके साथ में आप म्यूचुअल, हाँ बोलिए। हाँ, सॉरी बोलिए। होल लाइफ तो हो गया ना, वही आपकी होल फाइनेंशियल लाइफ है। उसके बाद क्या है, फिर तो आदमी इंसान प्लेनेट पे समय काट रहा होता है। कह रहा था कि बिल्कुल कि 60 के बाद जैसे 60 तक ले रहा है, तो होल लाइफ बिकम्स इररिलेवेंट ऑटोमेटिक। वो बहुत महंगा हो जाता है। आप कंपेयर कर लीजिएगा कि 60 तक का लिया या 80 लिया या 90 लिया, वो बहुत महंगा हो जाता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को भी पता होती है कि 80 से 90 के बीच में आपके मरने के चांसेस ज्यादा है। अल्टीमेटली एक्चुअल साइंस है ना, अगर आपने पढ़ा हो तो थोड़ा बहुत। हाँ, तो जब आपके मरने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो पूरा प्रीमियम पूरे साल तक का लोड बढ़ जाता है, तो इसलिए देयर इज नो पॉइंट। तो वी हैव टू बी स्मार्ट इनफ। मैं प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं और जो लोग थोड़े मिड एज में आ चुके हैं, जिनकी फाइनेंशियल एबिलिटीज काफी क्रिस्टलाइज हो चुकी हैं, उनको तो मैं 55 तक ही बोलता हूँ। लेकिन चूंकि आपने अभी अपनी जर्नी जस्ट शुरू की है, तो इसलिए आपको 60 तक बोल रहा हूँ। आपकी प्रोफेसर की जॉब है, तो इसमें आपको पेंशन भी मेरे हिसाब से मिलेगी, राइट। एक अनुपम जी चले गए मुझे लगता है, बट उन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि वो यूलिप इसलिए लेते हैं क्योंकि उसमें लॉक इन पीरियड होता है, और अपना बिहेवियरल जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, कि उसको बेच दूं या कर लूं, तो इसको टैकल करने के और भी दूसरे तरीके हैं। इसके लिए यूलिप लेना ठीक है। अभी जस्ट याद आया तो मैं बोल रहा हूँ, नॉट रिलेटेड टू व्हाट वी स्पोक, अमित जी। तो तो ये आपका तो यही बोलूंगा। और साथ में बेटी के नाम का कोई इंश्योरेंस मत लीजिएगा। बहुत से प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें कन्या या बालिका जो वो आप जैसे फॉर एन एग्जांपल ये पोस्ट ऑफिस वाले सुकन्या समृद्धि एंड ऑल दैट के 18 पे ये मिलेगा, बट वो मैंने उसका थोड़ा सा एनालिसिस किया, तो वो बहुत रिवार्डिंग ऐसा है नहीं। हाँ, नहीं, इंश्योरेंस एज ए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लेना ही नहीं है कि बेटी 18 की हो गई है, 20 की हो गई है, 22 की हो गई तो इतना पैसा मिला। दैट इज नॉट हाउ वी शुड अप्रोच इट। जितने जब आप जीवित हैं, तो आपको खुद से प्रयास करके, खुद से इन्वेस्टमेंट करके, अपने नाम पे इन्वेस्टमेंट करके, यू हैव टू जनरेट मोर मनी विच विल हेल्प योर फैमिली। और जब आप नहीं है, यू चेक आउट अर्ली, इन दैट केस आपके पास होना चाहिए कि हाँ, उनको ये पैसा लमसम मिलेगा। तो जिस भी पॉलिसी में कन्या, बालिका, गर्ल चाइल्ड, क्योंकि ये सब क्या होता है, दीज आर लाइक, जैसे मछली पकड़नी होती है ना, तो पहले उसको चारे में थोड़ा सा कुछ आटे की लोई या कुछ बेट लगाते हैं, तो उसको बड़ा टेस्टी लगता है कि मैं तो आराम से टहल रही थी, तैर रही थी, अचानक से मुझे ये अच्छा सा मिल गया खाने को। सो तो दीज आर ऑल कैची वर्ड्स, ऑल एडवर्टाइजिंग वर्ड्स की फादर थका हारा आता है, और वो और उसको फिर वो कन्या का एक इंश्योरेंस बाय कर लेता है, देन ही इज सडनली वेरी हैप्पी एंड ऑल राइट। तो you will be only happy when you have more money than you're already spending and you're saving aggressively. I mean, if you are that kind of person. हाँ, नहीं, तो absolutely। और यहाँ पे चूंकि और भी listeners है, तो I'll just take 2 minutes, तो मैं थोड़ा सा, because मेरी बेटी है, तो लोग ये अभी भी जो एक छोटे शहरों का एक स्पेसिस ये होता है कि भाई आप सेव करना शुरू करो बिकॉज शादी के लिए लगेगा एंड ऑल दैट।
तो वहां मेरी सोच ये थी बिफोर बाइंग दिस सुकन्या समृद्धि जो कि मैंने नहीं ली, कि यार आज से 15-18 साल बाद का हिंदुस्तान और समय इतना अलग होगा कि तब क्या पैसा शादी के लिए लगता है, उसके लिए अभी सोच के इस तरह के कोई प्रोडक्ट में फंसना, आई डोंट थिंक किसी के भी लिए वो सेंसिबल बात है। नहीं सर, सर ये यहाँ पे आगे आपको एक चीज बताऊंगा, मेरी भी एक बेटी है, वो तो जी। अरेंज मैरिज नहीं करेगी, उसने बोला है, शी इज ऑलरेडी 4। हाँ तो हाँ तो मैं, लेकिन ये दूसरी चीज, हालात बदल जाएंगे, हमारा संस्कार बदल जाएंगे और हमारी सभ्यताएं बदल जाएंगी और हमारा कल्चर बदल जाएगा, एवरीथिंग विल चेंज, बट एक चीज कांस्टेंट रहेगी, महंगाई और हमारे खर्चे। हाँ वो बस दुनिया में बिल्कुल 190 देश हैं और 2500 जो है संस्कृतियां हैं, वहाँ ये कांस्टेंट है। तो अभी मैंने जो सोचा, तो मेरे बच्चों ने बोला कि ये तो अरेंज मैरिज नहीं करेंगे, तो आई वाज वेरी हैप्पी कि शादी के लिए नहीं बचाना पड़ेगा। तो अभी माय डॉटर हैज स्टार्टेड गोइंग टू जूनियर केजी। ओके, अभी जूनियर केजी में कोई भी डिसेंट स्कूल की फीस जो है, बस के चार्जेस वगैरह मिला के 1.5 लाख रुपए महीना है। और हाँ। मैंने तो अपनी ग्रेजुएशन कर ली थी 27,000 रुपए में, नॉट सो थोड़े साल पहले, अभी भी। तो जो खर्चे पढ़ाई के बढ़ रहे हैं, वो आज से 10 साल पहले जो शादी के लग रहे थे उससे ज्यादा लग रहे हैं। और ये तो आप इंडिया में पढ़ा, अभी मेरी भांजी है, शी हैज गॉन टू ऑस्ट्रेलिया, उसका सिर्फ ग्रेजुएशन करने का खर्चा एंड टू एंड is going to be around 1.5 crore, 2 crore, including stay, including माँ बाप का आना जाना, एंड टू एंड, डोर टू डोर में बोल रहा हूँ। देन वो पोस्ट ग्रेजुएशन करेगी। और आजकल के बच्चे भी मान के चलते हैं कि माँ बाप के पास तो एक पैसा छापने की मशीन है, जो उन्होंने हमें कभी दिखाई नहीं है। तो बस दे दो मेरे को, दे दो, गिव इट टू मी, और नहीं दिया तो फिर you're a bad parent, क्योंकि बाकी सबके पापा तो दे रहे हैं। नहीं सर, तो दैट इज द इसलिए कल्चर ना सर। छोटे शहरों में तो मतलब, नॉट छोटे शहर, अब बड़े शहर का तो अनुभव मेरे पास कुछ 7 साल का है, बट अदरवाइज भी बोलूं तो अगर कोई छोटा सा क्लर्क भी है जो 15-20 हजार रुपए महीने भी ले रहा है, उसका बच्चा भी आसपास से क्या सुन रहा है कि तुम्हारे माँ बाप ने कहीं कमा के रखा हुआ है, वो बताते नहीं है। यस यस, एंड देन दे स्पेंड अकॉर्डिंगली। तो इसलिए शादी तो एक ही वेरिएबल है लाइफ का, एंड आई एग्री विथ यू कि 15-20 साल बाद जो है काफी एक्सपेंसेस मैरिज के कम हो जाएंगे, अनलाइक व्हाट वी सी राइट नाउ। जो अभी ब्लिप देख रहे हैं, ये उबर मिडिल क्लास का जो अभी शौक है वो पूरे हो रहे हैं। वंस इट बिकम्स लाइक, ये कैसे नहीं कि पहले ऑर्कुट आया, फिर फेसबुक आया, धीरे धीरे लोग बोर हो जाते हैं। ये जो वेडिंग एल्बम्स बन रहे हैं और जो प्री वेडिंग शूट हो रहा है, पीपल विल गेट सो सुपर फ्रस्ट्रेटेड, बिकॉज प्री वेडिंग शूट कराने से कोई शाहरुख खान और काजोल नहीं लगने लगता है। तो फिर वो एक दौर आएगा जिसमें आप शादी पे नहीं खर्च करोगे, लेकिन ये एजुकेशन वाला जो खर्चा है ना, ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अभी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज आ रही है इंडिया में, तो उनके तो 5-5, 6-6 लाख के एक सेशन होंगे। और अब सरकारी स्कूल मैंने तो जैसे बात करी थी कि केंद्रीय विद्यालय में डाल दूंगा बच्चों को, जहाँ फीस बहुत कम है। तो मतलब मेरे सारे रिलेटिव्स दे आर शॉक्ड कि आप कैसे डाल सकते हो, मतलब एज इफ कि लोगों की एक्सपेक्टेशन ही ऐसी है कि आप एजुकेशन पे बहुत ज्यादा खर्च करोगे, तो इसलिए पैसे तो लगने हैं, पैसे खर्च तो ऐसे भी बंद हो रहे हैं, मतलब दे आर गेटिंग मर्ज्ड एंड एटसेट्रा। सिर्फ केवी बचेगा। तो जो लोग नवोदय विद्यालय केवी में डालने का सोच रहे हैं, मेरा तो मतलब जिसको कहते हैं ना पीरियड, एक मैंडेट ये है कि वो गलत नहीं सोच रहे। बाकी जो आसपास अपने जो मतलब सो कॉल्ड थोड़ी सी अपर बैंड की फैमिलीज हैं, जो लोग बाहर जा चुके हैं, मॉडर्न है, उनके लिए केवी सीम्स लाइक क्या यार, तुम्हारे पास है तो पैसे नहीं है, तुम्हारे में अक्कल नहीं है, सॉर्ट ऑफ। बट केवी टू मी इज नॉट ए बैड चॉइस, और फॉर दैट मैटर इवन नवोदय इज नॉट ए बैड चॉइस, क्योंकि अब आपको तो खैर वो एक अलग डिस्कशन हो जाएगा, बट पढ़ाई थोड़ी अलग चीज होती है। यू रिक्वायर दैट काइंड ऑफ टीचर्स और वो माहौल, बट स्पेसिफिकली स्पीकिंग अबाउट केवी एंड नवोदय, इट्स फाइन। नवोदय में तो कहाँ एडमिशन ही नहीं मिलता है, बट यू गेट व्हाट आई एम सेइंग कि बच्चों पे खर्चा जो है, अगर इंशाल्लाह आपके अगर एक और बच्चा होगा, इसका बहुत प्रेशर आपके ऊपर आने वाला है, तो आपको एक 1 करोड़ पर चाइल्ड तो आप मान के रखो आज के खर्चे के हिसाब से, और वो भी मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, उसी को एक थोड़ा सा बेस बना के ही चल रहा हूँ कि 1-1.5 करोड़ पर। तो आप अपना एक जो भी सैलरी है उसका एक मेजर पोर्शन 20%, 30% या 40% या 50%, जो भी आपके खर्चे हैं उस हिसाब से एक बार डिसाइड कर लीजिए, और एक डिसिप्लिन तरीके से SIP शुरू कर दीजिए इंडेक्स फंड में, वो आपका इन्वेस्टमेंट होगा। सर अगर SIP की बात करें तो आई एम ऑलरेडी हैविंग 20,000 का, उसमें 10,000 मेरा NPS Tier 2 में जाता है, क्योंकि वो टैक्स सेविंग में जाता है। हाँ वही, अभी अच्छा आपने सवाल किया, या अच्छा डिस्कशन है कि मैं बहुत बड़ा NPS का फैन नहीं हूँ। ओके, तो और नहीं वो एक्चुअली क्या है कि सर हम लोगों का सैलरी में से NPS Tier 1 में तो जा ही रहा है। हाँ, वो जो ऑलरेडी गवर्नमेंट काट रही है ना, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं अपन जो इन हैंड आ रहा है उसमें से एक मेजर पोर्शन आपको SIP करानी है इंडेक्स फंड में। और दूसरी चीज बोलूंगा मैं, बहुत ही
वही बता रहा हूँ, आई एम डूइंग इट इन 2, एक एनपीएस टियर 2 है, उसमें मतलब एग्रेसिव ऑप्शन ले रखा है मैंने, दैट इज 75% एक्सपोजर टू इक्विटी और 25% जो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स एक्सेट्रा। ठीक है वो, ठीक और है, जो बाकी 10,000 रुपए दैट गोज टू यूटीआई फ्लेक्सी कैप। तो अभी सिर्फ ठीक है, इतना है हाँ मेरे नहीं पास। ठीक है, ठीक है, तो ये आप ठीक कर रहे हो, यूटीएफ फ्लेक्सी कैप ठीक है, उसमें कोई मतलब आई डोंट हैव एनी इनपुट। बस एक ये है कि इसको ज्यादा फिडल अराउंड मत करना, मार्केट किधर भी जाए आप उस पे इन्वेस्ट करते रहना, ऊपर जाए नीचे जाए। हाँ। 10,000 तो ऐसी चीज है कि आपको डालते ही रहना है, और एक ही रखो आप यूटीएफ फ्लेक्सी कैप, ठीक है, इसको बहुत ज्यादा हाँ मतलब एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस है कि मेरे फादर एसबीआई में थे, सो ही यूज्ड टू गेट ट्रांसफर्ड अ लॉट और बहुत बिजी थे, तो उन्होंने इतना कुछ कुछ छोटा छोटा 50,000 20,000 का ले लिया कि आखिरी में उनको कुछ समेटा नहीं गया। लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, लॉट ऑफ रिडंडेंसी, तो मैं खुद ही नहीं चाहता कि मुझे इतनी फुर्सत नहीं मिलेगी जीवन में कि मैं इतने हाँ। सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को मैनेज कर पाऊँ। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स So I'm जो just है keeping it simple. जितनी आपकी उंगलियां हैं एक हाथ की, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बस 5 है वही तो सोच है। 5 बहुत है। बिल्कुल। थैंक यू आनंद भाई, थैंक यू, मजा आ गया। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। जाते जाते एक गाना सुना दीजिए। अमित जी चले गए लग रहा है। ओके, अच्छा, आप मुझसे कह रहे हैं गाना सुनाने के लिए? आपकी आवाज बहुत अच्छी हो गई ऐसा मुझे लगता है। नहीं नहीं, अब बोलने में अच्छी है, पर ठीक है, एक किशोर दा का जो गाना है कहीं दूर जब दिन ढल जाए, बिल्कुल सुनाइए। वही अच्छा लगता है। चलिए चलिए, अच्छा हमारा संडे अच्छा हो जाएगा। चलिए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। और आनंद भाई, कोइंसिडेंटली इस मूवी का नाम भी आनंद ही था। मेरी फेवरेट मूवी है आनंद। जी, बिल्कुल, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं होनी चाहिए बाबू मोशाय। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, रोहित जी आपने हाथ बहुत देर से खड़ा किया हुआ है, नीचे कर लीजिए, आपका हाथ दर्द हो गया होगा। चलिए बोलिए। चलिए बोलिए। थैंक यू सर। सर मैं रोहित हूँ और आई एम 28 और प्राइवेट सेक्टर जॉब है, अनमैरिड हूँ। मेरा एक टर्म इंश्योरेंस है LIC के साथ 1 करोड़ का। तो ऐसा है कि जिस वक्त मैं ले रहा था तो मुझे राइडर भी मतलब ज़रूरी था, सोच रहा था कि राइडर्स भी लूँ, लेकिन आज के डेट में भी ऐसा है कि सिर्फ इंश्योरेंस है और राइडर्स नहीं है, तो कुछ उसके लिए सजेशन। ये राइडर कौन सा है? ओला उबर वाले राइडर? कौन सा राइडर? नहीं, जो राइडर्स होते हैं ना कि लाइक इफ यू फॉर आई मीन कुछ डेथ तो नहीं, लेकिन कुछ परमानेंट डिसेबिलिटी व्हिच लीड्स टू लाइक वो सब बेकार है, इनकम वो सब जनरेशन। बेकार है। हाँ, नहीं जब लेना तक चाहिए दिमाग आपके काम हिसाब कर रहा है ना, तो आप कमा ही लोगे। हाथ पैर तो वैसे ही 40 के बाद काम करने कम हो जाता है, दिमाग काम करेगा तो कमा ही लोगे। दिमाग भी नहीं काम कर रहा तो यू आर एज गुड एज डेड, राइट? से। नहीं, लेकिन व्हाट इफ मतलब वही जैसे मैं बोला कि डेथ तो नहीं है, लेकिन चलो डिसेबिलिटी हो गई और जहाँ हम कुछ नहीं कर पाए आगे, तो सी वही मैं वही बता रहा हूँ कि देखिए रोहित जी, आप बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं। आपकी गर्लफ्रेंड बगल में बैठी है क्या? ना ओके सॉरी, मैं भी कुछ हेडफोन का इशू होगा, मैं भी। अच्छा, तो देखिए कैसा है ना कि इंडिया में इंश्योरेंस जो है ना बहुत ही हाईली ऐसा बहुत ही जल्दी क्लेम वगैरह मिलता नहीं है। कोई भी कंपनी बहुत झिकझिक करती है, बहुत रुलाती है, और तो ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना चाहिए जिसमें चीजों को प्रूव करना पड़े बाद में कि डिसेबिलिटी हुई, पार्शियल हुई, कि फुल हुई, कि दिमाग काम नहीं किया, कि राइट साइड काम नहीं किया, कि सो मच ऑफ डॉक्यूमेंटेशन रनिंग अराउंड। और आप ऐसी कंडीशन की बात कर रहे हो जब कैंडिडेट को खुद ही साला मतलब रनिंग अराउंड कर ही नहीं सकता हो, तो डिसेबल ही हो गया है। तो it leads to a lot of bitterness and gives a lot of ground for insurance company to reject your claim. तो कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी एज सिंपल एज पॉसिबल, और इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता कि मरे तो दे देना, नहीं मरे तो कुछ मत देना, विच इज कॉल्ड टर्म इंश्योरेंस। तो इसलिए राइडर्स, गेट रिड ऑफ राइडर्स। और आप अभी 28 के ही हो, आपने जो पहले पॉलिसी ली होगी, बहुत अच्छा डिसीजन लिया है रोहित जी आपने, कि आपकी शादी भी नहीं हुई है और आपने जिंदगी के गुलशर्रे उड़ाने से पहले ही सोचा कि मैं मरूंगा तो मिले पैसा। नॉमिनी कौन है आपका? मम्मी है? अभी के लिए तो पापा है। पापा? शादी के बाद कौन रहेगा? ऑफ कोर्स स्पाउस। अच्छा, सोच लिया है, मतलब हो गई, डिसाइड हो गया? वो तो मतलब होता ही है ना शायद हर जगह में भी। जो भी नहीं, मुझे dependent पता है, नहीं है of course, कि क्योंकि आपने parents are डिसाइड already किया कि नहीं dependent किया, on शादी even at करनी this है, age. किससे करनी है, वो तो हर जगह कैसे होता है। हम टॉकिंग अबाउट यू, इंश्योरेंस इज अ वेरी पर्सनलाइज्ड सब्जेक्ट।
होगी डिसाइड हो तो गया नहीं, किसे करना है? ना अब तक नहीं। ओके ओके। सो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बहुत पहले के जमाने में बहुत महंगा हुआ करता था, तो आप रीलुक कर लीजिए। आपका इंश्योरेंस 1 करोड़ का है तो प्रीमियम कितना गिर रहा है? मुझे टेक्टा में LIC का तो 9600 आई गेस कुछ आ रहा है फॉर 1 करोड़ इंक्लूडिंग GST। हाँ ठीक है, फिर तो उसको कंटिन्यू करिए। कोई इसमें मैं कमेंट नहीं ऑफर करूंगा, उसको पे करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए। एक बार आपकी शादी हो जाएगी तो योर स्पाउस विल बी सिक्योर्ड। और बहुत अच्छा डिसीजन है, मतलब ये तो कमेंडेबल है। मैं तो जब 28 का था तो मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो ऑनेस्टली इट्स माइंड ब्लोइंग डिसीजन की शादी भी नहीं हुई, आपकी कोई डिपेंडेंसी भी नहीं है और आपने टर्म इंश्योरेंस ले रखा है, वो भी इतना पहले लिया है कि उसकी प्रीमियम भी 1 करोड़ का 10,000 रुपए से भी कम आता है। तो यू इट्स लाइक कमेंडेबल। थैंक यू। मतलब वही था कि इंश्योरेंस प्रीमियम थोड़ा थ्रू आउट द लाइफ थोड़ा कम बर्डन रहेगा, मतलब हम कम में बस मिल रहा इसको है, उसको अच्छी और जैसे इन्वेस्टमेंट जैसे लगेगी। आपके एक्सपेंसेस बढ़ते रहेंगे तो इसको टॉप अप करते रहिएगा। जब टॉप अप का हाँ जी, टाइम आए हाँ तो जी। आप दूसरे इंश्योरेंस को भी देख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो आपका बिल्कुल सजेशन है कि कभी भी मतलब राइडर सेपरेटली नहीं राइडर नहीं लेने की कोई जरूरत नहीं नहीं है? नहीं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव एंड लिटिगेशन एंड ऑल दैट। वो अगर आपके पास पैसे होते हैं तो एग्रेसिवली इन्वेस्ट करिए, तो सो दैट इंश्योरेंस हैज टू बी द लास्ट रिसोर्ट फॉर यू और योर फैमिली, नॉट द फर्स्ट रिसोर्ट। टू बी ऑनेस्ट विथ यू, आई मीन मैं अब मेरे पास अब तो अब कोई लाइफ इंश्योरेंस है ही नहीं। मैंने इतना एग्रेसिवली सेव किया कि अब मैं आज अगर चेकआउट भी कर जाऊंगा तो ठीक है, जो है उससे काम चल जाएगा। So that kind of situation you have to reach by the time you're 40. Yes. Yeah, ठीक है सर। बिकल कुम, सॉरी। Hi Anand bhai, मेरा नाम बिकल है। I just wanted to take the same conversation forward, right? So term plan के बारे में बात चल रहा है, right? So मेरी भी एज almost 29 के आसपास है, right? I just Congrats. got married an year back, और मैंने भी जो है जो टर्म प्लान लिया है, आई थिंक मेरा 1 CR का टर्म प्लान मैंने 24 पे लिया था जब मेरी फर्स्ट जॉब मैंने शुरू की थी। तो मेरे को ये चीज पूछना है कि इनकम तो बढ़ गया है, जब लिया था उसके हिसाब से तो अभी अच्छा खासा इनकम ग्रोथ हो गया है, साथ में जॉब के साथ में कुछ फ्रीलांसिंग बिजनेस भी है, तो वहां से भी कुछ रेवेन्यू आ रहा है। तो मैं सोच रहा था कि जो टर्म प्लान है उसको एक स्टेप आगे लेके जाके थोड़ा और करना है। तो मेरे पास 1 CR का है, मुझे लगता है एक और 1 CR का लेना सही रहेगा। सो मुझे ये जस्ट जानना है कि किस मोमेंट पे हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि हाँ अब लेट्स से इनकम बढ़ गई है तो थोड़ा और टर्म प्लान ले सकते हैं, मतलब वो जो टर्म प्लान का जो कवर है उसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लाइबिलिटीज धीमे धीमे आएगी। अभी एक घर खरीदना है या फिर एक घर खरीद लिया है ऑलमोस्ट, अभी वो बन ही रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वो सब चीज है। तो मेरे को बस वो जानना है कि कब जो है कवर बढ़ाना चाहिए। और सेकंड मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरा अभी जो भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है वो सब ज्यादातर एग्रेसिव इक्विटी में ही है, मैंने कोई LIC नहीं लिया है। तो मैं थोड़ा सोच रहा था कि डाइवर्सिफाई करने के लिए, क्योंकि सब बोलते हैं डाइवर्सिफाई करना चाहिए, तो थोड़ा डेट फंड में डालना है। तो अभी तक तो मैंने कुछ किया नहीं, थोड़े FD किया है, लेकिन डेट म्यूचुअल फंड में डालना है। तो आप अगर कुछ उस पर सजेस्ट कर सके तो। बिकल भाई, आप पहले बताओ, आपका प्रोफाइल पिक्चर देख रहे हो, आप इतना गुस्से में क्यों लग रहे हो? ये प्रोफाइल पिक्चर बहुत पुराना है, नया नहीं है, बहुत पुराना है, 3-4 साल पहले का है। ओके बट यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम एंड रगेड। तो ये अच्छी बात है कि आपने इतना इको हो रहा है, जरा म्यूट कर लीजिए, सब लोग म्यूट कर लीजिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इतना अर्ली एज में ले लिया टर्म प्लान, और आप म्यूचुअल फंड भी एग्रेसिवली कर रहे हो। आपकी एज में म्यूचुअल फंड हैज टू बी वेरी एग्रेसिव। मैं डेट वाले पार्ट पे भी आता हूँ, भूल जाऊं तो याद दिला दीजिएगा। इंश्योरेंस में जैसे जैसे आपके इनकम का तो उतना नहीं बोलूंगा, लेकिन जैसे जैसे आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे उसको फोर्सी करते हुए आपको अपना टर्म बढ़ाना है। तो अभी आपके एज्यूमिंग कि आपकी अभी शादी नहीं हुई तो आपके एक्सपेंसेस प्रॉब्ली 1 लाख रुपीज होंगे पर मंथ, तो 1 करोड़ है। शादी नहीं, अभी तो शादी मेरी हो गई 1 साल पहले, बट मेरे एक्सपेंसेस बहुत कम है क्योंकि मैं पेरेंट्स के साथ अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो होम टाउन पे आ गया हूँ। तो मेरे एक्सपेंसेस मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 25-26 हजार होंगे, उसमें से जो 20-22 हजार मेरा म्यूचुअल फंड ही कट जाता है, तो 4-5-10 हजार का एक्सपेंस होगा वैसे। तो अभी बढ़ाओ यार एक्सपेंसेस, नए शादी हुआ है तो थोड़ा सा। योर वाइफ इज ऑल्सो वर्किंग क्या? हाँ, वो भी जॉब कर रही है, वो भी HR डोमेन में।
ओके ओके। तो मैं क्या बोलूंगा कि जैसे जैसे आपकी लाइबिलिटीज बढ़ेंगी, जैसे जैसे आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, आपका जैसे घर की अगर ईएमआई जानी है, या आपके कल के 1 या 2 बच्चे होते हैं, तो आपको खुद दिख जाएगा कि यार अभी मेरे फ्यूचर एक्सपेंसेस ज्यादा बढ़ने वाले हैं। व्हाट यू हैव टू डू इज एनालाइज कि अगर कल गए आप नहीं रहोगे तो अगला 10 साल या 20 साल फैमिली को कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। दैट काइंड ऑफ कैलकुलेशन। तो जब तक जिसकी अभी इससे पहले हमारी बात हो रही थी जेंटलमैन से, आई थिंक वो चले गए, उनकी शादी भी नहीं हुई है, तो अभी अगर इफ ही चेक्स आउट, अभी अगले 10 साल क्या मतलब माँ बाप के पास तो इनफ पैसा होगा ही होगा, राइट। बट अगर शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, म्यूट कर लीजिए, बच्चे हो गए, तो जो यू हैव टू फोरसी कि अगले 10 साल से 20 साल में कितना खर्चा आने वाला है। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू फोरसी। एक बच्चे पे आपका 1 करोड़ रुपए लगेगा, 2 बच्चे तो 2 करोड़ लगेगा, फैमिली की लेजिटिमेट एक्सपेंसेस 1 करोड़, तो शादी हो गई और 2 बच्चे हो गए तो एक 3 करोड़ विल बी अ डिसेंट सम फॉर यू इन अ स्मॉलर सिटी। ओके, बड़े शहरों में रह रहे हैं तो 5 करोड़ पकड़ लीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत महंगा नहीं है। अब जो आजकल हम, मतलब आप सोचो कि अगर 5 करोड़ का, जैसे मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को इंश्योरेंस सजेस्ट किया था, टर्निंग आउट टू बी 65,000 रुपीज पर ईयर, साल का। तो मतलब महीने का 5,000 या 6,000 रुपए, इतना तो वो लोग पिज्जा खा जाते हैं। तो इसलिए 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ का बहुत महंगा नहीं है। जैसे जैसे एक्सपेंसेस बढ़ते रहेंगे तो इसको लेते रहेगा। हमेशा इंश्योरेंस में टर्म ही लेना है। आपको एक चीज और बोलूंगा इससे, कि आपकी चूंकि नई नई शादी हुई है, कि एक मेडिकल इंश्योरेंस भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी आपको जी मेडिकल सर, वो भी इंश्योरेंस मैंने ले लिया है। मैंने मेरी फैमिली के, हम ऑफिस का जो मिलता है वो तो है ही, लेकिन मैंने अलग ये केयर हेल्थ इंश्योरेंस है मेरा खुद का, एक इंडिविजुअल, ब्रदर का, वाइफ का, मॉम का, सबका लिया हुआ है। वो भी मैंने वेरी मेरा गुड। शुरू किया था जब मैंने जॉब किया था तब, क्योंकि मैं भी ये यूट्यूब देखता था, और मैं पहले आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में एडवाइजर रहा था, मतलब जो कॉलेज टाइम पे, तो थोड़ा वहां से भी सीखने मिल गया था कि हाँ, ये सब अगर पोर्टफोलियो बनाना है तो सबसे पहले टर्म प्लान, हेल्थ केयर, ये सब पे थोड़ा फोकस करना है, फिर म्यूचुअल फंड पे जाना है, ऐसा कुछ। तो उसी टाइम से मैंने ले लिया था। तो मेरा 3-3 साल का एक ही बार मैं प्रीमियम भी पे कर देता हूँ हेल्थ केयर का, जो हेल्थ मेडिक्लेम है, तो उसमें डिस्काउंट भी मिल जाता है 10-15%। तो वो सब तो मैंने ले लिया है। वेरी गुड वेरी गुड। ये जो लोग, बाकी लोग सुन रहे हैं, तो कैसे है कि नए नए जब होता है तो इसमें, जैसे इन माय केस, जो मेटर्निटी के टाइम जो खर्चा आता है 1-1.25 लाख रुपए, वो भी मिल जाता है। फिर मेरी मॉम का नी रिप्लेसमेंट हुआ था, उसमें करीब 4-4.5 लाख रुपए लगा था। वो पूरा पूरा कैशलेस हो गया था, मुझे 5 रुपए भी नहीं खर्च करने पड़े थे। तो मेडिकल इंश्योरेंस अपने आप में, इट टर्न्स आउट टू बी वंडरफुल, यू नो, इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ अ थिंग। कि जैसे अगर मैंने अभी तक अवेल कर लिया है जो बेनिफिट, वो करीब 6-7 लाख का बेनिफिट कर लिया है, राइट। और उसमें फैमिली फ्लोटर प्लान है, तो पेरेंट्स भी कवर्ड है। तो अगर मैं अभी, मेरी ईएमआई जो साल का जो कटता है, वो तकरीबन 40,000 रुपए कटता है साल का। तो अगले 10 साल तक मैं कोई भी क्लेम नहीं भी करूंगा, तो उससे ज्यादा तो मैं ऑलरेडी अवेल कर चुका हूँ। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर मी। अगले 20 साल में मैं 40,000 महीने के हिसाब से एक 8 लाख रुपए पे करूंगा। 20 साल में खुदा ना खास्ता 1-2 क्लेम और आ ही जाएगा, राइट। सो आई एम कवर्ड फॉर आई थिंक 35 lakhs और 40 lakhs मल्टीपल हॉस्पिटलाइजेशन। तो जितना भी आप देखते हो अगेन कि क्या फैमिली सिचुएशन है, लोगों की क्या हेल्थ है, उस हिसाब से आप बी कवर्ड। उसमें मेडिकल इंश्योरेंस में बिल्कुल, चूंकि बात चली है तो मैं आपको सभी को एड्रेस कर रहा हूँ कि उसमें ये देखना है कि जो क्लेम सेटलमेंट है वो थर्ड पार्टी के थ्रू हो। जैसे एफएचपीएल है या 3-4 बड़ी बड़ी थर्ड पार्टीज हैं, तो उससे क्लेम सेटलमेंट इजी पड़ता है। कैशलेस हो तो ये रहता है। जहां पे इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली, मैं नाम नहीं लूंगा किसी इंश्योरेंस कंपनी का, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी जहां डायरेक्टली सेटल करती है क्लेम, 2-3 ऐसी कंपनियां हैं। उनके इंश्योरेंस प्लान सस्ते होते हैं, लेकिन सस्ता नहीं लेना है हमें। तो यहाँ पे भी मैं रिकमेंड करूंगा हाईली कि आप किसी सरकारी कंपनी का मेडिकल इंश्योरेंस लीजिए, जैसे ओरिएंटल है, या किसी भी जो गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है उसका लेंगे, तो वहाँ प्रोसेसेस क्लेम सेटलमेंट के ज्यादा इजी होते हैं। वो लोग आपको पॉलिसी देते टाइम बहुत दौड़ाते हैं, लेकिन क्लेम सेटलमेंट के टाइम नहीं दौड़ाते। प्राइवेट कंपनियां पॉलिसी आपको घर आके दे देंगी, आपके बाथरूम में दे देंगी, लेकिन क्लेम सेटलमेंट के टाइम पे आपको मतलब नाक से पसीना आ जाएगा। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखना है। बिल्कुल, बोलिए। हाँ शरद, या श्योर, अभी तो मैंने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया है, और मैं एडवांस में 2-3 साल का पेमेंट कर देता हूँ। और जैसा आपने बोला, मेरा तो कोई गवर्नमेंट कंपनी से नहीं लिया है,
मैं तो पहले रेलीगेयर था, उसका नाम केयर हो गया, तो उससे लिया हुआ है। लेकिन एक बेनिफिट वो भी रहता है कि हर साल में एक एनुअल चेकअप मिल जाता है, तो पूरी फैमिली का चेकअप करवा लेता हूँ, तो उससे ये भी आइडिया मिल जाता है कि हाँ अगर कुछ होना है तो पहले ही पता चल जाए, तो उसका ट्रीटमेंट भी आसानी से हो जाए। तो ये चीज था। और दूसरा जो टर्म प्लान के बारे में मैं पूछ रहा था, मैं इसके लिए पूछ रहा था क्योंकि मैंने अभी एक घर लिया है, वो रफली नियर टू 1 CR प्लस में है। अब मैं घर का इंश्योरेंस के लिए जब बात करता हूँ HDFC, तो वो मेरे को बोल रहे हैं 23-24,000 आएगा जितना लोन अमाउंट है उस पर। और मैं फिर ऐसा सोच रहा हूँ कि मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से अगर मैं 1 CR का एड ऑन टर्म प्लान ले लेता हूँ तो वो मेरे को 10-11-12 हज़ार में ही पड़ रहा है। तो फिर मैं वो सोच रहा था कि एक और टर्म प्लान भी हो जाएगा और वो घर का वो कवर भी हो जाएगा, कुछ हुआ तो वहां से होम लोन का रीपेमेंट भी हो जाएगा, और टर्म अगर नहीं हुआ तो 2 CR का ऐसे भी मेरे को जरूरत है, तो वहां से वो भी फर्निश हो जाएगा। तो अगर आपको ये मेरा आइडिया सही लगता है तो बताइए। आनंद सर आप म्यूट हैं। हाँ, तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। जो हाउसिंग कंपनियां होती हैं जो आपको फोर्स करती हैं साथ में एक टर्म प्लान लेने के लिए, ये बहुत गलत है। और इसके लिए RBI ने स्ट्रिक्चर्स भी पास किए हुए हैं लास्ट 10 ईयर्स, लेकिन लोग बाज नहीं आते। तो आपको टर्म प्लान अगर लेना है तो वो आप एडिशनल लो, अलग से लो, दैट हैज नथिंग टू डू विद हाउसिंग। और जो प्योर टर्म प्लान है, जैसा कि मैंने बताया कि इतना सस्ता होता है कि उसमें ज्यादा कंपैरिजन की जगह ही नहीं बचती है। 10 से 11 हज़ार LIC का है, 7-8 हज़ार बाकी प्राइवेट कंपनीज का है। ये सालाना है, तो फीस में डिफरेंस बहुत कम होता है। डेफिनेटली आपकी एक लाइबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि आप एक घर खरीद रहे हो 1 करोड़ से ज्यादा का, और तो आप उसका 1 करोड़ का और ले लो टर्म प्लान। और या तो पुराने वाले को सरेंडर करके एक नया ही 2 करोड़ का ले लो। वो हाउ यू विल नेगोशिएट, बट इट हैज टू बी डिफरेंट फ्रॉम हाउसिंग लोन। हाउसिंग लोन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कल का ऐसा ना हो कि हाउसिंग लोन वाले उस पर फर्स्ट क्लेम करने आ जाएं या वट, क्योंकि जब इंसान नहीं रहता इस दुनिया में तो फैमिली की क्या पहली जरूरत होगी वो हमें नहीं पता। तो देयर शुड नॉट बी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, देयर शुड नॉट बी एनी लियन ऑन द अमाउंट दैट द फैमिली गेट्स, कि आप घर वाला पहले चुका दो बाद में चुका दो, राइट? इट शुड बी इंटायरली एट द फैमिलीज डिस्क्रिप्शन। दैट्स वाई उसको आप एकदम अलग से लो, और हाउसिंग कंपनी में कहीं डिस्क्लोज भी मत करो। आपको लोन नहीं मिलता है तो उनको टाटा बाय बाय कर दो, आप SBI के पास जाओ, किसी और के पास जाओ। आजकल लोन देने के लिए लोग बहुत तड़प रहे हैं, तो आप जब ये पहले बोल ही दोगे कि मैं साथ में कोई भी लोन लिंक नहीं, साथ में कोई भी इंश्योरेंस प्लान लिंक नहीं करूंगा, तो 3-4 में से एक कोई आपसे अग्री भी कर जाएगा, चाहे वो SBI हो या HDFC हो। आई एम टॉकिंग अबाउट लोन। लोन हमेशा ऐसा लो जिसमें कोई राइडर ना हो, और इंश्योरेंस प्लान आप अलग से लो। ओके, और आप थोड़ा डेट फंड के बारे में अगर कुछ बता देंगे तो। हाँ, डेट फंड का कैसा है कि हाँ, डेट फंड में ऐसा है कि अभी इंटरेस्ट रेट साइकिल जैसे आप देख रहे हो ना, तो ये इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि अभी हमारे महंगाई भी बढ़ रही है और धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा। तो ये जब होगा तो जो डेट फंड है उनके रिटर्न्स नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये बहुत ही गलत अंडरस्टैंडिंग है लोगों की कि डेट फंड में रिस्क कम होता है। डेट फंड का NAV जब इंटरेस्ट रेट विल गो अप, बॉन्ड प्राइस विल कम डाउन, तो उसका NAV जो है वो कम हो जाएगा। तो अभी जो खरीदेगा हो सकता है उसको 6 महीने या साल भर का के पीरियड में नेगेटिव रिटर्न भी मिले। सो नॉट द बेस्ट टाइम टू बाय डेट फंड। आपकी उम्र अभी कम है, 6 महीने का जो भी आपका खर्चा है, आपकी वाइफ भी वर्किंग है, तो लिटरली देयर इज नो नीड फॉर यू टू बी वेरी वरीड अबाउट कि आपको इक्विटी के रिटर्न, मान लो इक्विटी मार्केट यहाँ से 30%, 40%, 50% भी करेक्ट करेगा। इंडिया जैसी ग्रोइंग इकोनॉमी में जो कंजम्पशन बेस्ड है, काफी सारे सेक्टर्स अच्छे कर रहे हैं, वेल रेगुलेटेड है, अल्टीमेटली 10 years 15 years डाउन द लाइन इक्विटी मार्केट का फ्यूचर काफी अच्छा है। एंड इन द पास्ट ऑल्सो इट हैज ऑलवेज गिवन बेटर रिटर्न देन डेट। तो आप 80 to 90% इक्विटी में ही इन्वेस्ट रखिए, और जो 10 से 20% बचता है उसको एकदम शॉर्ट टेनर फंड्स में रखिए, लिक्विड म्यूचुअल फंड में या 3 मंथ पेपर में, 3 महीने में जो शॉर्ट टर्म डेट फंड्स होते हैं उसमें ही रखिए, ताकि इंटरेस्ट रेट की मार उनको सबसे कम पड़ती है। और उसमें 10-20% से ज्यादा मत रखिए, क्योंकि आपको लिटरली जरूरत नहीं है। आपकी जॉब है, आपकी वाइफ की जॉब है, आप जहाँ रह रहे हो, आई थिंक आप पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, तो आपको लिटरली अगले 3-4 साल तक कोई भी अपने सेविंग्स में से पैसा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तो आप बिल्कुल पैसे जो है डेट फंड में मत रखिए, रिटर्न आपके कम आएंगे, नेगेटिव भी आ सकते हैं इस माहौल में अभी। Sure, sir. Thank you so much for all this information. Right, your guidance has definitely helped. Thanks. Hi, Anand ji. Yeah, go.
Yeah. So you were talking about medical insurance. So I just wanted to ask a question, also share my experience because I kind of dealt with three medical insurance companies over a period of 10 years because of my mom. My mom was diabetic, and she had difficult procedures. She had like cardiac problems, and later she developed kidney problems. She then went on dialysis. So I have three cases wherein which I had dealt with three medical insurance. One was Aditya Birla Group. The second was Bajaj Finance Group, and the third was it was an insurance which was done by Andhra Bank, which is kind of a state bank now. And this was done, and the third party was FHPL. So the Aditya Birla Group, the first time when I done the claim with them, and there I was paying around 1 lakh because I did the insurance of my mother on later part of her life when she was 64 or 65. She was already diabetic. She already had high blood pressure. So I paid incredible amount of premium. So it started with 60,000 and it went up to lakh. But I was trying to see, and it used to cover also very less amount of coverage where it was around 15 lakhs. And then another insurance because of some benefit like I used to do was Bajaj insurance. Aditya Insurance gave me hell. I mean, I never claimed the insurance, though I kept paying them. I was never able to claim because one or the other, they would reject the claim or they will ask me additional documentation. Bajaj Insurance was also pitiful because they would do a co-opt. The only insurance which worked for me, like you said, was Andhra Bank Insurance, which was the third party was FHPL, and it was really it was lovely, and the number of years were also this thing. My mother took it some 7 to 8 years back, and it gave like fantastic. The claim settlement was really easy. The way they looked at it. So my question is, if there is a couple and husband and wife, and then there's mother and child, and you're looking at a family floater insurance that you were saying, what would be an amount that you would look at? I know it will depend and vary, but if in my experience 1 cr is kind of an amount of 50 lakhs to 1 cr is an amount we need to look at, because the medical expenses, once you go into a private hospital, it's as good as giving them a blank check. So if you're looking at a range of 50 lakhs to 1 crore, what should be the approach? One thing that you told, like the point I remember is the third party should be some government. I mean, it should be FHPL. But how do you really break it down also? Because certain insurances don't take care of your critical illnesses. Like if you get a cancer, there would be riders, or there would be even in like I was reading SBI health cover. So if you get terminal illnesses, those are not covered, so you have to take a separate insurance for that. Or how do you then or if even in insurances it would be the case, if you have an insurance of 50 lakhs also, they'll tell you at one time they will pay you this much only. So this was a rider with even the FHPL Arogyadan, which if you have an operation or something, they will pay you an extent of 5 lakhs or 10 lakhs. So for the benefit of everyone, in your research or in your experience, if you could please take the names also, because we can also do research and we'll come at the decision with our own discretion. But still, it would be helpful if we understand how to approach a medical insurance, because that is term insurance is after your death, but you have, when we live a life, and someone who is a trader, sometimes what happens is, if you're living in a corporate or if you're doing a bank job, the company takes care of you. But if you're a trader, if you're a businessman and you're out on your own, it's kind of, we have to navigate this path on our own. So what would be your suggestion? ये काफी आपने अच्छा बोला, और मुझे अफसोस है कि आपने इंग्लिश में बोला, तो बहुत लोगों को हिंदी में नहीं समझ में आया होगा। तो लेकिन बहुत अच्छी आपने इनसाइट बताई कि 3 जगह से आपने लिया, और कैसे कैसे प्राइवेट जो कंपनीज का आपने नाम नहीं लिया। मैं जनरली नाम नहीं लेता हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनी लीगल ट्रबल। अल्टीमेटली मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ, बट उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि somebody comes and shoots me in the head, right? तो इसलिए मैं नाम नहीं लेता हूँ। I cannot do service at my own cost.
बट आपने दो नाम लिए, एक आपने बजाज का लिया और आपने आदित्य बिरला का लिया, और आपने बताया कि मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ जो आपने इंग्लिश में बोला कि बड़े आपको पापड़ बेलने पड़े बजाज में भी और आदित्य बिरला में भी, और जब थर्ड पार्टी क्लेम सेटलमेंट था एफएचपीएल से, तो आपका काम इजी हो गया। ओके, जो कि मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला था कि आप सरकारी कंपनी का इंश्योरेंस लीजिए किसी का भी, और वहां पे थर्ड पार्टी क्लेम सेटलमेंट होता है और इजी हो जाता है। तो ये मेरी राय है सबको। मैं अभी भी किसका लेना है मैं नहीं बता रहा हूँ, थोड़ी रिसर्च आप लोग भी करिए। जैसे सरकारी 3-4 कंपनियां जो इंश्योरेंस स्पेस में एक्टिव हैं, उसमें से आप लीजिए। अभी आदित्य जी, आई होप यू आर ओके इन हिंदी। जी जी, मुझे हिंदी बोलना थोड़ा तकलीफ होता है, बट ओके, हाँ, नहीं तो हम इंग्लिश में बोलेंगे। सो नाउ नहीं योर नहीं नहीं, कोई क्वेश्चन। बात नहीं। हाँ, आप यू कैन स्पीक इन हिंदी, मुझे आता है, समझ में आता है। तो बेसिकली आपने ये पूछा कि इंश्योरेंस हमको कितना लेना चाहिए कि सब कुछ कवर हो जाए। देखिए, एक चीज आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने पहले भी अभी 2-3 बार बोला कि इंश्योरेंस इज अ वेरी स्क्यूड कॉन्ट्रैक्ट। उनके पास इतने लॉयर्स होते हैं कि उतने लॉयर तो किसी कंट्री के पास नहीं होते होंगे, छोटी मोटी कंट्रीज के पास। लॉयर ऑन पेरोल, लॉयर ऑन रिटेनर बेसिस एंड सो ऑन। हमारे पास तो कुछ भी नहीं होता, हमारे पास तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर भी नहीं होता है। और खासकर जब हम डिस्ट्रेस में होते हैं, अब खर्चा हो गया हॉस्पिटल का 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, और कौन सा क्रिटिकल इलनेस है, कौन सा क्रिटिकल नहीं है, कौन सा कवर्ड है, कौन सा कवर्ड नहीं है, वी आर ऑन आवर, देयर इज नो वन टू एडवाइज अस, राइट। उनको एडवाइस करने के लिए सारी दुनिया होती है, तो हम उनसे टक्कर नहीं ले सकते। इसलिए हमको बेनिफिट उतना ही उठाना है पॉलिसी लेते टाइम जितना इजिली मिल सके। तो मैं तो किसी को रिकमेंड नहीं करता हूं कि क्रिटिकल केयर अगर बहुत महंगा बैठ रहा है तो नहीं लेना चाहिए। क्रिटिकल केयर के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, और उसके दूसरे तरीके हैं। उसका तरीका है कि इंसान अपने एक्सपेंसेस को कम रखे और अपना जो सेविंग्स का कॉर्पस है वो धीमे धीमे बढ़ाते रहे। ओके, ताकि जब अभी आई विल कम टू दैट, ताकि अगर कोई क्रिटिकल इलनेस आएगी तो फर्स्ट रिजॉर्ट हैज टू बी अस, कि यार मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए कि मेरे कोई भी क्रिटिकल इलनेस आएगी तो मैं उसको कवर कर। अभी ऐसी आ गई क्रिटिकल इलनेस विच इज नेवर एंडिंग, कि साला महीने का 25 लाख उसमें जा ही रहा है, जा ही रहा है, जा ही रहा है, विच विल बैंकरप्ट द एंटायर फैमिली। इट हैपेंस। उसमें कोई नहीं बचा सकता, उसमें एक इंश्योरेंस कंपनी भी नहीं बचा सकती है। तो इसलिए इंश्योरेंस लेते टाइम ये एक्सपेक्ट करना इस हमारा नेविटी है, हमारा भोलापन है, और इंश्योरेंस कंपनी कभी उसको ऑनर नहीं करने वाली है। कोई भी बड़ा क्लेम होगा, दे आर नॉट गोइंग टू ऑनर इट। तो मेडिकल इंश्योरेंस जिस तरह से मैं देखता हूं, इट हैज टू बी अबाउट योर रूटीन मेडिकल एक्सपेंसेस। रूटीन मेडिकल एक्सपेंसेस में अभी आजकल क्या है, एक नी रिप्लेसमेंट भी रूटीन है, हार्ट की बाईपास सर्जरी भी रूटीन है। अभी मेरे जानने में 2 लोगों का हुआ है, देवर इन अर्ली 40s ओनली, 2 लोगों का हुआ अभी, वेरी फिट। आपका हार्ट में स्टेंट लगाना इज ऑल्सो रूटीन। ब्रेन में कोई स्ट्रोक आ गया, मीन जो चीजें हम सुनते रहते हैं। अब मान लो किसी को पैंक्रियाटिक कैंसर हो गया जो कि गॉल ब्लैडर में भी फैल गया है, वो कवर्ड था कि नहीं था, और उसको ऑब्वियसली इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव। ये पहले से प्री प्लान करना, वो डेफिनेटली वो क्लेम रिजेक्ट होगा। तो जो रूटीन हॉस्पिटलाइजेशन हैं वो हमारे कवर हो जाए, दैट इज द फर्स्ट थॉट प्रोसेस ऑफ, और वो सस्ता होता है। अगर क्रिटिकल केयर साथ में मिल रहा है जो कि सस्ता लग रहा है हमारे प्रेजेंट एक्सपेंसेस के हिसाब से, हमारी प्रेजेंट सेविंग्स के हिसाब से, तो वो भी ले लीजिए। इट्स लाइक कि आलू प्याज टमाटर लेने जा रहे हैं, धनिया और हरी मिर्च थोड़ी दिख रही है कि फ्री में मिल रही है, तो वो भी थोड़े से उठा लूंगा, राइट, लेकिन अलग से 1 किलो धनिया नहीं उठाऊंगा। ओके, दूसरा चीज हमें ये देखना है कि हमारा जो मेडिकल कवर है, कुछ जो ऐसी इमरजेंसी होती है, जिसमें बताया मेरी मॉम का नी रिप्लेसमेंट हुआ, तो वो नी रिप्लेस हो गया एंड 10-15 दिन बाद अच्छे से चलने लगी, फिर फिजियोथेरेपी हुई, इसमें जो भी 3-4 लाख रुपए लगा। या बच्चे की मैटरनिटी है तो एक मेडिकल इवेंट जो 1 महीने में ओवर हो जाती है। ओके, दूसरी टाइम की जो मेडिकल इवेंट होती है जो कि 6 महीना, साल भर, 2 साल भी लग जाता है। जैसे किसी की किडनी खराब हो गई, अब किडनी का रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं और डायलिसिस चल रही है, फिर बार बार हॉस्पिटल जा रहे हैं, ऑल दैट। उसमें मेरा हम्बल थॉट प्रोसेस है, आई माइट बी रॉन्ग, कि पहले से दिमाग बना के चलना है कि मैं मेडिकल कवर पे डिपेंड नहीं होऊंगा, बिकॉज कंपनी इज गोइंग टू रिजेक्ट इट ऑन वन काउंट और द अदर। मेरे को 6 महीने से साल भर का ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए कि मुझे एकदम से खर्चे ना करने पड़े, और इस बीच मेरी ये फलाना जगह लैंड पड़ी हुई है मैं बेच दूंगा, या मेरा फलाना इक्विटी इन्वेस्टमेंट है मैं बेच दूंगा, आई टेक केयर ऑफ माई फैमिली बिकॉज ऑफ माई ओन स्टैंडिंग। और वो करेज एंड कन्विक्शन आता है जब हम ऐसी फाइनेंशियली डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं कि मतलब पिज्जा में से 2 स्लाइस की भूख है और 1 ही स्लाइस खाते हैं सारी जिंदगी, तो एक वो पड़ाव आ जाता है कि जब हमें 6 महीने साल भर दे दो तो उसके बाद के जो भी होगा मैं संभाल लेगा, बिकॉज कोई तीसरा नहीं आने वाला संभालने के लिए।
सो दैट इज माई हम्बल आंसर टू यू कि कोई ऐसी बड़ी बीमारी लग गई किसी परिवार में किसी को जो ठीक नहीं हो रही है जल्दी, तो उसके पैसे हम ही को जुगाड़ने पड़ेंगे। भले हमारी मार्केट में ऐसी क्रेडिबिलिटी हो कि हमारे दोस्त यार हमको उधार दे जो फिर हम अगले 5 साल 10 साल धीरे धीरे चुकाए, या हमारी पहले से सेविंग ऐसी हो, या हम उस दौरान कुछ ऐसा कर ले जाएं कि हमें हो जाए। इंश्योरेंस कंपनी इज मोस्ट लाइकली गोइंग टू डिनाई इट। दैट इज व्हाट द एक्सपीरियंस इज। मैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री में ही काम कर रहा हूँ, और जो मैंने देखा है कि बड़ा क्लेम जो नेवर एंडिंग टाइप का होता है वो एक प्रोटेक्ट पे या दूसरे प्रोटेक्ट पे वो डिनाई करता है। उस टाइम हमारे पास तो पैसे नहीं होते, तो हम लॉयर कहाँ से हायर करेंगे, उनको लिटिगेशन में कहाँ से जाएंगे, और वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है इंडिया में। तो रूटीन लीजिए। और मैं मतलब फैमिली फ्लोटर प्लान एक 10 से 15 लाख का तो रिकमेंड करता ही हूँ। और अगर आप थोड़ा आपकी रिच लाइफस्टाइल है तो 30 से 50 लाख भी आप ले सकते हैं, मल्टीपल हॉस्पिटलाइजेशन विच शुड कवर योर एंटायर फैमिली। वो डिपेंड करता है फैमिली की मेडिकल प्रोफाइल पे कि कितने में आती है। शुरू में हो सकता है एक्सपेंसिव लगे, बट ये मेरे हिसाब से लेना चाहिए। और बियॉन्ड दैट ब्रॉड दी ग्रैनुलर लेवल पे जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट लाइकली क्लेम के टाइम रिजेक्ट होगा ही होगा। बोलिए आदित्य जी। Sir, as usual, your advice is brief. I mean, like very to the point and beautiful. I mean, like what you have shared, I guess makes sense that our first, our first level of support should be ourselves, and वो पहले हमें खुद पे depend होना चाहिए, which makes a lot of sense, especially when you're not backed by a corporate policy or you're not backed by. My wife is leaving the job, but she is actually working in SBI. Like that, if you're working in a government organization and all, that actually is great because they cover everything of it. But तो SBI की जॉब छोड़नी क्यों है? she's kind of fed up with it. I mean, they are बहुत ही long hours हो रहे हैं अभी, बहुत ही काम ज्यादा। तो SBI में तो ट्रांसफर मिल जाता है, शॉर्ट आवर का ट्रांसफर ले लीजिए। कहाँ रहते हैं हम? ये तो फाइनेंशियली बहुत ही मतलब सॉरी टू से, बट इट्स अ फाइनेंशियली वेरी I don't know whether I should say it. You are a totally stranger, but it's not a sound decision financially. Yes, sir. Yes. सैलरी भी आ रही है और वहाँ पे आपको मतलब lot of benefits are there SBI में. Yes. Extremely. I mean, even कौन से शहर में रहते हैं आप? I need to counsel you properly. हैदराबाद। यार सरकारी जॉब लेने के लिए अगर मैं अभी एक इश्तेहार लगा दूं तो यहाँ से लेके दिल्ली तक लाइन लग जाएगी। रेलवे में उसकी फोरमैन जो होता है ना, जो ट्रैक ठीक करता है 20-25, उसकी इश्तेहार निकला था। 2.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें से काफी लोग PhD थे, काफी लोग इंजीनियर थे। SBI की लगी लगाई जॉब छोड़ रहे हो आप। क्या ही बोलूं फिर, क्या मेडिकल इंश्योरेंस, क्या मतलब यू नीड टू काउंसिल योर वाइफ। आई एम नॉट सेइंग यू नीड टू फोर्स एवरीबडी। और कौन अपनी जॉब में फेडअप नहीं होता है दोस्त? मैं तो 15 साल से अपनी जॉब में फेडअप हूँ। अभी बॉस ने कुछ बोला है, कल 11 बजे तक देना है, अभी मुझे उसके सपने अभी से आ रहे हैं। मेरा संडे अभी उसी में जा रहा है, राइट? तो एवरीबडी इज फेड अप विद हिज लाइफ एंड एवरीबडी इज फेड अप विद जॉब। यार लाइफ इज डिफिकल्ट। सर मैं एक चीज, कितने साल हुआ SBI में जॉब करते हुए? 5-6 साल 8 साल हुए शायद से। धीरे धीरे आदत पड़ जाती है यार। पेन इज पार्ट ऑफ लाइफ। कौन से शहर में रहते हो आप? हैदराबाद सर, हैदराबाद। I live in Hyderabad. You born and brought up in Hyderabad? Yes, I'm born and brought up in. Wife also? Yeah, she's also from Hyderabad. Yeah, she's born and brought up. Love marriage or arranged marriage? It's sort of in between. It's not completely a love marriage. I mean, we met and we like kind of got married. So the other love thing marriage is, ना बोलो यार, क्या है ऐसे शर्माने का क्या है? but the other thing is मैं बीवी से बहुत डरता हूँ सर। So मैं इतना डरना चाहिए, सभी को डरना चाहिए। वो तो फैक्ट ऑफ लाइफ है। बट साथ में ये भी कोशिश करनी चाहिए कि वो ऐसे बोलेगी नहीं, लेकिन she should respect you. True. Oh, how will that happen? Because you should have greater insights into problems of life. I do, sir. I do. So, but the thing is that Does she respect you? Yeah, I do. But we have little bit of financial space, and then her father also has a little bit of financial space. अच्छा, तो आप मेरी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि मैं सुपरफिशियल बातें करता नहीं हूँ किसी से, ठीक है? Why to waste your time on a Sunday? True. What is the cash flow of SBI salary for next 50 years? You know, present value of you can discounted value of money or forward value of money and backward value of money. You know that, right? Yes, अगर sir, मेरे को हर महीने 50,000 रुपए मिल रहे हैं फॉर नेक्स्ट 30 years, उसका मेरे को कोई बोले कि मैं तेरे को लमसम देता हूँ आज की तारीख में, what will be that value? I don't know, sir. Maybe I don't know. I don't have any. Make a guess.
10 crores. Okay, you're not very far off, by the way. Okay. Is she eligible for pension? No, she's not eligible for pension. Okay. So she's how did she get the job in SBI? She has written an exam and she's joined as a manager. बैंक PO, बैंक PO. PO, yes. PO की नौकरी छोड़े मतलब क्या बताओ? ओके. अब उनके डैड के पास थोड़ा प्रॉपर्टी और पैसा है सर, 2-3 करोड़ है. नहीं देते, डैड लोग नहीं देते, वो ऐसा लगता है कि देंगे बहुत, ऐसा नहीं देते. मेरी शादी को 14 साल हो गए, 5 रुपया नहीं मिला. तो वही. You want to have a panel discussion on that? People who have gone through that problem. हाँ, अमिताभ जी, आपकी आवाज सुन के इतना अच्छा लगा ना, नहीं डिस्टर्ब नहीं, तो आपने अच्छा कर दिया. नहीं सॉरी, पेंशन लाइक बेटर देन कॉफी. अरे सॉरी ये जो सर बोल रहे हैं इन्हीं को थोड़ा सा ऐड ऑन कर रहा हूँ. पेंशन्स का सिस्टम क्या हो गया है, क्योंकि मैं भी सरकारी में लगा हूँ. 1/1/2004 के बाद पेंशन बंद हो गई. तो अभी एनपीएस में तो ये है कि 10%. हाँ पता है मुझे. हाँ 10% आपका कटता है, 14% एम्प्लॉयर मिला, तो वही मिलेगा कॉर्पस बस. हाँ नहीं वो तो पेंशन तक वेट ही नहीं इनकी. आपने पता नहीं पूरा सुना कि नहीं, इनकी वाइफ 5-6 साल से एसबीआई में जॉब कर रही है, बैंक पीओ का एग्जाम निकाला हुआ है. नाउ शी इज फेड अप विद हर जॉब एंड वांट्स टू रिजाइन. हाँ मैं पूरा सुना. तो 5-6 साल का मतलब लगभग ये लगी होंगी 15-16 में, तो वो फिर वो पेंशनेबल नहीं हुआ, वो एनपीएस वाला हिसाब किताब होगा, एनपीएस कटता होगा. आदित्य जी बताएंगे. तो अभी तो मेरे ख्याल है 1-1.25 लाख रुपए सैलरी मिल रही होगी. वो सैलरी शी इज विलिंग टू फॉरगो इन अ सिटी लाइक हैदराबाद. हाँ वो हाँ, तो उनको एक्चुअली 60,000 मिलता है, बट वो बेनिफिट्स लाइक अपार्टमेंट का रेंट मिलता है, तो हाँ, सब मिला के बोल रहा हूँ. हाँ 1 लाख हो जाता है. एंड द वंडरफुल वन थिंग आई लव अबाउट देम इज दे हैव अनलिमिटेड मेडिकल इंश्योरेंस. यू कैन डू व्हाटएवर हेल यू वांट, दे विल पे यू. आपने समझाया बेटा के अच्छे से? सर मैंने बहुत समझाया, बट द ओनली थिंग इज उनकी काफी जरूरतें कम है कि वो 10,000 में भी अपना गुजारा कर लेते हैं. एंड तो मेरा थोड़ा लाइक पैसा, उनका डैडी का थोड़ा पैसा है, तो ये दोनों पैसों के बीच में डैडी ने बिगाड़ के रखा हुआ है डॉटर को यार. ये तो बहुत ही. तो डैडी को बोलो कि उसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का और अभी दे देने का. He will not give you 5 rupees. I'm telling you. Yeah, that's true. You are a Hyderabadi. Yes, Hyderabadi. Yes, I'm born. नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, और मिलना भी नहीं चाहिए. I'm not saying मिलना चाहिए, but I'm saying you have to take that into account in your financial calculation. No daddy will give that kind of money. Okay, your daddy will also not give. Yes. My daddy did not give. So what I'm trying to tell you is, it's a bad financial decision to leave your SBI job, wife's SBI job. She needs proper counsel before she quits the job. मेडिकल बेनिफिट है, यू नो, एक अच्छी लाइफ है यार. बहुत कुछ है एसबीआई की उसमें यार. लोग मरे जा रहे हैं, कत्ल कर देते लोग. क्राइम पेट्रोल देखो. When you told about panel discussion, I mean, one thing we need to also, like, lot of people think about leaving their jobs. It can be a good corporate job. I will not lie to you. I swear to God, I am thinking of leaving my job for like 14 years. The day I joined my job, I wanted to quit. That same day. Okay, but I have not quit because I knew that it will be a stupid decision and I'll regret it. True, sir. True. But what I'm saying is, if someone wants to quit, what are the things they should take care before quitting? I mean, someone is working in SBI or someone is working in corporate, or a lot of people want to become traders also. So how should they think about if they do want to take that decision or leave? If let's say some people will say that, like, if my wife's argument is, we'll completely cut down the expenditure, and I also have very little needs, that we both don't spend that much. Like, we spend hardly a lot. We have maybe 20,000-30,000 rupees of like if we live lavishly, that is, I'm saying maybe maximum 40,000 of expenses. So she says that, okay, you know, like, we can completely cut down expenses and the money we have will last a lifetime, and they have such kind of arguments. So what would you suggest, or what would you say to such kind of a thing? यार आपने जो ऐसी बातें कर रहे हो ना, एकदम मेरे दिल की बातें कर रहे हो, और इस पे तो मैं 24 घंटे बात कर सकता हूँ. आई डोंट नो, ऑडियंस सारी बोर हो जाएगी. और अभी भी सिर्फ 7 या 8 लोगों ने रीट्वीट किया है, तो बहुत अफसोस की बात है यार. ये सब मेरे दिमाग में बहुत पहले से जा रहा है. पहली चीज तो ये कि किसी को ट्रेडर बनना है तो जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है. ओके, बिल्कुल नहीं है जरूरत. आप बीटीएसटी कर सकते हो, आप पोजिशनल ट्रेड कर सकते हो. पहले देखो तो कि कोई ट्रेडर ढंग से ट्रेडिंग कर पाता है कि नहीं. तो जॉब छोड़ना और ट्रेडर बनना अलग अलग चीज है. जो लोग जॉब से तंग आके ट्रेडिंग करते हैं, उनके ना सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. ओके, ये तो आप पता नहीं अग्री करोगे कि नहीं, बट आई एम टेलिंग यू, एंड दैट इज द रीजन आई डिड नॉट क्विट माय जॉब. ठीक है, आपको ट्रेडिंग करने के 1000 ऐसे तरीके हैं कि जो आप कर सकते हो बिना जॉब छोड़े हुए. क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग रात के 12 बजे तक होती है, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है, काफी लिक्विड इंस्ट्रूमेंट है. उसमें अगर किसी को इंट्राडे करना है, क्रूड ऑयल में इंट्राडे बड़े अच्छे पैटर्न्स बनते हैं.
किसी को पोजिशनल करना है तो स्टॉक में पोजिशनल के लिए जॉब क्या छोड़नी है, राइट? आप चार्ट देखो, वीकेंड पे देखो, स्टॉक आइडेंटिफाई करो, उसका बना लो सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लो, या जो भी आप फॉलो करते हो बना लो, पोजीशंस ले लो, वेट इट फॉर 5 डेज 7 डेज 10 डेज, राइट? इंट्राडे ट्रेडिंग करना और बिल्कुल उसमें घुसे रहना 6 घंटा 8 घंटा, दैट्स ओनली वन टाइप ऑफ ट्रेडिंग। तो पहली वो चीज तो अपन क्लियर कर लेते हैं कि ट्रेडिंग के लिए जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं। दूसरी चीज है कि एक्सपेंसेस कम होना बहुत अच्छी बात है, और ये चीज मेरे से ज्यादा किसी ने भी नहीं महसूस करी होगी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं जिस दिन से नौकरी कर रहा हूँ मैंने 50% से ज्यादा पैसा बचाया है, राइट? और मेरी शुरू में तनख्वाह बहुत कम थी, 50% से ज्यादा पैसा मैंने जिस दिन सैलरी मिली थी उसका 50% से ज्यादा मैं हमेशा बचाता था। ओके, तो लेकिन वहां वो करने के बाद भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन बढ़ रही है, अब मैंने बच्चों को भी समझो कि यहाँ के सबसे सस्ते स्कूल में डाला हुआ है, and this leads to a lot of heartburn among relatives, among friends, everybody questions your judgment and so on. वो सब झेलने के बाद भी फिर भी मैं बता रहा हूँ कि एक बच्चे को पालना इन सिटी लाइक हैदराबाद, सिटी ऑफ ड्रीम्स क्या मुंबई है, राइट? एक बच्चे को पालना इज एन एक्सपेंस ऑफ 5 करोड़। मैं पूरा आपको ये एक्सेल पे कैलकुलेट किया हुआ वो पूरा आपको बता सकता हूँ। आई डोंट नो वेदर यू हैव 5 करोड़ और नॉट। अब बच्चे कितने हैं आपके? सर अभी एक भी नहीं है। हाँ, तो अभी पता नहीं कितने होंगे, राइट? इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर मूड। तो अगर 2 बच्चे होंगे तो 10 करोड़ तो वही दिख रहा है मुझे। प्लस आपको कोई पेंशन मिलनी नहीं है, वाइफ को कोई पेंशन मिलनी नहीं है, दोनों को। और जब हमारी देश आजाद हुआ था तो हमारी जो एवरेज एज आप बोलो मिडिल क्लास की वो 67-70 ईयर्स की थी। 2011 में 70-71 थी। अभी आप देखोगे बहुत लोग 80-90 में आइदर और सर्वाइवर रहते हैं, राइट? 2 में से एक जना जी जाता है। ओके, और अब यू आर टॉकिंग अबाउट अगर आप अभी 40 साल के हो तो अभी से लेके अगले 50 साल तक के एक्सपेंसेस, एंड देयर विल नॉट बी एनी अश्योर्ड कैश फ्लो, राइट? उसके लिए मिनिमम अ कपल अपार्ट फ्रॉम द हाउस दे लिव इन दे नीड 5 करोड़। तो 15 करोड़ तो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, 5 करोड़ पर चाइल्ड। एंड 5 करोड़ एज्यूम करो कि आप एक चाइल्ड पे रखोगे, उस सामने दिख रहा है 1.5 लाख रुपए तो जूनियर केजी की फीस है इन डिसेंट स्कूल इन हैदराबाद। डीपीएस की फीस जाके पता करो, 2 बच्चे होंगे तो 3 लाख का तो फीस का एक्सपेंस है। 12 तक की पढ़ाई करेंगे या जूनियर केजी अपर केजी मिला के 14 साल 15 साल पढ़ाई करेंगे, वही हो गया आपका अच्छा खासा 20-25 लाख रुपए। ग्रेजुएशन की फीस जाके चेक करो। इंशाल्लाह आप अपने बच्चों को बाहर भेजने का सोचोगे 3-4 करोड़ वो लगेंगे। मैं आज की महंगाई के हिसाब से बोल रहा हूँ, उसमें महंगाई मैंने ऐड ही नहीं किया है। प्लस आज से 10-15 साल पहले हम लोग कितना पिज्जा खाते थे, राइट? बहुत कम खाते थे। अब एज अ फैमिली योर किड्स विल पुट लॉट ऑफ प्रेशर कि बच्चे तो जलेपिनो वाला पिज्जा खा रहे हैं, पाइनएप्पल वाला खा रहे हैं, हम तो हमेशा मार्गरीटा खाते हैं। So that kind of lifestyle inflation will creep in. Your wife has to understand. It will give you greater freedom to maneuver your trading also, to take a dent in your trading also, if one member of the family is earning very decent money. आपको क्या लगता है, आप जॉब छोड़ दोगे तो आप मतलब आपकी वाइफ के लिए बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी, सुना देना, कि जॉब छोड़ने के बाद लाइफ इजी हो जाएगी क्या? कुछ तो इंसान करेगा, उसमें डिफिकल्टीज आएंगी, राइट? जॉब में एटलीस्ट लॉट ऑफ शिट यू आर टेकिंग, यू आर गेटिंग गुड मनी। Imagine a housewife, she takes a lot of shit, no money, right? तो I don't know कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे खत्म करूँ, बट आप दोनों को बैठ के, मान लो कि उसने जॉब छोड़ दी और आपका ट्रेडिंग एवरेज मान लो चल रहा है, उसके बाद भी जो भी एक्सपेंसेस होने वाले हैं फ्यूचर में वो आप बैठ के डिस्कस करो, उसको एक एक्सेल पे डालो, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, इट विल बी ह्यूज नंबर ऑफ करोड्स, हमेशा कम ही पड़ेगा दोस्त। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा बोल दिया, मुझे पता है, नहीं बट दिस इशू इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, एंड लीविंग एन एसबीआई जॉब शुड नॉट बी टेकन वेरी कैजुअली। तो क्या पता मे बी आई विल बी एबल टू परस्यूड योर वाइफ की, यार दोबारा सोच लो। Sure. I'll definitely like the idea you told me about putting it on Excel and looking forward to all the expenses. I think that makes a lot of sense. At least even if she leaves, she should be aware of all these things and then take an aware decision, whatever it is, but take that whole thing into account. What are the benefits we are getting, and over a period of time, I'll definitely do. Sir, or a thing I have, like I spoke to you last time, if you remember, about I have an corpus amount I wanted to give with traders, and I'm नहीं, don't do that, यार, don't do that. नहीं, आप You can't, nowadays you can't trust anybody, यार. No, Don't. okay, मैं आपको मैं बाद में DM करता हूँ,
about this. बोल दो अभी सबके बेनिफिट के लिए बोल दो अभी, अनलेस इट इज अ वेरी प्राइवेट, आप कोई बहुत ही पर्सनल बात है तो नहीं बोल दो वो सबको। आप हाँ we had this discussion. I don't think don't know. ठीक है, डीएम में, हाँ डीएम तो हाँ तो इसलिए क्योंकि like आपने what was the versus like if you should we give it to 5 people or 2 people to trade and वो ठीक आपने है, मुझे डीएम करो, हाँ मैं मैं आपको बता DM करता हूँ. Thanks a lot sir. Thank you for your thing दूँ। हाँ on your अविरल जी बोलिए, अविरल चले गए ऑलमोस्ट, हेलो। अरे नहीं बोलिए नहीं अविरल। नहीं। हाँ बोलिए अविरल। हाँ तो सर एक्चुअली मैं अभी इतने 15 इयर्स का हूँ, सो और मैं अभी अर्न कर रहा हूँ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी। सो मुझे बस आपसे इतना पूछना था कि मैं अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए क्या कर सकता हूँ। 15 साल के हो? या झूठ तो हाँ, नहीं बोल रहे? नहीं नहीं, आप मेरी प्रोफाइल चेक कर लो। हाँ मैं तो तुम्हें फॉलो भी करता हूँ, तुमसे एक बार बात भी हुई है, तुमने बहुत कुछ 12 साल की उम्र में कोई पहाड़ तोड़ दिया था। राइट राइट। अरे कुछ नहीं, एंजॉय करो लाइफ को यार, यू नीड अ गर्लफ्रेंड। नहीं भैया, सीरियसली नहीं अरे आई एम टेलिंग यू, ये being an introvert and it's not going to help you. You have your startup, you have your money, you have your savings. Don't क्या बोलते हैं, don't get over obsessed about one aspect of life. You need a probably couple of girlfriends, if not. लाइक भैया मेरा है कि मेरे पास पैसा तो एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी सेव हो गया है, पर मुझे अब उसको इन्वेस्ट करना कहीं पे। तो एक इंडेक्स फंड में एसआईपी चला दो, एक इंडेक्स फंड में एसआईपी चला दो। एंड इफ यू आर एन इंट्रोवर्ट तो मतलब फिर भी यू नीड अ गर्लफ्रेंड यार, सीरियसली। यू आर 15, you have money, you have everything, you have savings, you have knowledge, but you don't have a girlfriend. नहीं वो चाहिए भी नहीं। यही बात है ना, ये जो सिखा रहा हूँ सब लाइफ सेविंग चीजें सिखा रहा हूँ, बाद में याद आएगी, बोलोगे आनंद सर ने बोला था मैंने सुना नहीं। राइट। होता क्या है ना, इफ यू डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड तो क्या होगा, जो पहली लड़की तुम्हारी जिंदगी में आएगी, जो तुम्हें थोड़ा सा हाई बोल देगी, बस में बैठी होगी या तुम्हारे स्टार्टअप में एक एम्प्लॉय होगी, तुम उसी के प्यार में पड़ जाओगे। नहीं फिर वो तुम्हें चक्कर कटाएगी ढेर सारे, और उसके बाद तुम्हें जो है वो दूध की मक्खी की तरफ फेंक देगी और तुम देवदास बन जाओगे। तो इसलिए यू नीड एक्सपोजर इन दैट एरिया प्रीटी वेल। नहीं मतलब ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा एक बार ट्राई किया था और मैं इस टाइप का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा चीजें एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, तो मुझे एक आइडिया है। स्टार्टअप लोग यहाँ तो लोग 10 स्टार्टअप ट्राई करते हैं तो 11वें में जाके उनको फंडिंग मिलती है। तुमने एक बार ट्राई किया, तुम्हें वो स्टोरी मुझे पता है। राइट। तो अभी दोबारा ट्राई करने का टाइम है। यू आर ऑलरेडी 15। दाढ़ी मूंछ आ गई तुम्हारी? हाँ आ गई। तो बस देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो आप अपना अच्छा सा प्रोफाइल बनाइए, आप अपने स्टार्टअप के बारे में बताइए, और फॉरगेट अबाउट इंश्योरेंस, फॉरगेट अबाउट मेडिकल इंश्योरेंस, थोड़ा तो पापा को भी करने दो। लाइक हाँ पापा करते हैं, पर लाइक मेरा एक वो है बचपन से रहा है कि मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रहना। अरे बचपन ही है, अभी चल रहा है बचपन। टॉकिंग लाइक माय सन, वो अभी 6 साल का है, बोलता है मैं जब बच्चा था। अरे यार तू अभी बच्चा ही है। So 15 साल की उम्र है दोस्त तुम्हारी अभी। हाँ तो पढ़ते हो अभी तुम? कॉलेज स्कूल खत्म हो गया? नहीं अभी स्कूल में चल रहा है, 9th में। 9th में हो? कोएड है या बॉयज स्कूल है? बॉयज लाइक दोनों का है, मतलब बॉयज गर्ल्स दोनों है। कोएड है, को एजुकेशन। ओके। तो जो सबसे सुंदर लड़की लगती है उसका नाम क्या है? कभी इतना ध्यान नहीं दिया। कविता? कविता ध्यान है? अरे कभी इतना ध्यान नहीं दिया किसी लड़की पे, मतलब। तो जो सबसे सुंदर लड़का है उसका क्या नाम है? नहीं भैया ये इस टाइप का भी नहीं करा काम। तो अभी तुम्हें पता ही नहीं है कि किस टाइप का काम करना है? लाइक मैं सिर्फ अपने काम से काम रखता हूँ, बाकी मुझे दुनिया क्या कर रही है उससे मतलब नहीं है। ओके ओके यार, यही एडवाइस है मेरी। मतलब आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम। एडवाइस यही है कि बॉस यू नीड सी, अगर जैसे आप मान लो कि नॉनवेज खाते हो? नहीं। तो जैसे मान लो आप पनीर लबाबदार बना रहे हो, केवल प्याज ही प्याज डाल दोगे तो अच्छा नहीं बनेगा। यू नीड ऑल मसाले, थोड़ा गरम मसाला, थोड़ा तेज पत्ता, थोड़ा धनिया, थोड़ा कसूरी मेथी, सब कुछ चाहिए होता है। ये देखो भैया, मेरे लाइफ में जो 2 माइनस पॉइंट है, वो एक है ये सब जो आप बता रहे हो, और दूसरा गेम्स भी मैंने एक बार ऐसे ही मैंने सोचा था कि हाँ गेम्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं लाइफ में, तो मैंने उनको स्टार्ट किया था। पर मैं मतलब ये 2 चीज़ होती हैं, ये मुझे जितने बार भी मिलती हैं वो मुझे बर्बाद कर देती हैं। तो मैं इनसे यार बर्बाद होना ही जीवन है, बर्बाद होके ही आबाद होता है इंसान।
नहीं मतलब भैया इतने बार बर्बाद हो चुका हूँ कि अब फिर डर लगता है, नहीं ये नहीं करना है, ये गेम्स और ये सब चलो चीज़ मेरे को आपकी हमेशा। चॉइस है, गेम्स के कंप्यूटर गेम की बात कर रहे हो या क्रिकेट वगैरह की बात कर रहे हो? नहीं मैं वीडियो गेम्स की बात कर रहा हूँ, तो वीडियो गेम से ही मैं इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो जाता हूँ कि अगर मैंने एक बार खेलना स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद फिर मुझे मतलब नहीं है कि मैं कौन सी दुनिया में हूँ, कितना टाइम लग गया मुझे, मैंने खाना खाया कि नहीं खाया, बस सिर्फ तो वो बोले ये दो चीज़ें ऐसे एडिक्शन मेरे लिए काम करती हैं कि ये एक लॉन्ग टर्म में मुझे बहुत ज़्यादा लाइक लॉस में डाल तो देती मतलब हैं तुम और मैं गेम खेलोगे ही नहीं, हिमालय हाँ में मैंने चले जाओ, साधु संत बन जाओ, फिर तुम्हें क्या है पर्सनल फाइनेंस और इंश्योरेंस और ये क्या? लाइक मतलब एक एक नाक से सांस लो, दूसरे नाक से निकालो, बस नहीं लाइक लाइफ मैंने सेट है तुम्हारी। फोर्थ क्लास से ही छोड़ दिया था गेम्स भैया, एक्चुअली इससे वजह से मतलब तुम ऐसी बातें कर रहे हो, 4th क्लास में तुमने गेम खेलना छोड़ दिया? या मैं मेरा क्या बोलूं लास्ट यार, मैं गेम तो इस उम्र में, मेरी 40 की उम्र है, मैं मतलब अभी जब तक बैन नहीं हुआ था फर्स्ट टाइम मैं 3-4 घंटे पबजी खेलता था। पबजी को और मेरे को भी काफी एडिक्शन हो रखा था, मैं तो, मेरा कोई व्हाट्सएप मैसेज वगैरह भी आता था, मैंने व्हाट्सएप भी डिलीट कर दिया इस चक्कर में कि साला व्हाट्सएप डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को। वही मजा है लाइफ का यार। भैया अभी तो एडिक्शन मैं, में क्या मजा है हाँ, मतलब ग्रोथ, अब जो आपकी एक ऐसा लाइफ के स्टेज पे हो जहाँ पे आपकी ग्रोथ हो चुकी है, आप स्टेबल चल रहे हो, ठीक है। क्या मेरा ये जो झूठ है ना लाइफ का, जो कोई कोई 80 साल का होगा उससे पूछना, किसी की ग्रोथ पूरी नहीं हो जाती है, सबकी आकांक्षाएं वैसी रहती हैं, दिल हमेशा बच्चा रहता है हाँ ना। नहीं मतलब मेरा तो अभी बिल्कुल ही इनिशियल स्टेज है, और उस इनिशियल स्टेज में अगर मैं इस टाइप की चीजें कंज्यूम करूंगा तो फिर मुझे नहीं लगता कि कंज्यूम अ, करोगे उससे तुम्हें आइडियाज मिलेंगे बनाने के, और तुम गेम्स के स्टार्टअप बनाओगे, तुम बिलियनर बनोगे, उसके बाद तुम्हारी ढेर सारे यॉट्स होंगे, तुम्हारे हर सिटी में बंगलोज होंगे, वो सब गेम से ही शुरू होगा। डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ दोस्त। मैं रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, पर मेरे लिए कर ही गेम्स रहे हो। इस टाइप देखो भैया मतलब अगर मैंने गेम स्टार्ट कर दी तो अगर मेरे पास कोई ऐसा काम होगा कि मुझे ये टास्क 11 बजे तक खत्म करना है, 12 बजे तक खत्म करना है, तो फिर मेरे लिए वो टास्क की उतनी कीमत नहीं रह वही जाएगी, मैं वही फिर वही बैलेंस और वही डिसिप्लिन तो सीखना है, वो वही मतलब तभी आएगा जब जब यू नो यार, मतलब ये वही बात होगी, पेट खराब हो गया तो मसाला खाऊंगा नहीं, पूरी जिंदगी लौकी खा के रहूंगा। हाँ मतलब एक बार दारू पी, एक बार उल्टी हो गई तो अब मैं कभी पीऊंगा नहीं यार। यू हैव टू लर्न कि उतना पीना है कि सुरूर आ जाए और फिर बस कर देना है। हाँ वो मतलब मैं लर्निंग ही ऐसे धीरे धीरे आएगी। या सो मतलब जैसे अभी मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं एक PS5 खरीद सकता हूँ, पर मैं PS5 पैसे इसलिए नहीं की बात खरीदूंगा। ही नहीं है यार, तुम्हारी पैसे की बात ही नहीं है, योर नहीं प्रॉब्लम मैं इज नॉट मनी, सुनिए योर तो यार। सर्वांगीण विकास, हाँ होलसम हाँ डेवलपमेंट ऑफ योर पर्सनालिटी, दैट इज व्हाट द इशू इज। पैसा या आ जाएगा। सो नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूँ भैया, तो एक्चुअली क्या है, मेरे एक दोस्त के पास भी PS5 है, तो मैं जब सिर्फ उसके घर जाता हूँ तो तभी हम लोग खेलते हैं, नहीं तो फिर नहीं खेलते। और मैं उनसे बहुत बार बोल चुका कि भाई तेरे पास पैसा है तो तू खरीद क्यों नहीं लेता है। तो मैं उसको यही बोलता हूँ कि मतलब ये एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता हूँ मैं कि मुझे पता है कि अगर मैंने एक बार उसको खरीद लिया तो फिर मेरी जिंदगी तबाह है। और ऐसे क्या है कि एक सॉर्ट ऑफ एक बना रहता है बैलेंस कि हाँ 1-2 महीने में चलेगा उसके घर, खेल लिया उस दिन, फिर वापस आ गए। तो फिर अब देखो सिर्फ मैं एक दिन खेलता हूँ तो मेरे को इतनी ज्यादा तलब मच जाती है कि 1 हफ्ते तक मेरा दिमाग खराब रहता है, प्रोडक्टिविटी बिल्कुल लो रहती है मेरी हमेशा। सो अगर वो मेरे पास ही होगा तो फिर क्या ही बचेगा मतलब मेरे पास करने के लिए। तो वो मैं बता रहा हूँ, मतलब मेरा और गेम्स का कनेक्शन बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग हो जाता है अगर एक बार हम लोग कांटेक्ट में आ जाए तो। यार मैंने पहली बार गेम खेला था, निंटेंडो का गेम था ये आपका, जो आता है ना सुपर मारियो और कॉन्ट्रा और ये सारा, मतलब मेरे बर्थडे पे मेरी मम्मी ने हाँ मुझे गिफ्ट किया था। ओके, फिर मेरे को हाँ एडिक्शन लग गया, 4-5 घंटे मैं खेलने लगा, फिर मेरी मम्मी को भी एडिक्शन लग गया, मैं और मेरी मम्मी टीम प्लेयर बन के खेलने लगे, वो जो बॉक्सिंग आता था, कुंफू आता था, हम लोग खेलते रहते थे। हाँ लोग बोलते बच्चों को चश्मा चढ़ जाएगा, ओके, मैं तो हाँ 40 साल का हो गया, मेरे को कोई चश्मा नहीं चढ़ा, मैं दिन का 4-5 घंटे खेलता था, स्कूल से आता नहीं था गेम खेलना है, बस यही रहता था मेरा। और मैं बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, सब तो मोबाइल पर था नहीं। मेरी मम्मी को चश्मा चढ़ गया 3-3.5 का, एक आंख में 3, एक आंख में 3.5। अब हाँ उन्हें तो बिना मतलब चश्मे के दिखता नहीं है, उसी टाइम चढ़ा, एंड शी गॉट एडिक्टेड। जब हमारी वो, उस टाइम बड़ी फ्लॉपी डिस्क आती थी, बड़ी अजीब सी, और वो बड़ी महंगी होती थी, मतलब उस टाइम मेरे पापा की आधी सैलरी होती होगी, इतना महंगा होता था। और वो या जब फ्लॉपी खराब हो गई बारिश में, तो हमारा गेम छूट गया क्योंकि पैसे नहीं थे। फिर उसके बाद जब मोबाइल गेम आए तो मैंने वो खेला, फिर मेरे कॉलेज में था तो मैंने एजेस ऑफ एम्पायर और काउंटर स्ट्राइक बहुत खेला। यार वो बैलेंस आ जाता है धीरे धीरे, अभी तो तुम 15 के ही हो, भैया यही सब मतलब जिंदगी यही है यार। हाँ आप 4-5 घंटे खेल रहे थे, मेरा मेरा हिसाब इस टाइप का कि हाँ, तो बारह मेरे को बारह भाई, घंटे मेरे को 15 साल की उम्र में स्टार्टअप नहीं करना था ना। तो खेलो यार, गेम खेलो यार, वो अपने आप आ जाएगा पेरेंट, दैट इज माय लिमिटेड एडवाइस टू यू, डोंट डिप्राइव योरसेल्फ ऑफ एनीथिंग। अभी मैं, अगर तुम ज्यादा हायर इस पे डिस्कशन करोगे तो मैं तुम्हें ओशो का एग्जांपल दे सकता हूँ।
जो कि जितना आप जिस चीज से अपने आप को डिप्राइव करोगे ना, आपको वही करने का दिल, एक सेकंड, आपको वही करने का मन करेगा सारे टाइम, ठीक है? मतलब नहीं, अब उतना नहीं करता क्योंकि मैं उसको इतना अरे मैं ध्यान नहीं देता। सबकॉन्शियस लेवल पे बोल रहा हूँ। हाँ, तो अच्छा, आपको वही एक जिंदगी में कमी लगेगी और उस कमी को जो है, जो खालीपन है, उसको आप तरीके तरीके से भरने की कोशिश करोगे। तो इसलिए डोंट डिप्राइव योरसेल्फ आर्टिफिशियली। बोर हो जाता है यार इंसान, गेम से भी बोर हो जाता है। आज मैं पबजी नहीं खेलता हूँ, आज मैं कोई गेम नहीं खेलता हूँ, मुझे स्पेसेस करने का बहुत मन करता है। कोई रिट्वीट नहीं करता तो भी मैं स्पेसेस कर देता हूँ। नहीं भैया, तुमसे बात मेरा करने का, तुम्हारे जैसे लोगों से बात करने का मन करता है। तो अलग अलग इंसान बोर हो जाता है, एक्टिविटीज बदलती रहती है यार, यही जिंदगी है। अच्छा, बहरहाल मतलब पर्सनल फाइनेंस की तुम बिल्कुल टेंशन मत करो। नेक्स्ट टाइम पापा को भी लेके आना स्पेसेस में, मैं उनको समझा दूंगा। तुम अभी लाइफ एंजॉय करो, जितना कमा रहे हो उसका आधा तो उड़ाओ कम से कम। उड़ाना क्यों एक है अच्छी, जब हाँ हाँ, एक अच्छी मतलब सी गर्लफ्रेंड अभी बनाओ, उसके लिए एक अच्छा सा नहीं पेंडेंट खरीदो, उसके लिए एक अच्छी सी रिंग खरीदो, फिर वो ये सब लेके भाग जाएगी। ये सब मजा है यार। मुझे क्यों करना ही क्यों है, पैसा क्यों बर्बाद करना किसी पे। यार मतलब तुम, मुझे लग रहा है कि संत आत्मा बनोगे तुम। मतलब नहीं जो नहीं जितने बाबा लोग हैं ना, उसमें बाय द टाइम यू आर 40 यू विल बी वन ऑफ द बाबास। पैसा भी नहीं होगा मतलब तुम्हारे पास, क्लैरिटी अभी से है ही। मेरे पास वो वाला दिक्कत नहीं, मतलब मेरे जीवन में ये सब चीजें आनी है, पर मैंने इसकी एक प्रॉपर एज सोच रखी है बिल्कुल, कि यही तो। एक पिक्चर आई थी, उसमें हीरो ने कवर्ड के अंदर लगा रखा था कि 21 पे शादी, 25 पे बच्चे, 30 पे ये। वो मैं पिक्चर का नाम भूल गया। एनी विच वेज आई विल गिव टाइम टू सम अदर स्पीकर, मैं आई विल कम बैक टू यू। ऑलमोस्ट एफआई और ये यंग या गरिमा। Hello, sir. हेलो Very, गरिमा जी, बोलिए। very interesting conversations happening here. I'm not sure. Actually, I did not join this group in the beginning, तो मुझे नहीं पता है कि what are the questions we can ask here. I went ahead with the heading जो इसमें लिखी हुई है personal आप कुछ भी finance. पूछिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ हमारे में बिल्कुल आप पहली बार आइए तो स्वागत है आपका, और कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं, कोई टाइम की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और जो मुझे समझ में आएगा, आई ट्राई टू आंसर इट ऑनेस्टली। तो पूछिए, और नहीं पता होगा तो मैं बोल दूंगा भाई मुझे नहीं पता है। पूछिए जो पूछना है। Okay, sir. तो मैं एकदम ही like I have no idea about financial planning. जॉब के इनिशियल ईयर्स में बस सैलरी उड़ाई है, सेविंग्स कुछ करी नहीं है ऑनेस्टली. Now I don't have any liabilities as of now. I am not married, but I want to invest money now so that I can grow. वो that is something I'm trying to learn. अभी भी इतनी knowledge नहीं है, and that is the reason I joined this group. कि if you could give some direction in that. That's it. ओके ओके। तो आप बोल रहे हैं कि जॉब जब करनी शुरू करी तो इनिशियल ईयर्स में बहुत उड़ाया, अभी तो आपकी 20-22 की तो उम्र ही लग रही है मुझे। कितने साल से जॉब कर रही हैं आप? सर 20-22 की तो नहीं हूँ मैं. अच्छा अच्छा, मतलब yeah, cross कितने साल 30. से जॉब कर? 10 ओके, years नहीं old. It's been 10 10 years. ईयर्स से आप जॉब करते, तो ये प्रोफाइल पिक्चर बहुत पुरानी लगा लिया आपने। नहीं सर, ओके पुरानी नहीं है, 2 years पुरानी कह लो, 2 साल. अच्छा ओके। देखिए, अगर आप अभी 30 पे हैं तो मैं बोलूंगा आपका और आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी लाइबिलिटीज भी बहुत कम है। तो एक टर्म इंश्योरेंस तो आप ले लीजिए। मैं बोलूंगा 1 करोड़ या 2 करोड़ का मिनिमम आप ले लीजिए, विच विल बी अराउंड 40-50 हजार रुपए में आराम से आपका आ जाएगा किसी भी अच्छी कंपनी का। आप चूंकि अभी आपकी लाइबिलिटीज भी कम है और आपका यंग भी है, तो आपका प्रीमियम भी बहुत कम आएगा। तो और इसको डोंट कैरी इट मोर देन 60 ईयर्स। तो 30 ईयर्स का टेन्योर होना चाहिए। 1 या 2 करोड़ जितने भी आपकी बहुत ही कम होता है प्रीमियम टर्म इंश्योरेंस का, पर मंथ के हिसाब से सोचेंगे तो वो ले लीजिए। आप अगर बता सकती हैं कौन से सेक्टर में जॉब करती हैं, या आपका ऑलरेडी मेडिकल इंश्योरेंस कवर्ड है? यस सर, मेडिकल इंश्योरेंस तो जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन से कवर्ड, उसमें टॉप अप करा के मैंने ले रखा है, सो दैट वेज आई एम कवर्ड. तो फिर वो लेने की जरूरत नहीं है, तो वो आपका वहां पे कवर हो गया। मेक श्योर कि आपके पेरेंट्स उसमें कवर्ड हैं कि नहीं, हाँ, तो वो एक चीज देख लें। यस शी इज कवर्ड. वो हो गया। और उसके बाद अब आपने देखिए एंजॉय कर लिया, और जैसे अविरल ने तो नहीं करा, आपने एंजॉय कर लिया। हाँ, मैंने कर लिया, तो मुझे अब ग्रो हाँ, करना है पैसा. या ग्रो करना। हाँ, तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि सब मिथ्या है, उसको पहले से ही समझ में आ गया। जी जी. तो 50% सैलरी का आप ट्राई करो बचाने का। आपके शक्ल से लग रहा है कि आप बॉम्बे में रहते हो, राइट? Oh my God, yes, I recently moved to Mumbai. I work in an investment. Yeah. पता ही है मेरे को। तो
बॉम्बे जैसे शहर में बहुत डिफिकल्ट होता है पैसा बचाना, क्योंकि अनलाइक अदर सिटीज जहाँ पे पैसा खर्च करना लग्जरी होती है, बॉम्बे में पैसा खर्च करना डिसेंट सर्वाइवल होता है। अभी आप जैसे कि मान लो कि अभी आप मलाड में रहते हो, राइट? मलाड में रहते हो? No, sir, not in Malad. ओके, तो मैं मलाड में एग्जांपल दिया मैंने। आप मान लो वहाँ 1 BHK में रह रहे हो, 2 BHK में रहने का इंसान की एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती है कि मैं थोड़ा बड़े में रह लूँ, तो रेंट डबल हो गया। थोड़ा ऑफिस के पास रह लो, आपका ऑफिस लोअर परेल में, तो वहां आपका रेंट 4 टाइम्स हो गया। तो बॉम्बे में एक्सपेंसेस आर पार्ट ऑफ सर्वाइवल, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेव मनी इन बॉम्बे। ओके, वहां मैंने 5 साल बॉम्बे में काम किया है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ वहां पे आप 50% सैलरी आप अकेले हो तो बचाने की कोशिश करो। इट विल रिक्वायर लॉट ऑफ डिसिप्लिन। पहली लर्निंग जो आपको आएगी, वो सबसे पहली लर्निंग ये आएगी कि बॉम्बे में एंजॉय करने के लिए पैसा उतना नहीं चाहिए जितना अपन सोच रहे थे। मतलब आप लोअर परेल स्टेशन पे भी आप बड़ा पाव खाओगे या समोसा पाव खाओगे तो वो उतना ही टेस्टी लगता है जितना आपको कैलाश पर्वत में बैठ के आप खाओगे। ओके, कैलाश पर्वत में यू वोंट बिलीव 120 रुपए के 6 गोलगप्पे मिलते हैं, वही गोलगप्पे आपके 20 रुपए के आपको मिलेंगे ये सिवड़ी में। तो धीरे धीरे आप सीख जाओगे कि एंजॉय करना है तो आपको बहुत पैसे की जरूरत नहीं है। आपको यूरोप जाके 5 लाख का हॉलिडे नहीं करना है। आप आराम से अलीबाग या काशिद जाके आप वहां पे एक एयरबीएनबी रेंट करके यू कैन एंजॉय। ये लर्निंग अभी आपकी आएगी और आप 50% बचाओ एग्रेसिवली। उसको इंडेक्स फंड में महीने के जैसे सैलरी आती है उसको पहले ही वो कर दो, अलग से निकाल दो, उसको सेव कर लो। ओके, और आप देखोगे इंडेक्स फंड मेरे जो आई एम वेरी बुलिश अबाउट इंडिया स्टोरी फॉर नेक्स्ट 5 to 7 years 10 years। बाय द टाइम यू आर 40 यू विल हैव अ वेरी गुड कॉर्पस एंड यू विल बी वेरी थैंकफुल फॉर दिस एडवाइस कि आपने 50% एज अ डिसिप्लिन सेव करना चालू किया। नॉट इजी, आंखों में आंसू आ जाएंगे कई बार। दोस्त आपके ट्रिप पे जा रहे होंगे और आप उसको कैलकुलेट करोगे, आपको लगेगा यार मेरा तो नहीं बजट बैठ रहा है। दो यू हैव मोर मनी इन योर बैंक देन योर फ्रेंड्स, फिर भी ये फीलिंग आएगी और वो बहुत बिटर फीलिंग होती है। बट ये डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना एंड आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। ओके, और तो और ज्यादा ढेर सारे प्रोडक्ट्स लेने का और स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स लेने का, आपने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम करते हो आप, राइट? Yes, sir, पर मेरा फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं है, टेक्निकल सेक्टर हाँ से हाँ है। हाँ, आई नो। तो आप आपके साथ में बहुत लोग होंगे जो आपको तरह तरह के एडवाइस देंगे, स्टॉक टिप्स देंगे आपको। काफी नॉइस रहेगी बिकॉज आप फाइनेंस वर्ल्ड में काम कर रहे हो। Yeah, that's true. तो वो सब नहीं सुनना है, इंडेक्स फंड में ही लगे रहना है और आप 2 या 3 अलग अलग रखना सो दैट आपका काउंटर पार्टी रिस्क या एएमसी रिस्क कम से कम रहे। और बस आप क्या बोलते हैं, इतने से आपकी लाइफ सेट रहेगी। इससे ज्यादा आपको कुछ करना नहीं। ये यही बोल रहा हूँ, पर्सनल फाइनेंस की जो फील्ड है ना, इतनी सिंपल है। इजी नहीं है क्योंकि इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ डिसिप्लिन। उसको सिंपल ही रखिएगा अगले 10 साल 15 साल। Yes, तो sir, but 50% अपने को सेव करना है। एक इंश्योरेंस प्लान 2 करोड़ का लेना है, मेडिकल लेने की जरूरत नहीं बिकॉज आपकी फैमिली आपके एम्प्लॉयर ने ऑलरेडी दे रखा है और आपकी अभी जॉब छोड़ने की तो कोई तमन्ना है नहीं। बराबर? no, sir, बिल्कुल नहीं है। और बताइए। ओके, तो मैंने एक टिप तो स्टार्ट कर रखा है। द थिंग इज कि जैसे नॉलेज नहीं, आपने बोला इंडेक्स फंड, नाउ आई हैव टू रिसर्च कि कौन सा फंड है, किसमें मुझे पैसे डालने हैं। दिस इज अनदर लाइक पार्ट 2 ऑफ द स्टेप्स, नेक्स्ट स्टेप्स, राइट? कि अभी डालना किसमें। इंडेक्स फंड की, इंडेक्स म्यूचुअल फंड की रैंकिंग आपको मनी कंट्रोल पे मिल जाएगी। वो रैंकिंग शॉर्ट टर्म में देखिएगा, 5 years 10 years की रैंकिंग देखिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। 2 से 3 में डिवाइड कर दीजिए, भूल जाइए। बहुत ज्यादा ट्रैकिंग एरर होता नहीं है, थोड़ा बहुत होता है बट आपके लिए वो कंसर्न नहीं है। आपको तो बस इन्फ्लेशन को बीट करना है। आपका जो मेजर लाइफ में चेंज आएगा वो एग्रेसिव सेविंग से आएगा। और चूंकि आप अकेले हो और आपने लाइफ को काफी एंजॉय ऑलरेडी 10 साल कर लिया, 10 साल जॉब करना बहुत बड़ी चीज होती है। तो बस अब आप बस बचाओ और ये चिंता मत करना कि अगले को 13% मिला और आपको 10% मिला। वो उतार चढ़ाव आते रहेंगे और लॉन्ग टर्म एवरेज सारे इंडेक्स फंड्स का ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगा। तो आप कोई भी अच्छा जो बड़ी एएमसीज हैं जिनको बड़ा पैसा हैंडल करने का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, जिनके प्रोसेसेस ऑलरेडी सेट है, मैं रिकमेंड करूंगा किसी बैंक ब्रांड नेम वाला हो, नाम नहीं लूंगा किसी का, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और 2-3 में डिवाइड करने को इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर बाई चांस किसी ने एक ने किसी भी वजह से अंडर परफॉर्म किया तो आपका टोटल पोर्टफोलियो उतना इफेक्ट नहीं होगा और इंडेक्स फंड में बने रहना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस आपको दी कि आप चूंकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम कर रहे हैं, फाइनेंस वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नॉइस मिलती है, उस नॉइस को नहीं सुनना और इंडेक्स फंड में बने रहना। गॉट इट सर, थैंक यू सो मच। ऑलमोस्ट बोलिए। गुड आफ्टरनून आनंद जी, कैसे हो आप?
मैं अभी अच्छा फील कर रहा हूँ. Good, good. I just, was hearing and I found that, this dilemma of retire, not to retire is just not me. There are quite a few people like me. So I feel, अकेला नहीं महसूस कर रहा हूँ अभी. Sorry, मैं मिस कर दिया क्या? No, I just, was hearing to your space and हाँ. I realized it's just not me who is in the dilemma of whether to quit your job or not to quit. So there are people like me. That was nice to know. तो इसके ऊपर Okay. थोड़ा सा ना मैं I just want to say something on that. बोलिए. As you can, so I'm 42 years old and almost working for about 23 years now. Married. I have a Congrats. daughter of 12 years. 12 years की बेटी है. So for me, financial independence जो मैंने लिख के रखा है. So most of the people they work not because it's their passion. Most of them, 99% people work for their money. And True. so I have come to a situation. So I was out of India for 8 years. तो घूमना फिरना यूरोप हो गया. बेटी भी बड़ी हो गई है थोड़ी बहुत. So she is independent. Then you come to this midlife crisis. Now what? Right? And finding passion and things like that. So from financial independence, जैसे अभी शायद ना Garima was asking one point over there. We discussed about टर्म इंश्योरेंस. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि लोग आके बोलते हैं अरे टर्म इंश्योरेंस आप भी लीजिए और अपनी बीवी को कभी टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए. सो लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दैट टर्म इंश्योरेंस इज नीडेड फॉर द पर्सन हु इज द ब्रेड अर्नर, जिसके पीछे कोई डिपेंडेंट. हाँ, वो शुरू में एक्चुअली हमने डिस्कस किया. पहले 10-15 मिनट. नहीं, नो प्रॉब्लम. तो ये देखिए बहुत अच्छा आपने बात बोली कि मैं आपको बताऊं कि दो चीजें जो बहुत बड़े मिथ है जो यंग लोगों को पता नहीं होती है. मैं भी वैसे बहुत यंग हूँ बट इनसाइट्स काफी बूढ़े लोगों का रहता है मेरे पास. कि पहली चीज तो ये कि एवरीबडी हेट्स हिज जॉब. मेरी बात होती है जो लोग गूगल में काम करते हैं, जो कोडिंग करते हैं, दे लव कोडिंग बट जॉब ब्रिंग्स लॉट ऑफ अदर शिट अलोंग विद कोडिंग, राइट? देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु लव देयर जॉब एज अ डॉक्टर. अभी डॉक्टर ओम प्रकाश हैं हमारे साथ, मैं उनको स्पीकर रिक्वेस्ट में बुलाता हूँ. अभी आप सोचो, दूर से बैठ के देखो तो डॉक्टर से अच्छी जॉब किसकी हो सकती है? ओके, कि वो लोगों की सेवा कर रहा है, लोगों की हेल्प कर रहा है, पैसे छापने वाली मशीन भी है घर पे, सब कुछ है. बट आई नो लॉट ऑफ डॉक्टर्स हु आर नॉट हैप्पी विद देयर जॉब्स, राइट? तो ये मैं आपको समरी बता रहा हूँ आफ्टर टॉकिंग टू वेरियस प्रोफेशनल्स हु आर वेरी वेरी सक्सेसफुल इन देयर जॉब. नोबडी इज हैप्पी विद हिज जॉब. दैट्स यूनिवर्सल फैक्ट नंबर 1. सेकंड, मैंने जितने लाइफ में पैशन मैंने ट्राई किए हैं, इंशाल्लाह बहुत कम लोगों ने ट्राई किए होंगे. जैसे आपने यूरोप की बात करी, मैं 3 बार यूरोप गया हूँ. मैं स्विट्जरलैंड 3 बार गया हूँ. यूरोप में मैंने 14-15 कंट्रीज घूमी हुई है. मैं थाईलैंड भी गया हूँ. घूमना फिरना काफी हो गया, गाड़ी भी बहुत चला ली. लाइक कोई भी पैशन होता नहीं है. पैशन 3 महीने के लिए होता है. पैशन डाइज वेरी नेचुरल डेथ वेरी फास्ट विदाउट द ऑक्सीजन ऑफ मनी. अगर आप पैशनेट हो और आप मान लो पेंटिंग करने में पैशनेट हो, आई मीन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेरी वेरी रेयर सोल जो 12 साल की उम्र में ऐसी पेंटिंग बना देते हो कि माइकल एंजेलो विल टेक अ टर्न इन हिज ग्रेव. वैसा नहीं हो. जो नॉर्मल अपन पैशन की बात कर रहे हैं कि आई एम वेरी पैशनेट अबाउट कुकिंग. जब बोलेंगे ना कि दिन में 2 टाइम बनाना है 365 डेज, वो पैशन जो है वो पतली गली से निकल लेता है. ओके, then the person is no more passionate about cooking. I mean, if I talk to my mom, she has cooked like for 50 years, every single day, both times she has cooked. Okay, and she is an excellent cook, not just because she is my mom. But मैं तो देखता हूँ ना, मुझे पता है. I mean, वो पैशन पतली गली से निकल जाता है when you're dead tired, when you can't stand. तो इसलिए ये दूसरा बहुत बड़ा लाइफ का मिथ है कि आई एम वेरी पैशनेट अबाउट समथिंग और माय जॉब इज नॉट योर पैशन. नोबडीज जॉब इज हिज पैशन. That's a universal fact. Everybody hates his job sooner or later, and no passion remains ignited forever, except like barring 0.001% of athletes. Maybe for Michael Phelps, his passion might be swimming, and then he's having so many gold medals and all that. But I'm talking about general public. Okay, तो ये पैशन वाली बात हो गई, जॉब वाली. अभी आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना. तो सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान इट दैट वे. मेरी भी प्लानिंग वही है. मैं भी जॉब कर रहा हूँ बट मेरी प्लानिंग है कि 1-2 साल में 3 साल में आई विल क्विट माई जॉब. लेकिन उसके पहले सारे वेरिएबल्स का हैंडल होना, अगले 20 साल 30 साल का सारा कैश फ्लो सिक्योर होना, सो दैट जॉब से फेड अप होना हमारी एक चॉइस हो सकती है, हमारी एक कमजोरी हो सकती है. आवर फैमिली शुड नॉट सफर बिकॉज ऑफ दैट.
उसके लिए पूरी प्लानिंग करना, इट टेक्स लॉट ऑफ करेज कि आप इम्पल्सिवली ना छोड़ो, आप उसको अच्छे से प्लान करो, राइट? तो इसलिए मुझे लगता है कि 20 to 50 times annual expenses in India, on a safe side 50 times, on a little aggressive side 20 times of annual expenses is required for a person to happily retire. जैसे अगर किसी के एक्सपेंसेस 10 लाख है, उसका 50 टाइम्स 5 करोड़ हुआ, 5 करोड़ का बैंक बैलेंस अगर है, एंड दैट शुड नॉट इंक्लूड द हाउस इन विच यू लिव इन, that should not include any kind of loan or anything. अगर 5 करोड़ का बैलेंस है, then a person can think of retiring in a smaller city, not in Bombay and all. एंड दूसरी चीज की, रिटायर होने के बाद भी जॉब जो होती है वो बहुत बड़ा आपको एक रूटीन देती है. मैंने कोरोना में ये चीज फील करी कि 2 साल में वर्क फ्रॉम होम किया, तो सुबह उठे और अभी आंख खुल भी नहीं रही और सीधा कंप्यूटर ऑन किया और काम करना चालू कर दिया. बाथरूम वगैरह भी बाद में जब ब्रेक आता है तो उसमें जाते हैं, राइट? वो अल्टीमेटली बहुत मजा नहीं देती. सो जॉब ऑल्सो गिव्स यू अ काइंड ऑफ अ रूटीन, a kind of a discipline which is very necessary beyond a point. तो इसलिए financially independent होने के बाद जब when you don't need the money, तो एक छोटा सा ऐसा एक वेंचर होना चाहिए जिससे आपको पैसा भी आता रहे, रनिंग खर्चे आधे या 1/3 या 2/3 या पूरा महीने का निकलता रहे उस वेंचर से, वट एवर यूर पैशनेट अबाउट, और साथ में एक डिसिप्लिन भी डेवलप हो जाए. तो ये मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में. बोलिए. I think we both are so much on the same page. Yeah. So जो आपने कहा planning रहना चाहिए, should not be a knee-jerk reaction that someone quits his job. So what, and I'll just try to say what I have done. So I have kept a track of my expenses for the last 4 years, every penny, and I have inflation, my personal inflation data with me. So it's, you know, if I can say my स्कूल का पकड़ लो, इंश्योरेंस का पकड़ लो, बाइक का पैसा दिया पकड़ लो, गाड़ी दिया, गाड़ी को धोने वाले के लिए पैसा दिया है तो वो भी पकड़ो, हर एक पैसा का अगर करके. सो फॉर एग्जांपल इफ आई से ओके माय मंथली एक्सपेंसेस इज अराउंड 80,000 एंड विद द इन्फ्लेशन ऑफ 7%, तो और मैंने क्या किया, मेरा जो सरप्लस है उसको जो बढ़ेगा उसको मैंने इक्वल टू इन्फ्लेशन का, वेरी कंजर्वेटिव नोट. सो माय मनी विल ग्रो ओनली इक्वल टू द इन्फ्लेशन. सो with that, when I extrapolate it, and if I say okay, I quit my job today, then I don't have to worry anything till the age of 75. After the age of 75, maybe my cash is burn out, and then I have to look out for my non-movable assets. And as you might have seen, I do a trading as well, and so usually तो मैंने उल्टा किया है. So I know 70,000 मुझे हर साल हर महीने लगते हैं. मार्केट से हम क्या जो है आप अपने रिस्क प्रोफाइल से कितना कमा सकते हैं. एंड विद दिस ऑप्शन सेलिंग एंड अदर थिंग्स टू अर्न 2% बाय सेलिंग ऑप्शंस व्हिच आर फॉर व्हिच आर द ऑप्शंस व्हिच पीपल आर टेकिंग फॉर देयर हेजिंग. ऐसे करके भी ना 2 साल से तो मैं वो कर रहा हूँ, आराम से 2-3 टका बन जाता है. तो अगर 60-70 हजार के लिए तो मुझे कितना चाहिए, 29 लाख चाहिए. चलो भाई 30 लाख उसमें डाल दिया. सो आई हैव सीन दैट लास्ट 3 years आई एम ऑलमोस्ट मेरे घर का खर्चा क्या उससे 2 या 3 गुना जो है it comes out of my trading. So if I consider, if I even trade for 10 years, then जैसे आपने कहा 85 years तक तो आराम से वो निकल जाएगा. So I completely agree with you. So इतने डिटेल में हर किसी को प्लानिंग करना चाहिए, कैश फ्लो का आइडिया रहना चाहिए कहाँ तक आ रहा है, तभी ही वो ले सकते हैं. And the second one, again, so much agree with you. The thing that is not letting me take the decision is not about money now. To know what I have to do after quitting my job, घर पे बैठ के क्या करूँगा मैं, ट्रेडिंग ही करता रहूँ. ट्रेडिंग इज अ वेरी लोनली जॉब. सो यस, तो जिसके लिए उसी के लिए मैंने कहा कि पैशन को ढूंढो ताकि कुछ रहे जो आपको जो ऑफिस में आप करते थे वो नहीं कर पा रहे हो, लेकिन लोगों को मिलना जुलना होता रहे. और पैशन के बारे में आपने बात किया. मैं 8 साल जर्मनी में था और मैंने वहाँ पर किसी भी ऐसे आदमी को नहीं देखा जिसको पैशन नहीं है. कोई स्कीइंग कर रहा है, कोई बाइकिंग कर रहा है, कोई अपना खुद का beer brew कर रहा है. Everyone has something, and whenever they asked us, hey Suresh, what is your passion? I used to really struggle to say what is it. मूवी देखना पैशन नहीं है, क्रिकेट देखना पैशन नहीं है. So वो शायद शायद वहाँ पर उन हर किसी को कुछ ना कुछ है, यहाँ पर वो मिसिंग है. I think that is something which I am looking at, and completely agree with you for the points what you just said. तो अभी कहाँ रहते हो? अभी कौन सी सिटी में रहते हो? अभी मैं I'm actually a South Indian, but I'm in Pune for a long time now. So, like, South Indian is a very okay. I'm from Karnataka, Dharwad.
but I'm Okay. almost settled in So Pune. you like Pune much more than Dharwad. I have just flown with the wind, job मुझे कहाँ पे लेके आया, मैं यहाँ पर आकर रुका हूँ, यहीं पर अभी 2-3 घर ले लिया, so it's all okay now. So my wife likes it, my daughter has done her schooling here. Wife is working right now? No, she is a homemaker. So what is your schedule like? You get up, you change your 3 साल से वर्क फ्रॉम होम हूँ, वो घर पे देख देख के बीवी अभी 1-2 महीने से काम करना शुरू करी. She said, okay, you are not going, let me go out now. Yeah, I get it. So what I would tell you is, I went through a similar dilemma. You instead of having 3 houses, I'm just giving you a little long term advice. You make your present house a little bigger and make a separate office room, so that when you are working, see, any work will require a lot of concentration. We don't realize, but it affects our productivity. So if you decided to work from home for next 50 years, make a separate office, and during those office hours, try to stick to the same discipline which any employer demands from us. You are your own employer, so generally you would have figured out all the other aspects of finance, but this behaviorally, I'm telling you, a lot of lawyers do it, a lot of doctors do it, that they run their clinic or the practice from their home. But if you go to their home, they will have a separate office. They will sit in that office, they will do the work. We as newly professionals, finance or IT and all, we try to do work from home from our dining table or from our bedroom. That's a wrong approach, and that leads to a lot of burnout. So my humble advice to you would be, in due course of time, make a separate office, physically separate office within the same premises, because I don't want you to commute unnecessarily. And then you'll see that your productivity also will go up. Your wife will also be a little more happy when she sees you once in a while rather than seeing you every minute of the day. And yeah, and rest, I guess you're sorted. You have 3 houses in Pune, and Pune food is awesome. So probably I'll visit Pune, and we can go for a food tourism. Let's connect, and I think we both have a lot to share. And Sure. I'll just also maybe request or encourage you to, लोगों को ना ये सब money करते हैं. Someone, believe me, when you have money ना, अभी हम job के बारे में बात कर रहे थे. I was super passionate about my job. After in 22 years, I've changed only 2 companies. You can imagine, and I have grown excellently, I can say. लेकिन जब आपका पेट भर जाता है और जो आप चीज पसंद कर रहे थे वो धीरे धीरे आपको पसंद नहीं आना लगता है. समथिंग व्हिच हैज टू जब मैं मैकेनिकल इंजीनियर, जो भी मैं पार्ट बनाता हूँ, ये बनाता हूँ, जब हाथ में पकड़ता था ऐसा लगता था इट्स लाइक माय बेबी. आई यूज्ड टू बी सो पैशनेट थिंग्स, बट वो पैशन बर्न आउट होता है जैसे जैसे आपका पेट भर जाता है. एंड कंटेंट जो है ना, सो people think और पैसा आएगा तो कंटेंट. Believe me, it's not that. Not the richest person in the world is not the happiest person in the world. I think there's a lot of work that humanity as we humans need to do. Maybe Anandji, I know you should also conduct space on that. Maybe it can be on spirituality, not spirituality, mindfulness and things like that, which can be also very interesting. Yeah, I keep doing that actually, but off late I get dissatisfied, or as you say, you can call it a burnout or whatever, because I what I imagined initially, the idea of doing spaces or being active on Twitter was that all along my friends or my well wishers used to tell me that I have decent insights about various topics of the world, and then I started doing it, and I got decent traction as well. But for every well wisher or a follower or someone who appreciates it, I started getting 10 people who are anti it, trollers and things like that. And the thing is, trollers are very vocal, and people who are my silent admirers, like they are literally silent. So if I give you today's example of जिंदगी में है सर, कोई भी आपको प्यार करेगा ना, नहीं बताएगा, दिल में छुपा के रखेगा. थोड़ी सी गलती करो. तो आज का आपको एग्जांपल, only 11 people have retweeted, right? More than 200 people have listened to it, and some of them are listening for hours and hours. But see, so my passion, it used to be, it is passion to talk about various topics, but at the end of it, the everybody expects some reward. So the reward is either somebody comes and says is vocally that आज तुमने बहुत अच्छा काम किया. 2-3 people, 5 people do it once in a while, but that kind of mass following that I was expecting, it never came. And I attracted a lot of trolls. I mean, I'll tell you, I did one fixed spaces on beauty of fixed deposit or fixed income, and it was a fairly complicated topic, and
I'll not praise myself, but I explained it really well. And then I compared it with Sovereign Gold Bond, or I compared with NCD and things like that. People took it out of context. That trolled me. So I always think, what is the point? Why am I doing it? See, I mean, now that we are talking about the same topic, I'm rich enough. I'm not making any money from my spaces, right? I do it for appreciation. I don't get it, and I get a lot of trolling out of context. People make fun of me. So then it all looks very pointless. So that's the thing. And I creep a lot about it. I mean, you might be new to this, but I'm just telling you the background. this is what I say. रोटी कपड़ा मकान हो गया तो नेक्स्ट आता है फेम. आपने कहा ना कि अप्रिसिएशन के लिए लगता है, तो उसको कैसे एड्रेस करें? So I think नहीं हो सकता. I mean, that is the reason I deleted WhatsApp, because I used to give this kind of ज्ञान to my family WhatsApp group as well कि ULIP नहीं करना है या NCD नहीं करना है या all these advice, and then some uncle used to give some out of context video from WhatsApp University and things like that. So I deleted WhatsApp here. If I'm not appreciated for whatever I'm doing, then why to be there? Then Twitter generally is a lot of sane people are there. Like 90% of the people are really sane. Coming to Twitter and logging for personal finance itself shows that you are in top 1% when it comes to caring about your future. But the problem, as I said, which I didn't know earlier, that the admirers are like so super silent that you will never know, and trollers are so vocal that it hurts you. Anyways, moving on. Thank you for your time. Yeah. रवि जी आपके पास आ रहा हूँ. आप, मुझे पता है आपने बहुत देर से हाथ खड़ा किया हुआ. यंग हैं, थोड़े उम्र से भी यंग हैं, तो इनको टाइम देते हैं. यंग जी बोलिए. हाय सर, आदित्य देसाई. आदित्य देसाई. आदित्य शर्मा सर. आदित्य शर्मा, तो आप ही वो शर्मा जी के बेटे हो. बोलिए. तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर लेटिंग मी इन. सर मैं अभी बैचलर्स कर रहा हूँ. आई एम इन थर्ड ईयर ऑफ माय कॉलेज और मैं 20 साल का हूँ अभी. तो सर मेरे को 3 साल हो गए हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हुए. नहीं, बेसिकली लाइक पहले सीखना ही चल रहा है, अभी भी कह सकते हैं. तो सर अभी एक्चुअली जो मैं पूछना चाहता हूँ वो है कि अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले आई ज्वाइंड कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. सो पापा ने कहा कि पेपर की तैयारी करो, तो उनका मन रखने के लिए आई स्टार्टेड. तो बट सर अभी मेरे साथ ये है कि जो सेटअप मैंने इतने टाइम में अपने लिए तैयार किया है वो एक्चुअली मेरे को मॉर्निंग में ट्रेड करने के लिए मॉर्निंग में ट्रेड करना पड़ता है, और उस टाइम पे मेरी क्लासेस होती हैं, कोचिंग क्लासेस. तो अभी मेरे को वो जम नहीं रहा. और मैं यार देखो यंग भैया, क्या कौन सा शर्मा जी, नाम क्या, पहला नाम क्या? आदित्य शर्मा. आदित्य. जिंदगी के 2 सच समझ लो आपकी उम्र में. क्या उम्र है आपकी? 21 साल? 20 साल? 20 साल सर. 20 साल की उम्र में 2 सच बहुत जरूरी है. हाँ जी सर. एक तो गर्लफ्रेंड आपका दिल तोड़ेगी. तोड़ दिया सर. तोड़ दिया ना. देखो, एक सच तो हो गया. और दूसरा, आप माँ बाप का दिल तोड़ोगे. दोनों होना. यस सर. सूनर द बेटर. ओके. तो माँ बाप के कहने से कोई कंपटीशन की तैयारी मत करो. कंपटीशन की तैयारी करनी है अगर, तो उसको अच्छे से सोच समझ लो. 20 साल की उम्र तक अपने को समझ में आया था कि पढ़ाई में दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है. बैठो एक दिन अच्छे से और खुद से सवाल करो कि इस पढ़ाई में कोई भी कंपटीशन निकालने के लिए 4 से 5 घंटा डेली तो पढ़ना पड़ेगा. तो चाहे वो ट्रेडिंग हो या वो इन्वेस्टमेंट हो या गर्लफ्रेंड हो, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम. मेरा ऐसा है, मैं कोचिंग इस टाइप से कर रहा हूँ, लाइक सुबह बैग उठाया, गए, घर रखा, वापसी. नहीं, वो दिमाग में कुछ और जा ही नहीं सकता है. वो बाबू, सोना, राजा, वो सब बंद करना पड़ेगा. ट्रेडिंग भी बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि दिमाग को फोकस चाहिए. इंडिया में अनफॉर्चुनेटली कोई भी कंपटीशन निकालना इज अ सिंगल डिवोशन चाहिए होता है. तो इसलिए वो सब छोड़ना पड़ेगा. ये डिसाइड, मैं नहीं बोल रहा छोड़ना है, एक ही जिंदगी है, इसमें सब कुछ करना है. मैं बहुत लोगों को देखता हूँ बिना मन से पढ़ाई करते हैं, बिना मन से कोचिंग जाते हैं. मैंने कोचिंग में पढ़ाया हुआ है, तो मैं बता रहा हूँ, आधेतर लोगों का अगर गिवन अ चॉइस, दे विल नॉट कम टू कोचिंग. या तो माँ बाप का मन रखने के लिए, या दोस्तों के साथ तफरी करने के लिए, या समाज को दिखावा करने के लिए कि हाँ मैं तैयारी कर रहा हूँ, आते हैं. डोंट डू दैट मिस्टेक. इट विल पुट योर पेरेंट्स बैक फाइनेंशियली. आजकल कोचिंग कोई सस्ती नहीं रह गई है, और आपको करियर में भी पीछे ले जाएगी. इसलिए वो मत करो. अगर मन नहीं है तो एक दिन एनालाइज कर लो, उसको फिर 7 दिन बाद रिविजिट करो कि यार पढ़ना है क्या, वाकई में पढ़ना है, क्योंकि 90% लोगों का मन नहीं लगता पढ़ने में. तो अगर मन नहीं है पढ़ने का, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है. जस्ट टेक अ हार्ड स्टैंड. माँ बाप का दिल तोड़ दो.
ओके ठीक है, जैसे होते हैं ना कांच की एक प्लेट को गिराते हैं डाइनिंग टेबल की हाइट से और पड़ाक से टूट जाती है, जल्दी तोड़ दो, बोल दो मेरे को अब नई पढ़ाई करनी है। अगर नहीं करनी है तो करनी है ना, तो नहीं, अलग सीन है, उसके लिए अभी आ रहा हूँ। नहीं करनी है ना, हाँ जी, बस वही है मुझे बैचलर्स। तुम्हारा प्रोफाइल पिक्चर से लग गया था। तो देखो, तो फिर पढ़ाई का वो कर लो। अब तुम्हारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए टू सिक्योर अ जॉब, ठीक है। ये ट्रेडिंग वगैरह जो है ना, ये वही है जो वो शोले वाला सीन याद है, जो अमिताभ बच्चन जो है वो वीरू का रिश्ता लेके जाता है मौसी के पास। यस सर, यस। तो ट्रेडिंग भी वैसे ही है कि जब कभी किस्मत अच्छी हो जाएगी तो बन जाएगा, फिर जब ट्रेडिंग अच्छी होने लगेगी तो नाचने वाले के पास जाना बंद हो जाएगा। तो इट्स नॉट एट एन एज ऑफ 20 इट्स नॉट अ वायबल ऑप्शन। आपके पास लाइफ का एक्सपीरियंस भी उतना नहीं है और आपके पास ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस भी उतना नहीं है। सारे सेटअप 3 महीने 6 महीने के लिए वर्क करते हैं। वंस यू स्टार्ट रिलाइंग ऑन दैट, द मार्केट आपको मतलब अच्छे से काट देता है। दिस हैज हैपेंड, आई हैव सीन सो मेनी टाइम्स। तो माय हम्बल एडवाइस टू यू इज, आप इंजीनियरिंग ऑलरेडी कर रहे हो, जॉब मार्केट बूमिंग है, कैसे भी करके बिग बोरो और स्टील यू सिक्योर अ जॉब। मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड 4 घंटे का स्पेसेस किया था कि अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है, ग्रेजुएट्स थे 3 लोगों को मैंने बुलाया था जिनको हेज फंड्स में या HFTs में या प्रॉप फर्म्स में जॉब चाहिए थी। तो 2 लोगों ने बिल्कुल स्क्रैच से एक्सप्लेन किया था कि कैसे आप लिंक्डइन पे रिज्यूमे भेजते हो, कैसे कोल्ड कॉलिंग करते हो, और उनकी जॉब लगी, वो 4-5 साल से काम कर रहे थे। तो आप बिल्कुल उस जाके उसको देख लो। और हाँ, और नहीं तो आप तरीके लोगों से पूछो कि जॉब कैसी चाहिए। जॉब ही आपको करनी है, जैसे इंजीनियरिंग कंप्लीट हो यू शुड बी रेडी टू हैव अ जॉब। जब आप जॉब आपके हाथ में आएगी, बाकी की चीजें आपको अपने आप क्लियर होनी चालू हो जाएंगी। तो ये आपकी इमीडिएट प्रायोरिटी सेट हो जाए। ट्रेडिंग को एज अ साइड में रखो आप। फर्स्ट थिंग शुड बी, जो अभी रूटीन एजुकेशन है वो आप कंप्लीट करो। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ ट्रेडिंग बिल्कुल बंद करो, क्योंकि रूटीन जॉब के साथ ट्रेडिंग करी जा सकती है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के साथ नहीं करी जा सकती, लेकिन रूटीन जॉब के साथ करी जा सकती है। तो जो रूटीन जॉब है उसको आप रूटीन ट्रेडिंग करते रहो और अपनी रूटीन पढ़ाई करते रहो। मेक श्योर यू आर नॉट फ्लंकिंग इन एग्जाम। एग्जाम में फेल होना कोई ब्यूटी नहीं है। यस सर, बिल गेट्स भी कर रहा हूँ सर साथ में साथ। एक्चुअली मेरी क्लासेस कोचिंग कॉलेज क्लासेस लाइक इवनिंग बैच होता है 2 o'clock। कोचिंग की फीस कितनी है? सर कोचिंग 75 थी सर। 75 मतलब दे दी, हो गया उसका मैयत निकल गई उसकी। यस सर, वो 1 टाइम पेमेंट था। तो यार ये तुम्हें मेरी एडवाइस पहले मान लेनी चाहिए। अब से कोई कोचिंग नहीं, ओके, नो कोचिंग, जॉब यू हैव टू डू। पापा को कहता कि मेरे को यार ट्रेडिंग करने दो, इससे अच्छा लाइक 75 ट्रेडिंग में नहीं, इंडेक्स फंड्स में भी डाल दूंगा तो भी फायदा ही होएगा। लाइक क्यों वहां पे डाल रहे हैं? तो वो कहते हैं नहीं यार, पापा के लिए वही एक लॉटरी टिकट है ना, पापा के लिए आप एक लॉटरी टिकट हो। अब वो स्क्रैच किए पड़े हैं, पहला डिजिट नहीं निकला, दूसरा डिजिट, अब आखिरी डिजिट भी नहीं निकलेगा, तो ये डाल दिए उन्होंने कोचिंग में पैसे। पापा के लिए तो आप रिटायरमेंट प्लान हो, राइट? तो इसलिए उनके सारे सपने तोड़ दो अभी के अभी, बाद में तोड़ने से अच्छा है। और बता दो कि मुझे ट्रेडिंग करनी है, और ट्रेडिंग बहुत बड़ा कैपिटल लेके मत करना, जो भी बेयर मिनिमम कैपिटल है उससे शुरू करो, और साथ में अपनी डिग्री कंप्लीट करो, एक जॉब लो। आपकी जिस दिन जॉब लगेगी ना, तो उनका एक आखिरी डिजिट तो लग जाएगा पापा का, ठीक है? लॉटरी में 10 डिजिट होते हैं ना, 11 डिजिट, उनका आखिरी डिजिट लग जाएगा। तो जॉब ढूंढ लो, वही एक आपके मम्मी पापा को एक खुशी होगी, और दूसरी जब आपकी शादी होगी, तीसरी जब आपके बेटा होगा, ठीक है, या बेटी भी हो सकती है, बट उतनी खुशी जनरली होती नहीं इंडिया में। तो आई एम जस्ट बीइंग रियलिस्टिक। तो नॉट दैट मुझे बेटी हुई थी तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, तो डोंट टेक इट पर्सनली। यस सर, टाइम चेंज। सो इसलिए आप पहली जॉब ढूंढ लो, जॉब करो। और जॉब लगना इतना इजी, इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना लोग सोचते हैं, ओके? कोल्ड कॉलिंग बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे खुद इस टाइम 2 लोगों की जरूरत है जो यंग है, जिनके पास क्वालिफिकेशन है। मैं पूछ के ट्विटर पे भी थक गया। पीपल डोंट नो हाउ टू अप्रोच फॉर अ जॉब, ओके? यस, ठीक है। तो ये दैट इज माय एडवाइस। यू हैव एनी फॉलो अप क्वेश्चन? नो सर, दैट्स ओके। हाँ, रवि। आनंद सर कैसे हैं? बढ़िया है। आपकी प्रोफाइल पिक्चर देख के ना अंदर से ठंडा ठंडा लगता है। ये ना आपका वो मैंडेटरी प्लग है मेरे स्पेस पे आने के बाद। ये नहीं, ये प्लग व्लग नहीं है, ये मतलब सोचिए महिलाओं को कितना अपील करता होगा। मतलब करेंगे महिलाओं तो गलत बोल दिया, मतलब बालिकाओं को कितना अपील करता होगा कि आपके क्या बाल वाकई में इतने लंबे, क्या कंधे तक हैं क्या? नहीं, पहले ज्यादा थे, अभी तो कटा दिया। देखिए, गुरलीन कुछ कहना चाहते हैं आपसे।
नहीं नहीं तो दो तीन चीजें आई थिंक वो वुड लव टू हियर इफ यू कैन टेक डॉक्टर वेलुमनी आई थिंक इज द मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन टू स्पीक ऑन कहाँ पर है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नीचे फाउंडर ऑफ थायरोकेयर हाँ नहीं नहीं विकास इफ यू कैन सी देन ऐड ना विकास गुरलीन प्लीज ऐड आई कांट सी So Anand sir, I think आप वो job के बारे में बात कर रहे थे, and I think I have something to share probably that might help other folks from my age. So I look forward to going to office every day, and I absolutely love what I do. So partnership industry as a whole is pretty much sexy, and I think very limited. ज़्यादा लोगों को पता नहीं है. Been part of startups like Zomato in the past. Same what Textbook has been driving. I cannot vouch for future. Say down the line, 5 year, 10 years scenario would be the same. But I think I have rarely came across people who look forward to getting to their cabin every day, meeting to new folks, and shipping things and products. So I think what you said, 0.01% of people who feel blessed to do what they want to do, and this is something I've been doing for like some 5-6 years for now. I think as far as distractions are concerned, आपने WhatsApp uninstall किया, मेरे को शायद 2 साल से ज़्यादा हो गया. I'm not even using WhatsApp, right? So it becomes really difficult personally and professionally for people to keep a track. सारे ऐप का ना notification off रहता है except email को छोड़ के. And trust me, I totally second when you said that you need a separate workplace, no matter where you are, home at office. It boost your productivity like anything. You have to give this like utmost thought. I have seen this change कि एक मेसी वर्क प्लेस होना और एक अलग से जो है रूम होना आपके काम के लिए ना बहुत बहुत जरूरी है. तो these has been like my observation, and I think as far as financial independence are concerned, I can pretty much say that even if I don't work for say next 5-10 years, I'll be in the same boat. My lifestyle won't be impacted, but at the end of the day, I honestly feel it's matter of feeling content, and what exactly you're doing apart from your job. So I am active into consulting, I am active into couple of other initiatives that makes me money, even more than my full-time gigs, right? So at the end of the day, it's about feeling content and how will what you are looking from your life versus setting a benchmark for yourself versus comparing that what others are doing. So from my limited understanding, this is what I have felt. But I do have a direct question for you, Anand sir. So you have been quite active into the trading and investing space. At the same time, you said that you have a full-time job too. Any plans like after taking complete financial independence and quitting your job, क्या कर रहे होगे आप उसके बाद में? क्योंकि वो वाइड सा लगता है कि यार अभी तो कुछ कर रहे थे और अभी उस रूटीन में तो बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है. देखो ये बहुत रेयर होता है, बहुत 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 ज्यादा रेयर होता है. मतलब एक उल्का पिंड आके अर्थ को हिट कर दे, उससे भी ज्यादा रेयर होता है कि कोई मेरी जिंदगी में इंटरेस्ट ले. तो आई एम रियली टच्ड एंड एट ऑल द राइट प्लेसेस. ओके, सो कि आपने इंटरेस्ट लिया तो बहुत अच्छा सवाल किया कि मैं क्या करूंगा एक वन से क्विट. सो देयर आर वेरियस प्लान्स टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू. पहले तो मुझे सोशल मीडिया बहुत अच्छा लगता है लोगों से कनेक्ट करने का. ओके, तो अभी मेरे हर एक शहर में एक एक दो ऐसे अच्छे दोस्त बन गए जिनसे मैं मिल सकता हूँ. तो मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, तो वो एक ऑप्शन है कि जो अगर मनी इज नॉट अ कंस्ट्रेंट सो आई एम पैशनेट अबाउट इट. ओके, पहला तो वो है. फिर दूसरा ये है कि कुछ ना कुछ तो मैं सोशल मीडिया को हार्नेस करता रहूंगा विच विल गिव मी इनकम एज वेल. तो जो मैं अभी स्पेसेस फ्री में कर रहा हूँ और शायद मेरे काफी साइलेंट एडमायरर्स हैं जैसा लोग क्लेम करते हैं, तो प्रॉब्ली आई विल स्टार्ट डूइंग पेड प्रवचन कि वो लोगों को एडवाइस देना, लाइफ एडवाइस, फाइनेंशियल एडवाइस, लव एडवाइस, वो भी है. और मैं जैसा कि बहुत लोगों को पता होगा कि मैं काफी ज्यादा एक्टिव ट्रेडर हूँ. मतलब दिन में 250-300 मेरे एक अकाउंट में ऑर्डर्स फिल होते हैं. तो वो भी मैं मेरे को एटलीस्ट काफी बिजी रखता है थ्रू आउट द डे. कई बार तो रात को 3 बजे भी नींद खुल जाती है और मैं अपने ओपन पोजीशन टैली करता हूँ. आई विल नॉट लाई अबाउट इट, इट्स नॉट अ गुड थिंग, बट इट ऑक्यूपाइज माय माइंड ऑल द टाइम. तो बोर होने का तो सवाल ही नहीं है. फिर मैं अगर मनी इज नॉट अ कंस्टेंट, जैसे भी मैं अभी अपने दोस्त को बोल रहा था विरल को कि मैं बहुत कंप्यूटर गेम्स बहुत खेलता हूँ. तो अभी धीरे धीरे मेरा बेटा भी खेलना शुरू किया है, तो उसके साथ दिन में 4-5 घंटे जो है मैं फैमिली ट्रेडिशन को कंटिन्यू करूंगा. और मतलब मैं अपनी मॉम के साथ खेलता था मारियो वगैरह, तो अभी आई विल प्ले विथ माय सन 4-5 घंटे, वो भी करेंगे. और आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माइग्रेटिंग आउट ऑफ इंडिया. तो प्रॉब्ली आई विल गो गेट सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, वो भी एक ऑप्शन है.
ये सारे ऑप्शन में कॉमन चीज ये है कि राइट नाउ मनी इज द कांस्टेंट. तो वंस आई हैव लॉट ऑफ मनी तो इसको भी फुलफिल करेंगे. और डेफिनेटली आई विल नॉट वर्क फॉर एन एम्प्लॉयर बिकॉज वर्किंग फॉर एन एम्प्लॉयर आपकी जिंदगी को काफी कुंद कर देती है, आपकी आकांक्षाओं को काफी मार देता है. तो when if you're master of your own time, there the beauty of life it starts. तो ये सारी चीजें करने का है. मैंने ट्रैवल तो बता ही दिया आपको. और सो प्रीटी मच आई बी, मुझे टाइम कम ही मिलेगा. मतलब अभी से मैं ज्यादा बिजी हो जाऊंगा क्योंकि अभी मैं बहुत चीजें कर नहीं सकता हूँ. मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मैं लाइक राइट नाउ आई कांट शो यू माय फेस, राइट. आई एम एनोनिमस, तो प्रॉब्ली मैं यूट्यूब वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मेरा खूबसूरत चेहरा भी दिखेगा, तो उससे भी काफी ट्रैक्शन मिलेगा. और आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दैट एज वेल. और प्रॉब्ली मैं पॉडकास्ट करूंगा जिसमें आप मुझे भी देख पाओगे. तो वो सारा अभी मुझे बिजी रहे, तो अभी से मैं ज्यादा ही बिजी रहूंगा ऐसा मुझे लगता है. और मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं, आई मेट बी रॉन्ग, कि जो मैंने जिस तरह से सोचा था अभी से मैं ज्यादा पैसे भी कमा लूंगा. बिकॉज सोशल मीडिया is a great vehicle to make lot of money if you know how to do it right. तो जैसे मुझे लगता है कि अगर मैं पॉडकास्ट करूं रेगुलरली तो I can be very good at it. Let's see. Unless we try, we don't know. Sir, I think I can add on that. Have around 59 around 60K followers on LinkedIn और अभी 41 है. आपसे कम ही है, बट मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ, आप उतने पैसे कमा सकते हो जितना आपने सोचा नहीं है. I mean, on an average, the fresher starting their career with Infosys, TCS kind of company, 4-5 LPA. If you are consistent enough and have a quality, I think, followership around, आप उतना पैसा शायद एक महीने में कमा सकते हो. नॉट इवन टॉकिंग अबाउट कि कितना आसान या कठिन है, बट हाँ स्कोप है. इससे बड़ा वैलिडेशन मैं आपको नहीं दे सकता. तो बिल्कुल बिल्कुल आपसे सीखेंगे. और आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपकी शादी हो गई है? नहीं हुई है, अभी 2-3 साल टाइम. अच्छा, आप 2-3 साल मतलब ये क्या, आप तो ऐसी बातें कर रहे हो, मतलब मैं बिल्कुल भी सेक्सिस्ट नहीं हूँ, बट आप लड़कियों वाली बात कर रहे हो. 2-3 साल है मतलब यार, इसलिए है ना, इसका क्या मतलब है? लोग तो 40-50 में भी शादी करते हैं. एक्सपेक्ट नहीं करता ना कि मम्मी घर पे पूछ रही है वही चीज और फिर यहाँ पे स्पेसेस में आनंद सर भी सेम सवाल पूछ रहे हैं, तो थोड़ा दिक्कत आ जाता है. नहीं आनंद सर तो वही मोहल्ले वाले अंकल हैं, वो तो पूछेंगे क्या बेटा शादी नहीं हुई तुम्हारी, क्या हो गया? तो लाइक 2-3 साल है मतलब. you're what, 23 or 22? I'll be 25 next year. तो उसके बाद 28 में आप शादी करोगे, मतलब ये है कि 22 में नौकरी, 28 में शादी. नाइस. तो मम्मी ने लड़की देखनी चालू कर दी? ऑलरेडी है सर. मतलब मॉम डैड रिश्तेदार ने एक्टिव पाइपलाइन बनानी शुरू कर देते हैं द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग योर फर्स्ट जॉब. हमारे यहाँ आई थिंक यूपी बिहार में ना ऐसे ही होता है कि आप कहाँ के रहने वाले हो? यार मेरा होम टाउन इलाहाबाद में. आनंद सर, इलाहाबाद में तो मेरा भी होम टाउन था, तेलियरगंज, रसूलाबाद. इलाहाबाद में आप कहाँ से हो? सिविल लाइंस में है. फिर हमारा वो एक पैतृक घर है मिर्जापुर में, वासलीगंज. मिर्जापुर, बताइए. तो आपको अपनी होने वाली पत्नी में क्या क्या खूबियां देखने चाहते हो? ये पता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ में आनंद सर का ये साइड प्रोजेक्ट है जिनको नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने ऐसी लड़की से शादी कर ली जो फाइनेंशियली बहुत एक्सपेंसिव है, तो आपके तो सारे स्टार्टअप, मतलब एक अलग ही स्टार्टअप शुरू हो जाएगा आपका. तो फिर तो करेक्ट. सो सर अभी के लिए तो आई थिंक बहुत छोटी सी एक्सपेक्टेशन है कि ITR फाइल करना आना चाहिए. 31 लास्ट डेट है. तो ITR मतलब वो ITR फाइल करना आना चाहिए, कैसी बात कर रहे हो? मतलब उसका ITR तो आप कम से कम फाइल करोगे. खुश हो जाऊंगा मैं. मतलब यहाँ तो लोग नाखून भी फाइल कर रहे हैं, आप ITR भी नहीं फाइल करोगे? नहीं जस्ट किडिंग. CA प्रिफर्ड है, मतलब ऑलरेडी एक्टिव पाइपलाइन में CA है तो चल जाएगी. CA या CS चाहिए आपको? CA. ओके, तो बहुत यूनिक रिक्वायरमेंट. अच्छा, बहुत ओके. चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए आपको. ओके, और क्या चाहिए? वो तो आप टैक्सेशन साइड में देख रहे हो या आप ऑडिट साइड में देख रहे हो? दोनों सर, दोनों. ओके, मतलब ये ओके. और क्या क्वालिटी चाहिए आपको अपार्ट फ्रॉम दैट? यार मतलब थोड़ा सा आई थिंक डिफिकल्ट टास्क है. नॉट श्योर इफ टू रिलेवेंट इन द करंट टाइम, बट नहीं अरे मेरे स्पेसेस आप पूरा अटेंड नहीं करते, इसीलिए मैं आपको डरता हूँ आपको को-होस्ट बनाने के. आपको को-होस्ट बनाने में बहुत मजा आएगा, लेकिन आप फिर जल्दी कट लेते हो. आप बताओ, अभी बताओ, मेरे पास बहुत टाइम है. नहीं मैं तो बस यही बोल रहा कि वो मॉडर्निज्म और आई थिंक ग्लोबलिज्म के साथ में वो आपने ना समाज, संस्कृति और अध्यात्म से जुड़े होने वाला इंसान अभी बहुत कम है. सो आई थिंक डिफिकल्ट टास्क हो सकता है, बट द ओनली ask is that someone who can understand how society works, how family works, at the same time what you are doing
with respect to startups, globalism, and whatnot. ओके ओके और मोर नाइस एवर कैरेक्टर एंड इंटेग्रिटी, आई थिंक इससे बड़ा तो बाकी सब चल जाएगा, बाकी सब नेगोशिएबल है, बट ये दोनों नहीं है। मतलब उसको टैक्स फाइल करना आना चाहिए और सही टैक्स फाइल करे ईमानदारी से, जो भी जितनी इनकम हुई पूरा डिस्क्लोज करे। करेक्ट नहीं यार, बचाने भी आना चाहिए, मतलब आनंद सर आप समझ रहे हो। वही कैरेक्टर इंटीग्रिटी, मतलब वही है ना, समाज सेवा भी आ गया उसमें, अपने टैक्स ढंग से फाइल कर दिया तो समाज सेवा भी हो गया। करेक्ट। ओके ओके नाइस नाइस। तो लेकिन मुझे पता नहीं, मैं आपके जब भी प्रोफाइल पिक्चर देखता हूँ मुझे लगता था कि आप लव मैरिज करोगे, लेकिन अभी आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आपका अरेंज मैरिज का पूरा मूड बन गया है। मतलब आपको पता है सर कि जब आप किस चीज में ना लॉन्ग टर्म क्या है और शॉर्ट टर्म क्या है, स्टार्टअप में भी हम मतलब यही बातें करते हैं कि क्या सस्टेनेबल है, कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी और कौन सी जो है सस्टेनेबल नहीं है, राइट। तो मम्मी को देखने के बाद में मतलब एक आ जाता है कि इनके साथ अगर जो है वो किया ना, लड़ाई किया, तो फिर सस्टेनेबल नहीं होगा वो। और शी इज काइंड ऑफ वेरी रिजिड अबाउट दिस थिंग कि वो समाज, सोसाइटी और है ना, फंडामेंटल बिलीफ्स नहीं टूटने चाहिए। तो देखते हैं क्या होगा। टू अर्ली टू कमेंट, आई वुड से। यार ये तो बहुत ही मतलब आपको क्या बताऊं मैं, ऐसी बात आपने कर दी ना कि मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैं भी ठीक ऐसे ही 25 साल का था और मेरी गर्लफ्रेंड थी, और सुट्टा उट्टा बहुत पीती थी, सिगरेट पीती थी और गांजा भी बहुत पीती थी। और मेरे को भी यही ख्याल आया कि यार वो मेरे पेरेंट्स के साथ एडजस्ट करेगी कि नहीं करेगी। मैं बहुत परेशान था इस चीज को लेकर। तो सर मुद्दा ये है कि अभी वो गर्लफ्रेंड आपकी वाइफ है या वो गर्लफ्रेंड रह गई? नहीं नहीं, वो मेरी तो अरेंज मैरिज हुई थी, तो इसलिए। लेकिन जो आपको क्वेश्चन जो आपने बोला ना, तो ये मुझे याद आ गया कि ये अभी मैं आपसे पहले किसी को बोल रहा था, मैं उनका नाम भूल गया, आई एम वेरी बैड विथ नेम्स, कि जिंदगी के दो ही सच है। एक सच तो ये है कि गर्लफ्रेंड दिल तोड़ेगी, और दूसरा सच ये है कि आप अपने माँ बाप का दिल तोड़ोगे। तो ये अकाट सच है। तो अभी अभी आपकी लाइफ में बहुत कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि आपकी शादी नहीं हुई है, आपको बहुत सी लाइफ के एक्सपीरियंस अभी देखने हैं। लेकिन एक चीज अब ध्यान रखना दोस्त, कि कोई भी लड़की होगी ना, वो आपकी मम्मी को खुश नहीं रख पाएगी। अगर आपने मतलब सतयुग से भी उठा के ले आए ना, टाइम मशीन है आपके पास, आपने सतयुग से भी आप लेके आए, और उसमें पूरे 36 गुण मैच हो रहे हैं आपके और उसके, कोई भी लड़की आपकी मम्मी को खुश नहीं रख पाएगी। तो मम्मी का तो दिल टूटना ही है। अब वो आप मॉडर्न लड़की से तोड़ लो जो कि स्टार्टअप के ऊपर 4 घंटे लगातार बोल ले, या वो प्रयागराज में चंदन घिसती हो और सारे उसको ग्रंथ याद हो, जो कि अच्छी बात है। मुझे खुद काफी ग्रंथ याद है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब बट कल्चरली बोल रहा हूँ कि टू पोल्स अपार्ट, दोनों ही दिल तोड़ेंगी मम्मी का। क्योंकि मम्मी का कैसा है कि नहीं होता ना, कल्चरल डिफरेंस, सॉरी जनरेशनल गैप इतना होता है कि वो टूटना ही है, वो अकाट सत्य है। तो ये बात आप मेरी पहले याद रहेगी आपको, तो शायद आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो, नहीं तो आपको बाद में याद आएगी। एंड आई एम नॉट विशिंग यू बैड और एनीथिंग। ये जितने भी लोग मैरिड हैं, अगर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, तो आई थिंक यू विल फाइंड इट के यार टूटता ही है, पेरेंट्स का दिल शादी के बाद टूटता ही है। Before I think you move, so it becomes incredibly difficult at times to evaluate. But what I have personally experienced that you can reduce the density, right? कहाँ पे कम टूटेगा, कहाँ पे ज्यादा, शायद नहीं बार बार टूटेगा यार, इतना फ्रेजाइल होता है, बार बार टूटेगा। इंडिया में तो इतनी बार टूटेगा कि दे विल गेट यूज्ड टू इट। मेरी जो मेरे तो पेरेंट्स इतने कंजर्वेटिव है, मेरी बहनों ने कभी लिपस्टिक भी नहीं लगाई। ओके, वी हैड अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड लिविंग इन अ वेरी स्मॉल टाउन। और मेरी बड़ी बहन ने लव मैरिज करी, इंटरकास्ट, तो दिल तो मेरे से पहले ही टूट गया। ओके, एंड बोथ माय पेरेंट्स वर डिप्रेस्ड एंड और ये सारी चीजें। बट इस बात को हो गए 22-25 साल हो गए, अभी दे आर वेरी हैप्पी। वो दिल जुड़ भी जाता है, वो कोई भी चीज लाइफ में परमानेंट नहीं होती है। और मैंने तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने तो अरेंज मैरिज करी कि मतलब एटलीस्ट मैं ना दिल तोड़ूं, क्योंकि अपने को क्या है ना, जो लड़की पसंद आती है वो जनरली दूसरे कास्ट की होती है। दैट इज हाउ बायोलॉजी इज। तो अभी मैंने तो अरेंज मैरिज करी और सारा, तो फिर भी पेरेंट्स का दिल टूटता ही है, इस बात पे नहीं तो किसी और बात पे, किसी और बात पे। पहले आपको बोला था सर कि आप लोगों को पढ़ना भी जानते हो, और जिस तरीके से आप अपनी बात को रखते मैं तो प्रोफाइल पिक्चर देख के बता लेता हूँ कि कौन कहाँ के रहने वाला है। तो इसलिए डोंट टेक दैट पर्टिकुलर वेरिएबल इनटू अकाउंट कि यार मम्मी का दिल ना टूटे। वो टूटना ही टूटना है, 100% टूटना है।
और एंड शी विल रिकवर एज वेल वेरी सून, वेरी क्विकली। कोई मैरिड बंदा है जो अभी मेरे ख्याल से आप विकास की भी शादी नहीं हुई है, गुरलीन, आप ये जितने भी लोग हैं स्पीकर, किसी की शादी हुई है तो बता सकता है कि मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ कि एंड इट हैपेंस वेरी क्विकली ऑन इट्स द स्मॉलेस्ट ऑफ द, जो सबसे छोटी चीज होगी ना लाइफ की, जो आपको फर्क ही नहीं पड़ता होगा। अब मान लो कि आप लोग पिज्जा मंगाते हो, और जैसे मेरे घर में शुरू से रहती कि हम लोग खाना कोई फेंकते नहीं थे, इतनी छोटी बात पर भी दिल टूट सकता है, भाई किसी का पेट भर गया नहीं खाएगा। तो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो एनीवेज, तो रवि बहुत अच्छा लगा आपका ये सुन के। और टारगेट डेट शादी के लिए मत रखो यार, स्टार्टअप के लिए तो हो सकता है कि फंडिंग ये स्टेज पे करेंगे, सीरीज 1, सीरीज ABCDE व्हाटएवर। शादी के लिए टारगेट डेट मत रखो, ये गलती भी मैंने करी थी। आई गॉट मैरिड एट 28, probably I could have waited 2-3 years. शादी अगर स्टार्टअप से जुड़ी हो तो फिर आप कैसे डेट रखोगे ये बताइए। अमित जी आ गए, देखिए अमिताभ बच्चन जी हमारे साथ हैं। मैं सॉरी, उनको मौका देते हैं। ये इंटरप्शन है तो और भी लोगों को बोला। नहीं आप अच्छा लगता है, बहुत मीठा मीठा लगता है, बोलिए ना। बट ये क्या है, ये इस पॉइंट पे बोलना मेरा इस समय जरूरी, क्योंकि मेरी शादी भी 1 साल हुआ, मतलब 32 साल। सो आई एम प्रिटी लेट व्हेन इट कम्स टू मैरिज। और ये मैं 7 साल दिल्ली में था, तो वहाँ मतलब ये जो अभी सर बोल रहे थे उसलिए कि दिस इज अ यूनिवर्सल फिनोमिनन। पहले तो मैं इन शॉर्ट बोलूं कि क्यों माओ को बुरा लगता है, सास को स्पेसिफिकली, कि वो लड़की जो है वो कोई भी अच्छी नहीं लगेगी। क्योंकि जो मैंने देखा, सी आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स, तो मैं अकेला हूं। तो मेरे घर में मेरे फादर बहुत लिबरल, और क्योंकि उनकी ट्रांसफरेबल जॉब थी तो उनकी सारा माया मोह झड़ गया जीवन से संघर्ष करते करते। और जो माय मदर वो बहुत कंजर्वेटिव, एक ही शहर में पढ़ी, वहीं जॉब वहीं सब कुछ। तो मैं दोनों पार्टों के बीच में बचपन से रहा हूँ। तो हमारे घर में जो एक सोच बनी थी मम्मी की, वो ये थी कि भाई इकलौता लड़का है, पहले तो ठीक ठाक दिखता था, तो अभी उनके हिसाब से तो उनका लड़का बेस्ट है, सब माओ के लिए होता है, तो उसको बहुत ऐसी लड़की मिलनी चाहिए, और सीरियल में देखकर यहाँ वहां। बट देन वो जो भी आई अभी 1 साल पहले, तो वो प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि आप समझिए कि जो मैंने मतलब उसका जो मुझे लगता है ऑन अ लिटिल फिलोसफिकल नोट, कि एक लेडी दूसरी लेडी की जगह ले रही है परमानेंटली। 25 साल का किचन छूटेगा मेरी माँ का, छूटा। फॉर एनी लेडी जिसने अपने पति को या अपने बच्चों को या बच्चे को 20 साल बना के खिलाया, वो उस टेस्ट की आदी हो चुके। वो अब मेरी माँ वर्किंग थी, वो पोस्ट ऑफिस में जॉब करती थी, तो शी यूज्ड टू वर्क फ्रॉम मॉर्निंग 6 to 10। तो वो डिसिप्लिन, और वो उठ के पानी भरना, और वो उसी तरीके से खाना बनाना, और वो एक हम उस टेस्ट के आदी हो गए। अब अचानक से एक नई लड़की आई, और वो एक अपने ढंग की सीख को लेके आई हर चीज में। तो ठीक है, मी बीइंग एन ओपन माइंडेड पर्सन इधर उधर रहा हूँ, आई नो, मेरे पापा जानते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करती है विद फूड एंड एवरीथिंग, हमको मालूम है जीवन है, चलने दो, सब एडजस्ट हो जाएगा। बट फॉर मम्मी, उनका जो फोटे है, उनका जो एक कैजल है किचन, या उनकी एक जगह है जहां पे उनको पता है कि उनका बेटा उन्हीं के खाने की तारीफ करता है, उनका पति कहता है कि भाई तुमने बहुत अच्छी खिचड़ी बनाई, नाउ दैट इज गेटिंग रिप्लेस्ड। तो एक मॉन्यूमेंटल ईगो टूटता है, और वो 2.5-3 महीने 6 महीने लेता है इस तरह का ईगो टूटने में, कि कोई ये कहे अचानक 20-25 साल बाद कि भाई ये खिचड़ी उससे अच्छी बनी, या ये रोटी सब्जी व्हाटएवर ये उससे अच्छा बना, एंड व्हाट बहू हैज डन इज वंडरफुल। इसको सुन के पचा पाना ये बहुत बहुत संतों वाली बात है, ये लोग नहीं कर पाते, शायद हम भी नहीं कर पाएंगे। इवन माय वाइफ सेज कि वो जब अभी 1 साल हो गया उसको और हमारी बेटी हुई, कि यार हमारी भी मतलब अब लग रहा है देख के कि कभी अगर मैं बट बेटा होता है और बहू आती है, तो आई थिंक आई विल बिहेव द सेम वे मम्मा बिहेव्ड इन द इनिशियल डेज। तो वो इसलिए आई थिंक कि कभी खुश नहीं हो पाएगी कोई भी सास इनिशियली, क्योंकि बहू जगह ले रही है, तो वो तकलीफ तो होगी। वो इम्पोर्टेंट ये है कि 5-6 मंथ से जितना भी टाइम उस परिवार को लगता है वापिस उस पीस पे आना, आपका जो मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ है फैमिली की, वो ऐसी होनी चाहिए, वो प्रॉपर टाइम अलाउ करो। मोस्टली जब मैं दिल्ली में था तो मेरी शादी क्यों लेट हुई, क्योंकि बिकॉज मेरे जितने, आप जीएस राय में रहते थे क्या सर? नहीं नॉट जीएस राय, जीएस राय में रहते थे? नहीं जीएस राय नहीं, मैं एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब में गया था मंत्रालय में, तो वहां मुझे सरकारी घर, तो वो गोल मार्केट और कनाट प्लेस के उधर मिल गया था मेरे को। अच्छा, ओके। तो हम लोग सिलेक्ट हुए, सो 650-700 पीपल गॉट सिलेक्टेड थ्रू एसएससी इन 2012 एंड ऑल ऑफ दैट। तो कुछ लोगों ने एकदम शादी करी, जितने भी लोग उस समय शादी हुए 100-120, उसमें से लगभग 80-90 का डिवोर्स विद इन फर्स्ट ईयर हो गया। कुछ की लव मैरिज थी, कुछ की अरेंज थी, एंड सम मैरिड, ऐसा। और बड़ा डाइवर्स टाइप की मैरिज थी कि एक सरकारी नौकरी में है और शादी हो रही है किसी रॉक स्टार से, और ऐसा कुछ। देन फाइनली वो डिवोर्स हुआ, तो उसके डर तो लगता है, बिकॉज डिवोर्स ठीक है, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं दूंगा, लेकिन पॉइंट ये है कि कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें दिमाग को झकझोर देती हैं फॉरएवर। सो अब मुझे लगा कि 80-90 लोग तो बेवकूफ नहीं हो सकते,
सबकी 27-28 में शादियां हुई और डिवोर्स हो गया, तो आई शुड वेट एंड देन रीलुक कि भाई करना क्या है। वो अलग बात है कि मैंने एक्सेस टाइम ले लिया। तो दो चीजें हैं। नहीं कोई एक्सेस नहीं लिया आपने। हाँ मतलब तो टू थिंग्स जो मतलब फॉर आई थिंक दूसरों के भी काम आएगा कि एक तो वो जो एडजस्टमेंट फैमिली में हो रहा है ना वो होगा, वो सास का दिल आपने बिल्कुल सही बोला कि वो टूटेगा बिकॉज वो पूरी की पूरी रिप्लेसमेंट हो रही है, वो जगह खत्म हो रही है उस लेडी की। और हो सकता है कि उस लेडी को, क्योंकि मोस्टली माएँ अगर कोई वर्किंग थी, वो रिटायर हो गई थी या वो 50, 55, 60 की एज बैंड में आ गई हैं, अब आप उनको उठा के रिप्लेस करके एक सोफे पे बिठा देते हो कि अब सारा काम ये करेगी जो नई आई, तो वो क्या करेगी? हाँ सो इन दैट सिनेरियो आपको वो 5-6 महीने अलाउ करने पड़ेंगे, और वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है पूरे घर वालों का मैच्योरिटी से बिहेव करना, चाहे वो लड़का हो या वो ससुर हो, आई मीन बॉयज फादर, की वो उस 6-7 महीने की पीस को बनाए रखे। वहां पे टूटना नहीं चाहिए। अगर वहां पे सब टूट टाट गया तो फिर वो डिवोर्सेज और ये सब कुछ हो जाता है। सो टू मी जो अभी सर बोल रहे हैं, जो अभी हैं लाइन पे, कि अगर आप मतलब सोच रहे हो कि उनका कंजर्वेटिव सोच या मम्मी का, एज आनंद सर सेड, उसको टूटने दो, वो दिल टूटेगा। फोकस मोर ऑन कि वो जुड़ जाए जल्दी से और बेहतर तरीके से, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ये इतना ही बोलना था मेरे को, दैट्स इट। और अभी तो कैसे मेरे दिमाग में सबसे पहला थॉट क्या आ रहा है कि बातें चल रही पर्सनल फाइनेंस की और बड़ा मुझे मजा आ रहा है ये सब बातें करने में, और कोई बंदा तो मुझे ट्रोल करेगा कि देखो आनंद सर पर्सनल फाइनेंस की बातें कैसे करते हैं सर ऑन अ शादी सास को डीपर नोट सब कुछ कनेक्टेड है, वो अलग बात है, कनेक्टेड है। वही वो समझ में नहीं आता जो लोग ट्रोल करते हो उन्हें। खैर, तो गोइंग रवि जी, दो चीजें आपको इसमें समझनी बहुत जरूरी है, और मैंने अब आपको बोल रहा हूँ तो आपके थ्रू काफी लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ। आई नो आप तो काफी लर्नेड हो पहले से। पहली चीज तो ये कि अक्रॉस सोसाइटीज 190 देश हैं और 2500 कल्चर जो है बड़े हैं, उसमें अक्रॉस सोसाइटी सास और बहू की कभी पटी नहीं है। अब यूएस के भी सिटकॉम्स देखिए ना, तो जैसे एवरीबॉडी लव्स रेमंड या फ्रेंड्स में भी जो उसके पेरेंट्स आते हैं, कभी भी सास और बहू की नहीं पड़ती। आई थिंक इट गोज बैक टू बेसिक ह्यूमन इवोल्यूशनरी बायोलॉजी और साइकोलॉजी। आप थोड़ा सिगमंड फ्राइड को पढ़ो। मैं इट्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन कि मैं एलिब्रेट करूं कि वो हेट्रेड डे 1 से क्यों आती है, जिसको अमित जी ने बहुत ही पॉलिश लैंग्वेज में बोला कि वो एक पावर सेंटर या ईगो जो है जा रहा होता है। तो इसको पहली लर्निंग ये है, जिसकी शादी अभी होने वाली है या जो प्लान कर रहा है इन नेक्स्ट 3 years, कि इट्स नॉट पर्सनल अगेंस्ट यू और पर्सनल अगेंस्ट एनी ऑफ द एक्टर्स। आपकी जो गर्लफ्रेंड होगी या जो आपकी मम्मी होगी या आप होगे, कि इसमें किसी की गलती नहीं है। इट इज एम्बेडेड इन बायोलॉजी। जैसे कि अगर आप और आपका जिगरी दोस्त जा रहे हैं रात को, हल्की हल्की दारू पीने के बाद बाहर से लौट रहे हैं पैदल, और सामने जो है एक कोबरा सांप आ जाता है बहुत नजदीक, और आपका दोस्त भाग जाता है। उसने लाख कस्में खाई थी कि यार दोस्त मैं तेरी हमेशा मदद करूंगा, तुझे बचाऊंगा, और आपको कोबरा सांप आपके पैर में पकड़ लेता है। ये तो आपने गम बूट्स पहन रखे थे तो काट नहीं पाता है, बट पकड़ लेता है, और आप चिल्लाते हुए वहीं लेट जाते हो, लेकिन दोस्त भाग खड़ा होता है। इसमें दोस्त की पर्सनल गलती नहीं है। यू शुड नॉट जज योर फ्रेंड बिकॉज इट इज हिज नेचुरल इंस्टिंक्ट, बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट टू रन अवे व्हेन ही सीज डेंजर टू हिज लाइफ। सिमिलरली इन दिस सिचुएशन, आप हो, आपकी वाइफ हो, आपकी गर्लफ्रेंड है या आपकी मम्मी है, किसी की गलती नहीं है। एवरीबडी इज बिहेविंग आउट ऑफ नेचुरल इंस्टिंक्ट। ओके, तो उसमें कोई भी लाइफ का छोटा से छोटा डिसीजन है। अभी आप देखते होगे पापा आपके, मतलब किसी की, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर लूँ या ऑडियंस में काफी लोग रिलेट करेंगे कि पापा जनरली डरते ही हैं लाइफ का कोई भी डिसीजन लेने से पहले। मम्मी के सारे डिसीजन फाइनल होते हैं। जब घर में वो एक आपकी सिग्निफिकेंट आ जाती है तो आप ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हो। तो ये पहली लर्निंग बहुत जरूरी है। इट इज नथिंग पर्सनल अगेंस्ट एनी ऑफ द एक्टर्स। जब आप इसको इम्पर्सनल होकर देखते हो कि यार ये तो होना ही था, तो आप इसको बेटर तरीके से डील करते हो रादर देन ब्लेमिंग वन पर्सन ऑन अदर। जनरली जो माइनॉरिटी होता है इन एनी सोसाइटी, इन एनी कंट्री, इन एनी ट्राइब और या इन एनी फैमिली, लोग उसको ब्लेम कर देते हैं क्योंकि उसको ब्लेम करना ईजी होता है। तो जनरली वाइफ को या बहू को ये क्या कहते हैं, हस्बैंड भी ब्लेम कर देता है, या क्या बोलते हैं उसको, ससुर भी ब्लेम कर देता है कि हाँ एक सब्जी उतनी अच्छी तो नहीं बनी थी, या नमक तो कमी था, या जस्ट हाँ में हाँ मिलाना, क्योंकि डरे हुए हैं सब लोग। So you don't have to do that because everybody is behaving naturally, and once you understand that, you will take a more rational position, which is very important for future health and growth of your family. That's point number 1. Point number 2, आप ये देखोगे अभी तक आप मतलब जैसा कि मतलब सारे लोगों को बोल रहा हूँ जो यंग है,
कि दुनिया में सभी ने मैनिपुलेट किया होगा, जब हम बच्चे रहे होंगे टीचर से लेके, अलग वर्ड से मैनिपुलेट किया होगा, एक्शन से मैनिपुलेट किया होगा, एक्सेप्ट आवर मदर्स। लेकिन जब शादी होगी तब ये आपको रिलेशन पहली बार होगा जब आप देखोगे कि माँ भी मैनिपुलेट करती है सिचुएशन को, आपको, आपके बिहेवियर को, टू विन द आर्ग्यूमेंट, टू विन द ईगो बैटल। वहां पे थोड़ा दिल कैंडिडेट का भी टूटता है, जो लड़का होता है उसका भी टूटता है। वो भी आपको देखना है कि ये भी एक बहुत बड़ी लर्निंग है दैट एवरीबॉडी विल मैनिपुलेट यू इंक्लूडिंग योर मदर। और जब ये आंख खुलती है तो आपने अभी जो थोड़ी देर पहले बोला ना कि मम्मी के साथ एडजस्ट करें, मम्मी थोड़ा सा जो है कंजर्वेटिव साइड की है, ये सारी चीजों को जब आप लुक बैक करते हो तो आप सोचते हो यार कि जब सभी ने मैनिपुलेट करना ही था तो मैंने इतने आगे जाके इतना ऐसा डिफिकल्ट कदम क्यों उठाने का सोचा कि आई हैव टू गेट हर एडजस्टेड। तो सेकंड चीज जो मैं आपको बोल रहा था, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि एवरीबॉडी मैनिपुलेट्स इंक्लूडिंग आवर पेरेंट्स। और ये लर्निंग बहुत लेट आती है कई बार लाइफ में, and there is nothing wrong in that. Parents also I'll not get too much detail into it, but I want to come back to personal finance. But everybody manipulates, so इसलिए हमको उस इवेंचुअलिटी के लिए भी रेडी रहना है। और उसका जो एक सेकंड पार्ट वो है उस अंडरस्टैंडिंग का, ये है कि डोंट बेस योर डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन somebody else's soul happiness, be it your mother or father or even your wife. Okay, you have to keep yourself in the center of whether you will be happy or not. Because हवाई जहाज में बोलते हैं ना, पहले अपना मास्क खुद लगाइए, उसके बाद बच्चे या बूढ़े का लगाइए, right? It's a very selfish choice. They repeat like 1000 times if you have traveled कि पहले अपना मास्क खुद लगाइए फिर बच्चे या बूढ़े का लगाइए। बिकॉज इफ यू आर हैप्पी, एयरलाइन का अगर आपको कॉन्टेक्स्ट बताऊं, इफ यू हैव प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, आपने मास्क लगा रखा है, तो in the eventuality you can drag two people with you, two of your family members who are temporarily unconscious, and you can take them to safety. So 3 people will survive. There is a higher probability. आप अभी इस decision making में हो कि मैं मास्क लगाऊं या किसी और के लगाऊं, that means you are conscious enough. Other 2 people you don't know the state, आपने उनका लगा दिया, आप बेहोश हो गए, तो तीनों वहीं रह गए। तो इसका रिलेशन रियल लाइफ से ये है कि अगर आप खुश हो, आप कंटेंट हो, आप इफ यू आर इन कंट्रोल ऑफ सिचुएशन, यू विल हैव बेटर टूल्स टू मेक एवरीबॉडी हैप्पी अराउंड यू। ओके, सो डोंट बेस योर जजमेंट ऑन somebody else's possible happiness. That's all I'll say. Ravi, you have any follow-up question on this personal finance का matter? नहीं, अंत में तो मेरे को यही कहना है कि पर्सनल फाइनेंस, रिलेशनशिप और आपकी वाइफ का बहुत बड़ा रोल है। तो आप कितना भी प्लानिंग कर लो, अगर वहां प्लान नहीं किया तो फिर पूरा हिला के रख देगी। तो ठीक है, थैंक यू सो मच आनंद सर। अरे बिफोर यू गो, अभी इतने जल्दी मत जाओ यार। बिफोर यू गो, मैं 28 पे शादी से लेके उसका सोल निकला, मेरे बाल बहुत तेजी से झड़ रहे थे, तो मुझे लगा मैं टकला हो जाऊंगा तो मेरी मार्केट वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, तो मैंने आप वो गलती मत करो। ओके, यू हैव आपकी खेती बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी खेती है आपकी, टच भगवान। यार मैंने उसके साथ गांजा पीना मैंने उसके साथ गांजा पीना बंद कर दिया, दारू पीना बंद कर दिया। शी सेड कि वी आर गोइंग सेपरेट वेज, शी डजंट एंजॉय माय कंपनी एनी मोर। तो डेटिंग लैंग्वेज में बोलो तो शी ईज मी ऑफ। काफी टाइम लगा, बट मुझे ये चीज तो, और ये मतलब 3-4 बार मुझे ऐसा लगा ये चीज कि यार ये एक आई मेट अ गर्ल, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, शी वॉज बॉर्न इन स्विट्जरलैंड, इंडियन थी लेकिन स्विट्जरलैंड में बॉर्न हुई थी, एंड शी डिडंट नो इवन अ वर्ड ऑफ हिंदी। और मैं तो हिंदी मीडियम का पढ़ा हूँ, लेकिन अभी मेरी इंग्लिश ठीक ठाक है, मतलब मैं समझ सकता हूँ, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, राइट, बट नॉट माई पेरेंट्स। तो मैं यार इससे पहले कि अपना कुछ डेटिंग सीन अच्छा बनता, मेरे को बार बार ये लगता है यार ये मेरी मम्मी से बात ही कैसे करेगी, इसको तो हिंदी आती नहीं, मेरी मम्मी को इंग्लिश आती नहीं है, तो मतलब एक लाइफ का बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट नहीं रहेगा, मतलब। एंड आई वॉज सो स्टूपिड टू थिंक लाइक दैट। तो मैं बहुत अच्छी लड़की थी, अभी भी मैं उससे टच में हूँ, बट मैंने आगे नहीं बढ़ा, मैं यही सोच के यार कि मेरे पेरेंट्स तो बात ही नहीं कर पाएंगे इससे, उसको हिंदी नहीं आती है, और उसने जिंदगी में कभी साड़ी नहीं पहनी थी, कभी इंडियन सलवार सूट नहीं। लाइक बॉम्बे में काफी लोग होते हैं, राइट, मेरे नई जॉब पकड़ी थी मैंने, और हम लोग वली सीट पे जाते थे, 2-2 बजे रात तक बैठे रहते थे, तो उसको लाइफ के मतलब समंदर की डेप्थ से लेके लाइफ की गहराई, हर चीज के बारे में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, मतलब आई यू शुड लव टॉकिंग टू हर। बट इवेंचुअली फिर मेरे को लगा यार कि जो आपने बोला ना, इसलिए मुझे बहुत हिट किया। हाँ, नहीं किया, मुझे लगा यार कि जिस गली जाना नहीं तो उसका दिल अलग से क्यों तोड़ू मैं। एग्जैक्टली, ये सबसे बड़ा सारे समझना। हाँ, तो ये आप अभी से मत समझो, आप इसके आगे का समझो ना कि दिल तो टूटना ही है पेरेंट्स का। तो आपको अगर कोई फ्रेंच या कोई रशियन या कोई यूक्रेनियन लड़की पसंद आ जाती है, गो अहेड, मतलब करेंगे सर इस पर विस्तार से चर्चा। आई थिंक गुरलीन के पास कुछ क्वेश्चन था, शी वाज रेजिंग। हाँ गुरलीन, बोलिए, आपको कुछ रवि जी से कुछ पूछना था।
I think she might have dozed off. Anand, can I add to it? Yeah, go in. So I'll give you just a quick background. I've been married for 2.5 years now, and just recently, like a week back, we got our first child. तो अब ऐसा है कि when I was deciding to get married, like 20-22 साल का था, तो I got married at the age of 29. And personal finance has much to do with your relationships and how you plan your relationships also, right? तो मुझे एक चीज हमेशा ध्यान में थी कि यार थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए सो दैट कि मुझे वो टेंशन ना हो और तब एट दैट स्टेज आई विल गेट मैरिड. आई डिड नॉट हैव एनी एज इन माइंड बट आई हैड अ फिगर इन माइंड कि यार इतना होगा ऐसा होगा तो प्रोबेबली आई विल बी एबल टू रन द फैमिली अलोंग. अब मैं इसके बारे में थोड़ा और सोचता हूँ और अब जैसे एक और स्टेप हम आगे चले गए हैं. द थिंग्स दैट आई हैव रियलाइज्ड वो लेटली वो ये भी है कि जब मैं ये सोचता था कि सारे स्टेप्स खुद लेने हैं और सारी चीजें जैसे बतानी है ये वो, तो व्हेन यू गेट मैरिड एक चीज है कि आपको जैसे अभी वाइफ की बात हो रही थी, आपके मदर की बात हो रही थी, है ना, तो हम मुझे लगता है कि अगर आप उनके साथ जो चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर दो ना, that also helps a lot. Responsibility in the sense कि उनको लगे they are in command of something. जब उनको लगता है कि आप ही सारे डिसीजन ले रहे हो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, तो फिर वो आपको बल्कि चैलेंज भी करेंगे, then they'll counter also and they'll not be happy. लेकिन कुछ पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी when you give it to them and they feel like a stakeholder is the main word here. तो मेरे को तो ये लगता है कि जब से उनको ये लगा कि they are stakeholders and the eventual goal is happiness of the family एंड वो सारी चीजें आराम से चले और अच्छा चले, तो वो आपकी लाइफ और अच्छी बनाता है. मतलब अकेला जो ये इंडियन सोसाइटी में है कि द मेल विल टेक द बर्डन एंड पुल इट थ्रू, तो आई गेस दैट हैज टू ड्रॉप. और जब से मैंने ये करा आई एम फीलिंग वेरी वेरी रिलैक्स्ड एंड दिस हैज हेल्प्ड मी अ लॉट. तो शेयरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मेकिंग एवरीबody a stakeholder in the total happiness of the family, and this includes personal finance as well. Yeah, I mean, रवि आपसे बेहतर कौन समझेगा कि आउटसोर्स करिए, स्टेक होल्डर्स पे ट्रस्ट करिए और डेलीगेट करिए, राइट? दैट इज व्हाट गोविंद इज सेइंग. मैं तो बहुत आसान, मेरा 2 जजमेंट का क्राइटेरिया है. अभी बता रहा हूँ, कुछ रिसेंट हुआ है. एक, आप ना ट्रैवल करने चले जाओ इंसान के साथ, और दूसरा आप अपनी मॉम से मिला दो दोस्त बोल के, और उसके बाद देखो क्या फीडबैक आ रहा है दोनों साइड से. ट्रस्ट मी सर, आपके समय में मेरे को पता नहीं कि लग्जरी थी कि नहीं, मेरे टाइम पे तो है. एंड दिस इज लिटरली वन ऑफ द आई थिंक गुड वे टू अंडरस्टैंड कि आगे क्या किया जा सकता है. बट ठीक है, काफी मजा आ रहा है. एक चीज और ऐड करूं आनंद, इफ यू अलाउ मी 30 सेकंड्स. अरे ये 30 सेकंड वाला स्पेसेस है ही नहीं, आप 30 मिनट बोलो. हाँ, तो मैंने एक चालू किया था 11 बजे से 1:30 बज रहा है. जिसको आना होगा सुनेगा, जिसको जाना होगा जाएगा. लाइक ठीक है, इट्स मोर अबाउट यू एंड मी. ठीक है, दिस इज मोर स्ट्रैटेजिक. मेरे को लगता है ये हैक है, तो और मैं इसको थोड़ा प्ले भी करता हूँ. एंड आई फील कि जैसे स्टोरी होती है ना, जैसे मूवी चलती है, तो मूवी में क्या होता है कि धीरे धीरे चीजें रिवील होती है और इन दी एंड तुम्हें जब वो क्लाइमैक्स आता है और वो सब, तब तुम्हें वो पूरी की मूवी की एंजॉयमेंट आती है एंड यू फील वेरी कंटेंटेड एट द एंड ऑफ इट. यार मैंने ये पूरी मूवी अच्छी लगी और अच्छा रिवील हुआ. तो बीइंग अ स्टेप अहेड और टू आल्सो हेल्प्स यू. मतलब ये चाहे पूरे नैरेटिव में भी, जैसे आप अपनी जिंदगी जी रहे हो, हर चीज डे 1 पे मैंने डिस्क्लोज, मतलब मुझे नहीं लगता कि डिस्क्लोज मैंने की थी या करनी भी चाहिए. रिवीलिंग इट स्टेप बाय स्टेप, जैसे वो मैंने बोला कि उनको भी लगता है यार मैं भी इस डिसीजन का पार्ट हूँ. अगर मैं आज ही बोल दूं कि यार हम बाली जा रहे हैं घूमने, है ना, तो वो मुझे बोलेंगे यार कि तुमने तो डिसाइड कर लिया, डिडंट आस्क मी एंड एवरीथिंग एंड नाउ वी आर गोइंग टू दिस प्लेस. फिर वो मैं धीरे धीरे उनको ऑप्शन देता हूँ, 5 ऑप्शंस. फिर उसमें से मतलब 3 ऐसे कि यार इसमें एक बाली है, 2 ये है, बाली लुक्स मोर रीजनेबल. वो आपकी डिस्कशन है. जब उनको ये लग जाता है ना, मतलब जाना आपने बाली ही है, बट हाउ यू गेट टू दैट डिसीजन इवेंचुअली, वो थोड़े से कन्फ्लिक्ट्स बचा लेता है. तो मुझे लगता है बेसिकली गोविंद जी आप ये कह रहे हैं कि सबको मैनिपुलेट करो अच्छे से, तगड़े से. आई एग्री. यू हैव टू बी स्ट्रैटेजिक. मतलब अगर आप तुम नहीं करोगे ना, तो मतलब इफ यू कैन मैनिपुलेशन, भोलापन से दुकान नहीं चलती. आई एग्री. सर मैं बस छोटा सा ये बोलना चाहता हूँ, ये ना मैनेजमेंट लेसन है. वाइफ के साथ हो तो वाइफ, मॉम के साथ हो मॉम, और दोनों को एक दूसरे के साथ ट्यून रखना है, तो आपको फिर डिप्लोमेसी आनी चाहिए. एंड ट्रस्ट मी, कुंवर नारायण की एक कविता है, अगर आप में से किसी ने एक्सपीरियंस देखी हो, अंतिम ऊंचाई और दूसरा वाला कितना आसान होता है ना, एक बार आप पढ़ना उसको. एक शादीशुदा आदमी के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है
समझ जाओगे, आप रिलेट कर पाओगे। बट वापस पर्सनल फाइनेंस पे आ जाते हैं आनंद सर, अगर बोलिए आपकी बोलिए। हाँ हाँ, लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, और बहुत लोग मुझे डीएम में गाली भी दे रहे हैं कि पर्सनल फाइनेंस का स्पेस कहाँ गया। करेक्ट तो करेक्ट। तो पूछिए मेरा ना पूछिए। एक डायरेक्ट सवाल है। आई थिंक आईडीएफसी फर्स्ट, अगेन नॉट स्पेसिफिक टू stock, but just your general view on bank A. Second question is, I was looking some data, right, and I found this really interesting कि 154 152 ट्रिलियन करोड़ का इंडिया का एफडी और सेविंग्स अकाउंट का रिजर्व है। वहीं पे म्यूचुअल फंड एसआईपी इंडस्ट्री का कंबाइंड आई थिंक एयूएम है 37 ट्रिलियन करोड़। तो अभी वो आई थिंक 5x टाइप गैप है। व्हाट इज योर आउटलुक से 5 years फ्रॉम नाउ? क्या लगता है आपको कि इक्विटी में पार्टिसिपेशन लोग बोल रहे हैं कि बढ़ेगा, क्या सच में बढ़ेगा? क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी ऑब्वियसली ऑन आईडीएफसी फर्स्ट। देखिए, पहले तो ये बता दूं कि इक्विटी में पार्टिसिपेशन लगातार बढ़ रहा है पिछले 20-25 साल से, और सारे फैक्टर्स एक साथ जो है कंट्रीब्यूट किए हैं इसमें। सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग थिंग्स। अगर आज आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना है, कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना है, आज से 10 साल पहले जो लैग टाइम था, जो जिस तरह के डॉक्यूमेंट चाहिए थे, जितना टाइम लगता था, देयर वाज लॉट ऑफ हैसल, वो सब धीरे धीरे कम हो रहा है। प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लोगों का अवेयरनेस भी ज्यादा हो रही है, नॉइज भी बढ़ रही है। अभी मुझसे बहुत से नॉन रिलेटेड लोग आके भी पूछते हैं इक्विटी के एडवाइस और ये सब, जो पहले अनइमेजिनेबल था, क्योंकि पहले पता ही नहीं था। अब तो हर चीज व्हाट्सएप पे आ रही है, हर चीज ट्विटर पे आ रही है, इतना मुझे लग रहा है ओवर ही हो रहा है। तो और जो डीमैट ओपनिंग है या सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग है, ये आप डेटा देखोगे तो ये इट्स लाइक एक्सप्लोडिंग। तो वी आर एट इट्स लाइक एन आइसबर्ग, वी जस्ट सी द 1% ऑफ इट। अभी बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। Whether it will have good effect on society or not, generally in any of the developed society, it's the effect on the population, on individual, is not secular, it's not secularly good. So kaisa hoga, it has to pan out, because every kind of expansion comes with very very loose credit underwriting, lot of loans being taken which will not be repaid, and lot of families going bankrupt, people not saving enough and so on. तो वो सारा एक साथ बढ़ रहा है। तो इसका क्या इफेक्ट होगा वी डोंट नो, बट हाँ, स्टॉक मार्केट में रिटेल का पार्टिसिपेशन, रिटेल मनी का पार्टिसिपेशन, इट इज गोइंग टू इंक्रीज इन नेक्स्ट 20 years. निफ्टी विल मेक अ न्यू हाई वेरी सून, एंड मल्टीपल हाईज बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर एज वेल। वो मैं अग्री करता हूँ। अब इसमें कोई इंडिविजुअल पैसा बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बिकॉज कभी भी जब कोई मार्केट एक्सपैंड करता है तो उसमें नॉइस and bad players ये भी बढ़ते जाते हैं. So we will see a lot of broker defaults, we will see possibly bank defaults, we will see a lot of AMC defaults, new kinds of scams we'll see. ये सारा कुछ एक्सपेंशन जब बहुत तेजी से होता है तो ओवरसाइट इन रेगुलेशन भी हो जाता है. तो इसलिए वन एट इंडिविजुअल लेवल वी हैव टू बी वेरी कॉशियस. इसलिए मैं सभी को एडवाइस करता हूँ कि अगर आपको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है तो आप सीधा इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट करो. डोंट गो टू ग्रैनुलर कि ये स्टॉक अंडर प्राइज्ड है और इसकी डिस्कवरी नहीं हुई है. अभी लालच मत करो कि मुझे, आपको ऑलरेडी इंडेक्स में 12% 13% मिल रहा है, 20% का लालच मत करो अनलेस यू आर प्रो लेवल एक्सपर्ट एंड यू आर डूइंग इट डे इन डे आउट. और एज आई सेड कि जब मार्केट एक्सपैंड करेगा तो बैड एक्टर्स भी एक्सपैंड करें. So yes, Nifty will make new high. It is going to be far easier because of this retail money inflow. But that is the time to be very cautious at individual level because return से आपके पैसे उतना फर्क नहीं पड़ेगा. आपके पैसे चोरी होने का जो है chances बढ़ जाएगा. A lot of scams, theft, lot of false promises, under delivery. This all will happen in next 15-20 years. So time to be very very cautious and on top of things in personal finance. You should not outsource it to anybody else. Okay, I don't believe in personal advisor. मैं भी जो बोल रहा हूँ उसको blind truth लेके मत वो करो. Go and see, study because your life depends on it. That's one. Coming back to IDFC Bank, see, I'm not a great fan of smaller private sector banks because banking is a leverage business और 8 to 9 times कोई भी balance sheet जो है leverage होती है और उसमें आप पैसा देना तो बहुत आसान होता है. आदित्य पुरी of HDFC Bank used to say कि if I want to expand my balance sheet, start giving loans, so everybody is my customer. Who will return my money after a certain period of time? That is the biggest challenge in banking. And India doesn't have a very good track record when it comes to retail loans, when it comes to personal loan, when it comes to credit card loans. A lot of NBFCs like Fullerton or even ICICI have burned their fingers in the past.
Even corporate loans, if you see, all the cases in NCLT, a lot of very good names of that time, 10 years back, 15 years back, are not in a position to pay. So banking is a leverage business, and smaller banks are disadvantaged in many ways. Their cost of funds are very high. They are small for various reasons, because the economy was growing for last 15-20 years like a it was growing from a baby dinosaur to a full grown dinosaur very fast. If a bank remains small, it has made a lot of mistakes in the past. Those mistakes might have happened because of wrong judgment of market, might get repeated. Those mistakes might have happened because of some wrong credit writing or following of regulation, might be repeated. So I'm not a fan of smaller banks. IDFC Bank has a lot of promise, but honestly speaking, if you ask me yes or no, anyone who is not too much into analyzing of bank balance sheets like for last 5-10 years, I will strongly recommend against IDFC. The stock is also, जैसे बोलते हैं भाव भगवान छे, stock भी उधर ही घूम रहा है, market is not rewarding it for a reason, right? There are a lot of other better banks like SBI, banks like HDFC or Kotak or even Axis. One should have a portfolio of 2 to 3 banking stocks minimum, because one or the other might underperform as well. So that's how. When India, our credit growth was lowest of last 50 quarters recently. So India starts growing, and the government's push is on infrastructure. So banks are going to be major beneficiary, because they will be lending long term for all the infrastructure projects. So banks like SBI or Axis are going to be major beneficiary. They will beat the index most probably. Anyways, financials have 40% weightage. So if index has to go up, banks have to go up. So I'm very bullish on banking, more bullish than IT or pharma or FMCG, but not on smaller banks. That's my answer. Yeah, NP, बोलिए ना. Hello. हाँ. Sir, basically, Gurleen had a question before you move ahead. Gurleen, you have any question related to personal finance? Are you there? Yes, I'm there. Yeah, I had a question actually. The question is that, while we emphasize on the fact that we need to squirrel our money away for for tomorrow, which is really important, but not at the stake of our, I'll say, our present, right? So, how does one strike a balance between the long term and short term needs? That's the question. Yeah, it's a very, very interesting question, actually. And answer lies in a false belief or assumption that we need money to be happy. This has been drilled down by all the advertisements that we see from the very early age. I mean, when I was a kid in a small city, there was, and I'm not lying, I'm not making this up. When I was in class 7th or 8th, there was only one restaurant in the entire city, just one. And there were only 2 good mithai ka shop. And we never used to eat out because there was no restaurant. We used to go to a bigger city sometimes, and then probably once in a quarter we used to eat out. Okay. Not that we were not happy then. Obviously expenses were very low. जब आप बाहर नहीं खाओगे तो expenses बहुत low होंगे. पहले के जमाने में there was a long waiting list for Bajaj scooter or Fiat का गाड़ी 8-9 months, 10 months. Now people get bored of their cars in 3 months. I see a lot of my friends are planning to book Mahindra ka naya Scorpio or XUV 700 and all. They're not happy with their older car. Lot of it has been, we have been brainwashed that more amount of money will bring more happiness. Had I said the same pravachan 20 years back, probably there would not have been any audience. But believe me, if any of you can, that spending money, I mean, now I'm in a position to spend more money than, as I said, many times I went to Europe for holiday, or I had a bigger car as well. It doesn't make you happy. So the question that, spending today or spending tomorrow, spending doesn't make you happy. Having more money makes you happy because you're better prepared for emergencies. You're better prepared to take care of your near and dear ones for their future needs. Having more money definitely makes one happy. अगर हमारे खर्चे 100 रुपए है और इनकम 90 रुपए है, that puts additional unhappiness, stress, misery, anxiety
in day-to-day life. So having more money is definitely a plus. Spending more money today rather than spending more money tomorrow, I'll say there are always various ways to enjoy your life without spending money. Uh, I'll tell you, I am very passionate about traveling. So initially, I didn't have money. So, but we decided to go to Kerala because at that point of time, Kerala was a raging destination, God's own country, and all that. I had made my own trip. Did not do any reservation, no agent, nothing. Landed there, and we took an auto, that tuk, and I did a lot of study on. There is a very fantastic website, IndiaMike.com, or even TripAdvisor has dedicated pages. So we did a lot of study, and a lot of foreigners recommended tuk in Kerala. They I don't know why these autos, not three wheelers, they call tuk. So we took a tuk, and that tuk was 10 rupees for a 3-4 kilometer in Kochi. It's a nice town in Kerala. And we asked that guy, if we hire you for the entire day, how much you'll charge? And he said $100. And those were the times, a dedicated cab would have costed $600. So this was an open tuk, a big one, a big Vikram. And me and my wife, we were sitting, and we asked him to go to this nearest beach. So we enjoyed sitting at the beach. And this was our dedicated commute in Kerala. In December, it was pretty hot, but not very hot. So then we went there, no planning, nothing. And there we inquired about government ferry. So they had a 4-destination circuit where they will take you to a church, they will take you to Sangong, they will take you to some historical site, and Chinese fishing net. Those who have been to Kochi, they'll understand. The entire thing costed 40 rupees per person. And, it was an open ferry, big ferry, where 50, 60 people will sit. And then we took that. So that was the first day of our itinerary there. 100 rupees on tuk and 40 rupees each on that 4 destination of Kochi we covered. Came back, we had a nice Kerala meal at a local dhaba kind of a restaurant. I think that was also pretty cheap, no 5-star, no fancy. No advanced planning. For next day, the counter, the tourism counter itself, Kerala tourism is awesome. He himself said, there's a full day trip. You can go go to a place. They will take you in a van, and then from there, full day trip in a very narrow boat, and they will take you along all the Kerala beaches which are there. On the both sides, they'll take you to all Kerala villages. On both sides, there were villages, and we were the only Indian couple. Rest of them were foreigners, and there was one couple from Australia. And that you won't believe that charge was 120 rupees for the entire day for one person. So my Kerala trip was one of the cheapest. Then when I went to Europe for a 15-day trip, I think I spent 5 lakh rupees. That was much later in life. So what I'm trying to tell you is I enjoyed Kerala probably much more than what I enjoyed Switzerland. And I'm not making this up. So this thing is very important to understand, that spending money doesn't make anyone happy, and that's very difficult to understand unless you see both. A lot of people don't see both. They will go in bigger cars, enjoy bigger holidays. They'll do everything bigger, so they'll not know what it is like to enjoy without money. And a lot of people are always hard, hand to mouth. They are not able to save that $100, $200, that 10,000 SIP. They're not able. So they always have this illusion that when I have a lot of money, I'll be happy. I, being touchwood fortunate one to have seen both, I can tell you that money, spending part of it doesn't make you any more happy. You just need to plan it well. And when you don't have money, but you have passion to plan it well, you end up enjoying more, and it throws you a lot of good surprises. I mean, we were in Munnar, and we decided to skip lunch. And there was a dam, and we went to the dam. We had pineapple there and aam ka curry there. They put a lot of salt and chaat masala and all that. That was our lunch. And that was much better than any Swiss lunch we had later in Europe. So, and that's why once you save a lot of money and not spend it, make it a habit that you will enjoy without money. And then when later in your life you have that money, you get to enjoy both. And there is another thing which I wanted to say in the same answer, and that was that, we think that we will not be enjoying
जैसे ये जवानी लौट के नहीं आएगी. I'll not be able to enjoy later on. When I'm 40 or when I'm 60, when I'm 70, I still think that. But now this realization is coming to me that we are always young at heart. हमारा शरीर शायद बूढ़ा हो जाता है, but the same desire to have the fastest car, desire to spend a night in a posh 5-star hotel or to have a brunch in a 5-star hotel, that desire never dies. So wait for it to ferment it, wait for it to marinate it for years and years, and then when you relish, when you have enough money and more, the same desire will be there, the same kick will be there. Rather than borrowing and spending on that brunch right now and then getting used to it and never having enough, and then when you're 40 or 50 or 60, it's the same food. So there is no kick, no money. Have I answered your question? Yes, you have. Thank you so much for that. I'm sure you must be having some follow-up question. एक किसी पे follow up है छोटा सा. Then what makes you truly happy? I was listening very carefully and with all patient. But क्या आपको सच में खुश करता है? Just 4-5 items, not in detail. I mean, you have I know you have made it like a meme on me. What I'll do, No, what makes not me at all. happy, when do I sleep? Oh, did I have my lunch today? I wish you were a girl. So, what makes me truly happy? ये सवाल था सर, मतलब आप गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हो. Talking on spaces makes me truly happy. That's one. Being appreciated, that makes me happy. I'm being very honest. Having a lot of money in the bank account, that makes me very happy. And that is the reason I try, my bank balance should increase. Seeing that money grow, it makes me truly happy rather than spending it. Traveling makes me truly happy. Driving a fast car, that makes me truly happy. And what else makes me truly happy? Seeing Food, your loved ones happy. That's very cliche, but I mean, not that much. We are being honest here, so 10 marks for honesty, sir. yeah, not that much. Because Anand, we take them for granted, right? Hey, just go with 1 second. We take them for granted, right? So, I mean, I can visit my parents every month, but I don't. Right? I should. I know. But it makes me happy to think about that I'll visit them. But once we meet 1 ghanta, 2 ghanta, 4 ghanta, I start getting bored. So, no, that doesn't make me very happy. Yeah, and food makes me very happy. I mean, various kinds of food. I mean, so enough about me, right? If people start leaving now because of these question answers, Ravi, I'm going to go to your spaces and I'm going to ask difficult questions. So yeah, I'll go in. Anand, to your previous point, regarding the trips that you compared, तो आप ये नहीं मतलब आपको लगता है like utility is a major factor in that also, because जब आप थोड़ा financially ज़्यादा independent हो जाते हो तो the additional utility that you derive from this foreign trip or a Europe trip is lesser than the first initial trip that you do जब आपके पास कम पैसे होते हैं और वो ज़्यादा आप नहीं, मैं जब पहली बार यूरोप गया तो मेरे पास बहुत कम पैसे थे. Me and my wife went and somehow touchwood I could convince her that असली मजा तो पैसा ना खर्च करने में. So to give you we stayed in youth hostels. We stayed in hotels which had a common bathroom, like at the end of the corridor, not exactly dormitories. And we stayed in hotels where they had like एक single room होता है and room में ही एक bed के ऊपर दूसरा bed होता है, so that if 3 people are staying or 4 people are staying, they can double deck it again. So like pretty cheap. And I swear to God, I'm not lying. My wife is a vegetarian and Indian food is very expensive there. All 3 meals. We were there 7 days in Switzerland and 3 days in Paris. All 3 meals we had at Burger King. And at the end of the day, like 4-5 days, it was like वो burger देख के vomit आता था, because McD there did not have a veg burger. And pizza was 20 euro and burger used to be 1.5 euro or 2 euro and meal is like 3 euro that time. So and we used to जैसे morning में और हमारे यहाँ hotel में breakfast was not included. It was 11 euros.
So we did not take breakfast. Very lavish breakfast, but everything was non-veg. So we used to buy these. वहाँ पे एक डेयरी बहुत अच्छा होता है स्विट्जरलैंड में. तो we used to buy this ये पैकेज उनका 1-1 लीटर का लस्सी का पैक होता था. I don't know, they used to call it something else, but वो मीठा होता था, दही होता था. एंड दही पेट के लिए भी अच्छा होता है और बहुत फुलफिलिंग भी होता है. तो 1 लीटर ले लिया और उसको पीते गए और फिर सीधा लंच करते थे हम लोग. लंच में क्या बर्गर किंग खाते थे. Only once in Paris we went to we went for a full cuisine restaurant where we had a meal and that costed us around 32 euro, which had I took wine as well. So I mean, even if anybody wants to go to Switzerland right now, it's not very expensive if you decide and if you put your foot down that I'm not going to spend recklessly. So from choosing an airline, we went through Qatar Airways and we had a halt of 11 hours in Qatar. A lot of people go direct, so it costs you more. So it was a backpacking trip, which a lot of Europeans do to India and a lot of Indian students do. But we did, and it was much more enjoyable. I forgot what was the entire question. No, it was just based on like the utility part. So I feel like after a certain level that the utility. See, you have to set your priorities right. See, priority number one has to be कि यार फ्यूचर में किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, फ्यूचर में रोना नहीं पड़े. That was the first priority, which I see a lot. When I see someone crying for help genuinely for 10 lakh rupees, 15 lakh rupees for some surgery on keto or milap or whatever, I'm talking about genuine cases. First thing I feel bad about it is that it can happen to anybody, right? It can happen to you, me, or anybody, right? Have we planned for it before we spend? Yes, बहुत मतलब मुझे लगता है कि बहुत ही डिफिकल्ट टाइम होता होगा अगर किसी के सामने हाथ फैलाने पड़े. तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी तो शुरू से ही था यार कि मेरे को हाथ नहीं फैलाने किसी के सामने. उसके बाद ये था कि यार ट्रैवल भी करना है एंड आई कांट वेट टिल माय नीज वियर आउट एंड मेरे को साला खड़े नहीं हुआ जा रहा. तब तक मैंने मुझे ना रिटायरमेंट के बाद बहुत लोग जाते हैं 5 कंट्री ट्रिप. वैसा नहीं करना था मेरे को. यंग एज में घूमना था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि आप 40s में भी घूम सकते हो, 50s में भी घूम सकते हो. उतना ही मजा आता है. मुझे ये उस टाइम तो नहीं पता था. तो मैंने बोल रहा कि ठीक है चलो घूमेंगे भी, लेकिन फर्स्ट आई विल डू माय सेविंग्स. उसके बाद अगर कुछ सरप्लस बचता है तो घूमेंगे. एंड देन इट टर्न आउट टू बी ब्यूटीफुल. Thank you, Anand. Yeah, Gurleen, you had some follow-up question. Come on. Anand, disciplined trader here. Yeah. Discipline. One second. Sure. Bolo, Gurleen. You there, Gurleen? Yes, I'm there. No, I just wanted to add this point. This is one line that I've heard. It's not coming from me, but that money is a powerful thing, and you should know when to say no to it. I guess that's what it's all about. Pretty insightful. You want to elaborate on it? I mean, in the similar manner that you just said, that, as Ravi also asked that, what makes you truly happy? So I think, the answer to that would be that it is a very subjective question. Because, anything can make anybody happy considering any situation. Maybe it might be having the best breakfast, that your mom has cooked, your favorite dish for you. Just give me a second, please. Yeah, in the meantime, I'll come back to you, Gurleen. Discipline, boliye. Yeah, Anand, well, just to add, what you were saying about the Switzerland trip, right? So I was in Zurich trip, and I returned to India a couple of days back, right? So just to give you, some, thoughts into that, for which may help, if somebody is planning to go. So you went to Zurich for personal enjoyment, or you were working? No, it was a business trip actually. I was. What kind of business you do? No. I mean, I work in an MNC, right? I have, my key suppliers who are based in Europe, right? So what product? IT hardware. I'm sorry, I'm very curious. IT hardware and software. IT hardware and software. Wow. Okay. Yeah. So in Switzerland, where else you went apart from Zurich? I went to Baden and Bern. Bern. Yeah. Did you go to Interlaken? Did you go to? Yeah. I went to Interlaken and I went to Mount Titlis.
Mount Titlis, I also went. I started. I went to St. Maurice. I mean, a lot. Again, this I wanted to tell to the wider audience as well that a lot of people tell me that they are very passionate about traveling, but places they have traveled to, they will go to one particular place and they will click like 1,000 photographs and best friend for Instagram or Twitter and all. I went to Switzerland, and even now I can tell you each and everything. I researched so much before I reached there. I went to St. Maurice first. I landed in Zurich. Then from there we took a train, and then we kept on changing train. And straight away, first night we landed in St. Maurice. Next day we roamed around St. Maurice, and we went to there's an Italian border. We went there, and then we took Glacial Express, and we deboarded that at near Interlaken, and then we went to Jungfrau and other places. So so point I'm trying to tell you is sometimes we say that we travel, we're passionate and all that, but we need to really look at it whether we are passionate or not. Yeah, Discipline. Sorry, I interrupted you. Go on. So where else you went? No problem. See, the thing is, I had occupied for most of the weekdays, with the work, right? But still, I managed to go to the Bern, where it is the capital of Switzerland, where they have their parliament and all those things. Yeah. Right. That was one good thing. And Saturday I went to Mount Titlis and Luzern and those things, right? And Sunday I was in the Zurich city, the Zurich Lake, and I went to explore those kind of things, right? So I was just calculating, the cost that I've spent, right? So for me, except air tickets, for my accommodation and food, I think I have spent somewhere around 1.5 lakhs for 7 days. 7 days, yeah. Right. And one important thing I want to add here is that, I really didn't enjoy any of the food in Switzerland. I was eager, to come to India and, have the home food. Right. Yeah, Indian food, by the way, is there, but it's very expensive. In Zurich, it's exactly. like 40 euro per person. Exactly. I mean, Maggi is 1 euro and 40 times for Indian food, and very good food, people have told me. Exactly. Yeah. And coming to the question, which I had to ask you, right? It was more like a financial and personal kind of a thing. I wanted to ask you this question, from many days or months, right? So I was just wondering, internally whether it's the right thing, to say ask publicly and all those things. You are anyways anonymous, so yeah, you can. Yeah. So see, the thing is, I started my career in 2011, right? And my own brother, my elder brother, he started his career in 2009, right? In 2011, it was like, we both were earning same CTCs, right? Just to give you some figure, it was somewhere around 3.2 lakhs in 2011, right? Then per year or per month? That is per annum, per year. Okay. Right, in 2011, right? Then there was some opening in our company, and I referred my brother. Then he got selected, and he switched like 3-4 companies, till 2022 in the span of 10 years time. But I got stuck in the same company, right? Now the thing is, he's earning like 2.5 times more than me, right? That is not a problem, right? And the thing is, he got love married. He was in love with a girl, and he married her, right? And she works as a software engineer in a very big MNC, right? So cumulatively, if you see that they earn basically like 50 lakh per annum now, right? And from my perspective, I didn't wanted to break my parents' heart, as you're saying, right? Because this was very much similar in your situation, because your sister had something like that, then you didn't want to do that, right? I'm audible. Yes, you are audible. Like, okay, and your voice is very beautiful. Yeah, go on. I didn't want it to break my parents' heart. Then I went with an arranged marriage kind of a thing, and my wife is not working, right? So I'm the sole bread and butter earner in my family, right? That's not a problem. But the problem comes when my brother and sister-in-law treats everybody like they're the supreme, right? I don't know how to manage this relationship. I don't
feel like going into their house, interacting with them, nothing. But at the same time, I always remember he's sharing my blood, and he's my own brother. So what to do? I think money made them, change their mentality, and now each and every aspect of their life, they treat with some kind of like money-minded, thoughts. Yeah, see, you have asked a very pertinent question for people who are going through it. A lot of my audience is like pure youngsters, so they will not be able to relate to it. But let me tell you, it happens with almost every family, and this relation will make a lot of things impersonal. You will have, and you need to act on it. Otherwise, slowly this rift will widen. And I know a family where two brothers don't see each other. Mhm. Even Ambani family, you can see, right? Yeah. So you need to address it. Problem is that once your brother started earning and he switched jobs, obviously ambition, and then his wife is also working. So his decision making is being governed by his wife, which always happens. Especially when it comes to in-laws, and wife being independent and earning, and that too earning good, and driving all the decisions of your brother's household. Yeah. You have to understand that in life also you have to cut your losses. He is your blood brother. It's a given fact, but you can't help beyond a point. So you, whether you like it or not, you have to. Can you mute your mic, please? You have to restrict your relationship. You have to reduce it a lot. His wife might be insulting your parents as well, which also happens. It's not her fault, because as I said, it's like more of a biological process. And so you have to get out of the sight. If you are in the same city, you have to reduce your interaction. Don't force your interaction on your brother or on your sister-in-law. uh, it will make things worse. Reduce it as much as possible. Whether we like it or not, we as a society have evolved into nuclear families. So you think about your own family, your wife, your kids, if you have, and then if your energy permits, you can take care of your parents. Otherwise, I assume that your parents are capable enough to take care of themselves. That's the sad reality of life. You have to accept it. Once you have accepted it, after few months or few years, your brother and his wife will also accept it. That this couple has moved on, or things have changed, and they don't expect anything from us. Not even hospitality. Not forget about money or any gifts. Nothing. Then you'll see this will happen much later. Once you accept it, then your brother and his family accepts it after a time lag, and then you'll see change in their behavior. That will be the time to reconnect, and that is when you can become cordial for life. If you force too much too soon, because of your earlier relationship, because you grew together with your brother out of obligation will कहते हैं झेल लेगा, उसकी wife नहीं झेलेगी. I mean, his wife will not tolerate it. It will create bigger, ugly, visible, memorable fights between you, your wife, your brother, and the entire family, and which will create a rift for life. So don't do that. Create a distance. Stick to the distance. Let them change their behavior. It will change, and then maintain a very superficial, cordial relationship. That's how every family goes through it. And people who understand these nuances go through it quickly and slowly. Otherwise, people go through after a lot of ugliness. If I give you an example of famous Ambani family, late Dhirubhai Ambani did not have a will. He merged, in fact, all the entities into single Reliance Industries, and Mukesh Ambani was the chairman, and Anil Ambani was the vice chairman. Anil Ambani had a lot of other interests like politics, media, film stars, Sahara family, and all that. Mukesh Ambani did not like it. He later on told in an interview, and both the brothers fell apart. Then KV Kamath, who was ex-chairman of ICICI Bank, he did all the Mandawali in front of Mukesh Ambani's mother. He got RIL and rest of the business, including the business which Mukesh Ambani nurtured, Reliance Communication, Reliance Capital. It all went to Anil Ambani. He grounded it all to zero, and they fought a very bitter battle up to Supreme Court. Famous RNRL case to Reliance Industries. The thing is, they reconciled in 2015 or something. They reconciled,
They went to Tirupati together. They have a villa in Tirupati. They went, mother and two sons and the entire family. They went to Tirupati together. They buried all the hatchet. After a lot of ugly fight, and when Anil Ambani was supposed to go to jail in Ericsson case where he had promised bank guarantee of 250 crore, Mukesh Ambani bailed him out as well. And but Kokila Ambani said to him that beta market में अंबानी नाम खराब नहीं होना चाहिए. Then Mukesh Ambani replied to her that वो बहुत पहले खराब हो चुका है, अभी it is beyond reproach. And within 2 years, most of the Anil Ambani companies went bankrupt. They owe crores and crores of rupees to small to medium businessmen, to vendors, to employees, to PF. So long story short, what I'm saying, every family goes through this. Some go through ugly battle and then they reconcile. Some reconcile silently and then they become cordial. So if you have not encountered any ugly fights already, if it is like just discomfort and start of discomfort, create a wide visible distance, stick to it and let the time play out. They will realize very soon that money is not everything in life. Somebody, Ravi was asking about happiness and what makes me happy. So on happiness, there was a study done by none other than Harvard, and it was longest going study in Harvard. There's a TED talk also based on that study, and study was spearheaded by 4 professors because it went on for 75 years. They tracked graduates, 150 or 160 graduates for 75 years. Two of them became presidents, 2 of them became mafia leaders, some of them became gangsters and whatnot, fugitives. And they interviewed their family and they kept on interviewing various people for 75 years. And the conclusion was that, politics doesn't make you happy, money doesn't make you happy, travel doesn't make you happy, your spouse doesn't make you happy. What makes you happy, the common ground between all those 150 people spending their entire life, was your relationships make you happy ultimately. If you have warm, cordial relationships all around and less bitterness all around, that makes you ultimately happy. That doesn't make you आपको घुट घुट के जीना है, हमेशा compromise करना है. But there is a subtle art of ignoring small differences, giving benefit of doubt to people, and springing back to normalcy without compromising with your self-respect. So that I'll forward that study to you. Ultimately, your brother will also realize that money is not the source of happiness, at least showing off or spending part of it. And relationships, he has spent his childhood, his bachpan with you, so he's going to miss you. And if he has to be happy, ultimately he has to incorporate you in his life, and that will happen once you take a tough stand, once you create a distance, once you give importance to your self-respect. Yeah. And see, we always end up comparing ourselves, especially our spouse, wife, children. You 2 days ago, you spent your night in Zurich, in Switzerland. You have been to Mount Atlas. Many of Indians will never ever see Mount Atlas even on a TV. So you are like crema de layer. Don't start and end your comparison just in your home. Maybe your brother is doing good temporarily, but life throws a lot of ups and downs. You are doing fairly well. You are a rich guy, and you are made up man in your own right. So you have a lot of reasons to be independently happy without comparing with your brother. If at all you are comparing, I'm not saying you are comparing. Sir, if I may quickly. So बोलिए रवि, आपकी आवाज सुनने को तरस जाते हैं, बोलिए ना. अरे sir, so I wrote something similar on LinkedIn, and trust me, people heavily told by saying that that's a very privileged take, that money cannot make you happy. So I mean, definitely there are different aspects altogether, but great insights. Circling back to the topic of personal finance itself, and I think we were talking about abroad. I started my career with UAE. Like, I started with the base as Dubai, then Abu Dhabi, and later part of Middle East market, MENA entirely, right? With another company, I moved to Southeast Asia and launched businesses at Malaysia and Vietnam. Overall, what I'm trying to say that
you should understand the I think utmost importance of currency conversion, and especially forex card. There are multiple options available, but lately, thanks to some of the fintechs, you can use one of your debit card with that has zero MDR, and you don't need to pay 3.5 2.5% extra. So every time when you swipe your Indian credit and debit card, it attracts around 2.5 or Suddenly, 3.3% plus what are you USD. talking about? As if you are advertising for something. नहीं नहीं मैं एडवर्टाइज तो बिल्कुल नहीं कर रहा था सर प्रोडक्ट इसीलिए मैं प्रोडक्ट स्पेसिफिक नाम नहीं ले रहा बट आई थिंक इन द रिसेंट टाइम आई हैड दिस रियलाइजेशन यू नो दैट हम आप 1.5-2 लाख रुपए भी खर्च करते हो ना तो वापस आने के बाद में क्रेडिट कार्ड पे उसका बड़ा सा ड्यू दिखता है बट देर आर हैंडफुल ऑफ प्रोडक्ट्स आई थिंक प्रॉब्ली थैंक्स टू वीसीज मनी उनका ही पैसा बर्न हो रहा होगा लेकिन आप उसको यूज But Ravi, here I have to disagree with you on this. बताइए You should never use any credit card while Forex traveling card, sir. abroad. I'm saying Anand, sir, not I'm credit coming. card. I'm coming back. And you should use forex card only given by a bank, and that too. And you have the right to disagree with me. I know, and I'll allow you to say your piece. You use forex card only given by a bank, and that should have negotiated rates. A lot of people don't know you can based on your standing relationship with the bank you can negotiate those rates. You should have negotiated rates on that forex card and load in the currency where you are spending. So when I went to Switzerland, I loaded I knew exactly, we had prepared an Excel sheet. I knew exactly how much Swiss franc I was going to spend, how much I was going to spend on the travel pass, which is valid for 7 days or 14 days, how much I was going to spend on food and hotel and all that. So I had Swiss franc as I was going to Paris as well. So I had carrying euro as well. So always decide which currency you are going to spend and which currency, how much in which currency. Any standard bank forex card allows you to load up to 15 currencies. So if you're going to UAE, don't load dollars. If you're going to Saudi, don't load dollars. Right? Load the local currency if it is possible. And so, having said that, just one last minute. Having said that, this product is so toxic. There are so many hidden charges. That I can't even begin to tell you within 2-3 hours. So always better to be on top of things before you plan your trip, because this will make around 10% difference in your budget. If you are on a shoestring budget, so it matters a lot. It's just not any other thing. And also carry a lot of hard cash. Even you'll be surprised, in Europe, a lot of people prefer to take cash for small purchases. And your card might be declined. So you can't carry 2 cards because it will be expensive and all that. So carry some cash in local currency, never in dollar, because dollar conversion to local currency is going to be supremely expensive. So carry some cash. So let's say I was spending like 2-3 lakh rupees when I went to Europe. As around 50,000 equivalent rupees, I was carrying cash in my pocket, rest in a forex card, local currency, and never had a problem with the problem. Yeah, Ravi, go ahead. So, again, actionable insights. Have used all of these products, bank forex card and multi-currency cards, and also the debit card issued by fintechs lately. And I think I'll tell you something. So the negotiation piece, what you said, a lot of bank gives you this flexibility if you have a premium relationship with them, like 10-20 basis points on the live rates. But at the same time, I'm not sure if you have checked, the products what I'm referring to, Anand sir, where you get like live visa exchange rates with no, I think, forex markup. And I think I've used all of them, and trust me, I can clearly see the difference in my overall spending. I mean, if I'm loading 1000 USD in a forex card, but at the same time I'm using a card that has no ATM withdrawal fees even when I'm swiping the card abroad, or I'm getting live rates without any forex MDR, that makes a lot of sense. Also the hard cash thing, 10 रुपए के लिए हम यूपीआई करते हैं पास में, वहां जाके रियलाइज होता है कि अभी ये लोग काफी पीछे चल रहे हैं, मतलब आपको रखना ही पड़ेगा छोटे से लेके बड़े डिनोमिनेशन में कैश, उसके बिना काम नहीं चल रहा है. That's the limited point I wanted to make, but you should check out, I think, one of the neo bank, absolutely, I think, brilliant product I recently used, sir. Sure. Yeah, discipline. Go ahead. Sir, yeah, just regarding this forex card that you were talking about. Even I had carried a ICICI forex card, right? So
even though we are using forex card in the local currency, there are a lot of hidden charges. Like, say for example, they used to charge 3.5% as a transactional fees, and to the transaction fees they used to add 18% GST. Right? Wow. That's why I said it will take 2 to 3 hours to explain the complete thing. That's why one has to negotiate really hard to save some money there. And markup goes as high as like 5 to 10%. So if your trip is 3 lakh rupees, we're talking about 30 to 60,000, 30 to 40,000 rupees. So be well informed. There are a lot of websites, a lot of YouTube videos which will tell you pros and cons. I'm not saying my word is the gospel truth, but it's a very area to be looked at like so keenly that you become pretty good at it. Yeah. Anybody has any more question? Yeah, Himanshu. Hello Anand sir. Firstly, a small acknowledgement. बहुत नॉलेज ज्ञान भंडार यहाँ पे बह रहा है जो काफी कैच करने को है. And just few acknowledgements. I was not a follower of you. I guess before 30 days. I first heard you in Ravi's speech. And आज से कुछ साल पहले जब क्लब हाउस नया नया था, I used to use that. तब गोविंद वहाँ पे स्पेसेस नहीं, वहाँ पे कुछ और बोलते थे. मैंने अब क्लब हाउस डिलीट कर दिया. तो मैं तब उनके रूम्स में रहा करता था. एंड लेटर वो क्लब हाउस का कुछ इतना क्रेज रहा नहीं, एंड उसमें काफी कुछ चीजें ऐसी अनवांटेड सी दिखने लगी. सो आई जस्ट अनइंस्टॉल्ड इट. एंड स्पेसेस इज समथिंग गुड. एंड so yeah, it's lovely. And for the first time I guess I'm speaking on a space. Thanks to you. I mean, you gave me this opportunity. मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने थे. काफी सारी चीजें कवर की आपने, मतलब काफी सारी चीजें मिली हैं, बट कुछ क्वेश्चंस हैं. जैसे आप इनिशियल आई गेस इस कॉल की शुरुआत हुई थी टर्म इंश्योरेंस से. टर्म एंड इंश्योरेंसेज ऑल मैंने स्टार्टिंग में ज्वाइन नहीं कर पाया था, लेट ज्वाइन किया था मैंने. बट एक क्वेश्चन मेरे पास हमेशा रहा है. If you want, I mean, a bit small intro about me. So I'm currently 23 and recently campus placed. उससे पहले मैं थोड़ी survival jobs जिसे कहते हैं. I used to work in a BPO for few startups basically. So अभी recently I got campus placed. एंड एक जो टर्म इंश्योरेंस की बात हुई वो मुझे काफी टाइम से था कि एज कम है तो अच्छे प्राइस पे मिल जाएगा, तो आई शुड टेक इट. आई टोल्ड दैट टू माय मॉम एज वेल. तो मेरी मम्मा को मैंने जब टर्म इंश्योरेंस समझाया तो वो तो कहती कि अभी से इतना सोचना क्यों. एंड I do not belong to a creamy family. I guess I belong to very middle class or a bit on the lower hand. We don't have huge assets, creamy assets. No property, zero property, to be fair and honest. So ऐसा कुछ है. So I wanted to take term insurance. अभी I am in that capacity कि मैं ले भी सकता हूँ. So just one thing, what do you think is the right age? मतलब term insurance के लिए cover period रहता, life period. So what should be that? I always stuck in that because age expectancy is increasing, and a thing that goes in my mind is अगर मैं 80 years का लेता हूँ and if I live till 82, what then? So this is the first question from a series of small questions that I have. A short answer if you can give on this. आनंद सर आप म्यूट पे हो, इन केस या सॉरी. सो यार एक चीज तो देखो तुम्हें बताना बहुत जरूरी है कि हिमांशु, मॉम्स आर ऑलवेज राइट. ओके, टिल यू गेट मैरिड मॉम्स आर ऑलवेज राइट. उसके बाद स्टोरी चेंज हो जाती है. हार्ड फैक्ट ऑफ लाइफ. सो योर मॉम इज राइट. यू हैव जस्ट स्टार्टेड अर्निंग. एंजॉय योर लाइफ. ओके, सो एटलीस्ट फर्स्ट ईयर ऑफ योर जॉब और समथिंग, try to spend, see what money does for you. And as you're saying that you are from a typical lower middle class family, so see, power of money. Once you realize the power of money, then you will be more inclined to save it. So enjoy करो, दोस्तों के साथ बाहर जाओ, सैलरी पूरा स्पेंड कर दो, do some value addition. रही बात टर्म इंश्योरेंस की, तो अभी तुम्हारी एज में इतना सस्ता होता है कि अगर तुमने 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस लिया, हिमांशु तुम्हारे नाम से लगता है कि तुम्हें हिंदी आती होगी, तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ. ओके, नहीं बिल्कुल सर, अच्छे से लिखने में जरूर कमजोर हूँ, बैठा आती है. मेरठ से हो? कहाँ से हो? नहीं इंदौर से सर.
इंदौर से। वो जो कॉल्स आती है वो तुम ही कर रहे थे बीपीओ से। नहीं, मैं कॉल्स करता नहीं था, मैं कॉल्स उठाता था, जिसमें रवि भैया थोड़े से नाराज होते थे ना जोमेटो से, तो जोमेटो के लिए मैं करता था, मतलब रिसीव करता था कस्टमर ग्रीवियंसेस। ओके, सो द थिंग इज यू आर वेरी एंटरप्रेन्योरियल एज वेल। तुमने पहले भी बीपीओ में जॉब करी, स्ट्रगल करा, पैसे कमाए, तुम्हारी ट्रेजेक्टरी अच्छी जा रही है। लाइफ में एंजॉय करना भी जरूरी है, तो एंजॉय करो। और टर्म इंश्योरेंस अगर लेना है तो इट्स नॉट नो ब्रेनर, वो बहुत सस्ता होता है। 50 लाख का भी तुमने लिया तो साल का 8,000 10,000 ऐसा कुछ पड़ेगा तुम्हें। तो अभी ले लो, 2 साल बाद ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज तुम्हारी फाइनेंशियल लायबिलिटीज कुछ अभी है नहीं, तो हार्डली मैटर्स। 2 साल 3 साल। मेरा क्वेश्चन मेन कवरेज पीरियड पे था, मतलब मैं 80 इयर्स तक का लूं, 85 तक नहीं का नहीं लूं, नहीं 75? टर्म इंश्योरेंस तो जो भी सुन रहा है, किसी को भी टर्म इंश्योरेंस लेना है तो इट हैज टू बी टिल योर वर्किंग एज। इट्स अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। तो अगर कोई 40 साल का है तो मैं उसको बोलता हूँ 55 तक ही लो, क्योंकि 55 तक आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटीज काफी सेटल हो जाती हैं, बच्चे सेटल हो जाते हैं, आपने घर खरीद लिया होता है, आपकी सेविंग्स अच्छी हो जाती है। देन यू इवन इफ यू डाई योर फैमिली इज गुड ऑफ फाइनेंशियली। अगर कोई 30 साल का है तो मैं उसको बोलता हूँ आप 60 साल का लो, ताकि 60 साल तक के बीच में कुछ भी हो जाए, आपको पता नहीं जॉब कब रहेगी नहीं रहेगी कुछ भी, तो आप कभी भी मरे तो आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फैमिली के लिए रहेगी। अगर कोई 25 साल का है तो भी मैं वही बोलूंगा, चूंकि बहुत सस्ता होता है 25 साल की उम्र में, तो आप 60 साल तक लो। 60 के बियॉन्ड तो किसी को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जब आप एनीवेज रिटायर्ड लाइफ ही जीने वाले थे, तो आप रहे कि नहीं रहे, अगर नहीं रहे तो अच्छा ही, एक घर में खाने वाला कम हो जाएगा, खर्चे कम हो जाएंगे। आई एम बीइंग वेरी फाइनेंशियल आंसर दे रहा हूँ, इसको बहुत इमोशनली मत ले लेना। तो इसलिए 60 के बाद तो, और जैसे आप प्रीमियम बढ़ाते हो ना, 60 के बाद 70 कर लेते हो, 80 कर लेते हो, तो प्रीमियम बहुत बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ कि 60 के बियॉन्ड तो कभी सोचना भी नहीं चाहिए। और अभी आपकी टर्म की लेने की एक्चुअली बहुत एज है नहीं, एडवांटेज जरूर रहता है प्रीमियम में, बट अभी नया नया जॉब शुरू किया है, फिर माँ बाप ने भी, जैसा बोल रहे हो कि बहुत पैसा नहीं देखा है, तो मम्मी के लिए अच्छी साड़ी वाड़ी खरीदो और अच्छे रेस्टोरेंट में घुमाओ, एक आध 2 फ्लाइट टिकट बुक कराओ, खर्चे करो अभी। और साथ में जैसे जैसे खर्चे होंगे तो ये भी बहुत बर्निंग डिजायर, चूंकि आप बीपीओ में काम कर चुके हो, तो आपको ये बर्निंग डिजायर भी साथ में आएगी यार, कि मैं और कमा लूं, मैं साइड में कुछ बिजनेस कर लूं, मैं सोशल मीडिया भी कर लूं, आपके जैसे चेहरा देख के लग रहा है आपको लगेगा पार्ट टाइम मॉडलिंग भी कर लूं। तो कुछ कुछ पैसा कमाने की भी जो एक वो होती है ना बर्निंग डिजायर, वो भी आनी चाहिए, वो आएगी जब खर्चे करोगे तो डोंट बी वेरी कंफर्टेबल विथ योर सेविंग्स, और करो कुछ साइड में, कुछ और करो, कुछ वैल्यू एडिशन करो, सोशल मीडिया करो, एमबीए करो, रुक मत जाओ, पैसे भी कमाते रहो, खर्च भी करते रहो, और भी ज्यादा कमाने की बर्निंग डिजायर भी रखो। श्योर सर, मॉडलिंग की तो बिल्कुल इच्छा नहीं, साइड में कुछ करने की बिल्कुल है। नहीं, बट ये टैलेंट वेस्ट क्यों करना इतना, मतलब मेरा तो ऐसा चेहरा होता तो मेरा फर्स्ट गो टू वही होता। नहीं सर, वो वाला सीन नहीं है। थैंक यू, बट आपको ऐसा लगा। एंड क्या यू बी सरप्राइज, ऐसा पहली बार थोड़ी ना किसी ने बोला होगा। क्यूट हो ऐसा तो बोला होगा ना कॉलेज में, क्लास में, यू आर वेरी क्यूट। सर वो बस नहीं रहने देते हैं। नहीं, सच बताने की, देखो मैं एक भी चीज झूठ नहीं बोली, कसम से बोल रहा हूँ, सब मैंने सच बताया, तो आप बता दो, बोला किसी ने आज तक यू लुकिंग वेरी क्यूट टुडे? सर बट नहीं, मतलब वो पता है, वो शॉर्ट टर्म फायदा उठाने के लिए रहता है, ऐसा होता है। तो इधर आपका वही तो है, आपको क्या बताइए, बट हाँ कॉलेज में तो ऐसे ही होता है, मैनिपुलेट करने के लिए, आपसे लैब रिपोर्ट लिखवाने के लिए। राइट, पीपीटी बनवाने के लिए। मैं पीपीटी में काफी अच्छा था, ऐसे कमेंट्स थे मुझ पे, तो मैंने बहुत पीपीटी बनाई अपने अंडरग्रेड में। बताओ, मतलब तो पीपीटी बना के कोई फायदा नहीं हुआ? नहीं सर, वो तो सब ऐसे ही है, मतलब ठीक है, वो बोलते हैं ना, अंडरस्टैंडिंग वुमेन इज टफेस्ट थिंग, तो वो वाली चीज भी है। और ऐसे ही रहता है सर, मतलब आपका माइंडसेट हर किसी से मैच नहीं होता। मतलब आप अच्छी फैमिली, आपकी ब्रिंगिंग अच्छी है, आपकी मम्मा ने अच्छी चीजें बताई हैं, जरूरी नहीं हर कोई उन्हीं संगत में रहा है। तो बहुत दर्द है यार तुम्हारी आवाज में, बहुत दर्द है यार, बहुत दर्द है। इतनी यंग एज में इतना दर्द आवाज में। आनंद सर, एंड आई थिंक गेस्ट ऑन अ सीरियस नोट, सारे ना पर्सनल फाइनेंस स्पेसेस में आपको इन्वेस्टिंग सेविंग्स के बारे में बात करते हैं। सो आनंद सर सब जुड़ा हुआ है दोस्त, ये जो पैसे खर्च करवाने के लिए भी सर बोल रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट लो और इनको टैग करो यार टाइम के लिए। ओके श्योर। तो हिमांशु, बात करेंगे तुम्हारी दर्द के बारे में। इतनी यंग एज में इतना दिल टूटना अच्छी बात नहीं है। नहीं सर, वो तो हो गया, ऐसा कुछ कोई दर्द नहीं अभी, वो तो ठीक है। पता नहीं मेरी आवाज में वो वैसा झलकता है, बट सर एक दो छोटे से और क्वेश्चन से पूछो ना, 1000 क्वेश्चन पूछो, ये तो 30 सेकंड वाला स्पेस है ही नहीं है। हाँ सर, 4 घंटे तो हो गए ऑलरेडी। बोलो। हाँ सर, एक क्वेश्चन ये था कि मैं अभी रिसेंटली कैंपस प्लेस हुआ ना, जब
तो पहली कंपनी जिसने मुझे पिक किया, एक मेरे साथ इशू ये था कि मेरे ना 10th-12th में परसेंटेज काफी लो थे। सो सारी अच्छी कंपनीज जो थी, दो आई वाज पार्ट ऑफ प्लेसमेंट सेल इन माय कॉलेज, बट सारी अच्छी कंपनीज में मैंने जाते देखा बच्चों को, जस्ट बिकॉज देयर परसेंटेज वर गुड एंड दे वर अलाउड टू सिट इन द इंटरव्यू। मेरे साथ वो सीन नहीं था, मेरा प्लेसमेंट काफी एंड में हुआ, बट उसके बाद मुझे ना 2 ऑफर आए। एक में मैं ले चुका था, तो मैं वो गलत नहीं चाहता था, एथिकली गलत लग रहा था मुझे कि मैंने ज्वाइन कर लिया, कुछ दिन हो गए हैं, अब मैं दूसरी जगह जाऊं। बट 2 ऑफर से, वैसे मैं नाम नहीं लेता आप जैसा कहते हैं, बट एक ऑफर एक आईटी कंपनी में था एंड सेकंड एचडीएफसी में था, एचडीएफसी लिमिटेड, नॉट एचडीएफसी बैंक। तो बट जैसा कि अनाउंसमेंट तो आ चुका है, दोनों एक होने वाले हैं, ऑन ग्राउंड होने में शायद 12 महीने लगभग लगेंगे। सो द सेकंड ऑफर फ्रॉम एचडीएफसी बैंक वाज इन माय ओन सिटी and they were paying 50K more than my current CTC in the other company. So but I went with that IT company because 2-3 रीजन थे। एक सैटरडे संडे ऑफ, दूसरा मुझे लगता है कि वहाँ ग्रोथ ज्यादा है, बैंक एक बार कंबाइन हो गई तो शायद हेक्टिक ज्यादा हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। बाकी मैंने काफी उनसे रिव्यू लिए, एचडीएफसी का रिव्यू तो काफी अच्छा था, लेकिन मर्ज होने के बाद तो जो मेरा सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू ले रहे थे, जो वहाँ के ब्रांच के हेड थे, तो वो खुद भी बोलते कि 12 महीने बाद तुम्हारा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मुझे नहीं पता। तो वो वाली चीज है। तो डिड आई मेक अ राइट डिसीजन ऑन फाइनेंस पर्सपेक्टिव कि इधर अगर मैं सिटी में रहता हूँ ना तो काफी सेव कर सकता हूँ। अभी वहां पे तो जो मेरा करंट जॉब है, वहाँ वो मेरा बेस लोकेशन है मुंबई। मैं अभी तो इंदौर से वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। अभी तुम इंदौरी साहब सुनो, ये तुमने इंजीनियरिंग कौन सी उसमें की है? सर मैंने इंजीनियरिंग नहीं करी है, मैं मैनेजमेंट बैकग्राउंड को, मेरा बीकॉम था अंडरग्रेड में, एंड राइट नाउ आई डिड माय एमबीए इन फाइनेंस प्लस मार्केटिंग। तो अच्छा, फाइनेंस प्लस मार्केटिंग ना, हाँ तो ठीक है, फिर तो आईटी कंपनी में जाके कोई फायदा नहीं है, तुम उसी के बैंक में चले जाओ और घर से बाहर रहोगे। यार ये सेविंग 23 साल की उम्र है, इतने एंटरप्रेन्योर हो, बीपीओ में काम कर चुके हो, कैंपस से जॉब लग गई है, बॉम्बे जाओ, सीधा टिंडर डाउनलोड करो, जो दिल टूटा है उसको फेविक्विक से चिपकाओ, ओके, और 1-2 साल के बाद फिर सेविंग होगी सेविंग। मैं अभी तुमसे पहले जितने लोग आए थे उम्र के अलग अलग पड़ाव में थे, मैं सबको बोला सेविंग करो, बहुत जरूरी है। तुम्हारी 23 साल की उम्र है, आवाज में इतना दर्द है, अभी इंजॉय करो लाइफ को, बॉम्बे जाओ, बड़ी सिटी है, सपनों का शहर है, और वहां पे आप फुल टुक इंजॉय करिए, ओके। और मम्मी पापा से आप फेस टाइम करिए, और लाइफ में फुल 2 साल फुल इंजॉय करो, okay, which will include lot of, as Gurleen was saying, which will include lot of spending money, okay। अगर आप मतलब अच्छे पब में जाओ, अच्छे डिस्क में जाओ, और ये सब भी करने के बहुत कम पैसे में तरीके होते हैं, वो भी ढूंढो। नेवर स्पेंड मोर देन योर सैलरी, डोंट हैव एनी क्रेडिट कार्ड, बट आपको कहीं जा रहे हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करो तो सैलरी ठीक ठाक मिलेगी, और आप ये करो। इंदौर में मत चिपक के रहो, सेविंग के चक्कर में करियर मत डिसाइड करो, करियर कम्स फर्स्ट, सेविंग कम्स लेटर, ओके। तो करियर में आप जो एक सेकंड सर, बस 30 सेकंड। हिमांशु की बात काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। सो एज अ पर्सन ऑफ 78 years, I would like to just share 1 or 2 things for him, if you don't mind. Sure sir, go ahead. Yeah. देखो भाई हिमांशु, आपकी अभी जो उम्र है, सो जो आपका दिल चाहे वो ईमानदारी से करो, पैसा जहां भी जाओगे अच्छा काम करोगे तो पैसा बनेगा। दूसरी बात जो आपने कही इंश्योरेंस के बारे में, तो इंश्योरेंस के बारे में एक चीज हमेशा ख्याल में रखो कि इंश्योरेंस जो आपको करना है वो आपके ऊपर जो निर्भर हैं, डिपेंडेंट्स हैं, उन लोग के लिए करना है। जब तक आपकी ये जरूरत अभी आवश्यकता नहीं है तब तक इंश्योरेंस देखो, और जब 50-55 साल की आपकी उम्र हो जाएगी तब तक का कवरेज करोगे तो ये कवर हो जाएगा। क्योंकि बाद में जो है, जो भी पैसा है, एज यू ग्रो ओल्डर, योर फंड्स विल बी देयर which will take care of your emergency funds, and parents can be taken care of, your family can be taken care of, और उससे ज्यादा इंश्योरेंस में जाना नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट, आप कॉमर्स वाले होकर के बताता हूँ, ये 2 चीज मिक्स नहीं करना। इंश्योरेंस हमेशा सेफ्टी के लिए है और इन्वेस्टमेंट आपका फंड बढ़ाने के लिए है, तो ये ख्याल में रखो और हिम्मत से आगे बढ़ो, चौकस रहो, बस इतना ही कहना था। थैंक यू। थैंक यू फॉर काइंड वर्ड्स, थैंक्स अ लॉट सर। हाँ, तो हिमांशु तुम फाइनेंशियल वो ज्वाइन कर लो इंस्टीट्यूशन,
तुमने MBA किया हुआ है और BCom का बैकग्राउंड है, तो उसको करो, दिल लगा के जॉब करो, मेहनत से जॉब करो, मेहनत से पार्टी करो, और जैसे मैंने बोला कि लाइफ को एंजॉय करो. राइट. जस्ट वन पॉइंट टू ऐड ऑन सर, वो शायद आपको कुछ कंफ्यूजन हो गया. मेरा जो IT कंपनी दैट इज इन मुंबई एंड जो SDFC में रहा दैट इज इन हियर माय होम टाउन. सो आई एम राइट नाउ वर्किंग फॉर दैट IT इन मुंबई. अभी वर्क फ्रॉम होम है, कुछ महीने में वहाँ पे कॉल आएगा. एंड वन मोर थिंग सर, टिंडर पे मैं बैंड हूँ, उसका मैं स्टोरी बाद में बताऊंगा. वो मैंने 2020 में अच्छा तुमने एक्सप्लोर किया मतलब होगा. काफी अच्छे से कांड कर लिया तुमने. स्कैम कर दिया था क्या? लड़की बन के पैसा मंगा लेते थे लोगों से. नहीं समझ रहा हूँ मैं. हाँ, नहीं, वो बहुत चला था 2 साल पहले. नहीं सर, मैंने किम जोंग उन के नाम पे ID बना दी थी सर, तो टिंडर ने मुझे बैन कर दिया परमानेंट. ऐसी जस्ट फॉर फन ID बनाई थी. तो मैं अभी बम्बल यूज करता हूँ, बट उधर का एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं. बम्बल के स्टॉक में मैंने बम्बल से ज्यादा मतलब जितनी डेट्स पे नहीं गया हूँ, उससे ज्यादा कुछ डॉलर्स उसमें है. ऑन अ सीरियस नोट यार, तुम अगर तुम्हारी पहली जॉब है ले लो, लेकिन जॉब ढूंढते रहो एंड ट्राई टू माइग्रेट टू बिगर सिटी. यू शुड हैव एक्सपीरियंस बियॉन्ड योर होम टाउन. दैट इज माय सीरियस एडवाइस टू यू. Okay, sure sir, I'll keep that in mind. Thanks a lot sir. Okay. Hello sir. Lot of new people have joined. मेरे दोनों co-host मुझे please help करो in moderating the discussion. Okay, I'm not able to keep track. हाँ, एक बोलिए. हेलो बोलिए. हेलो सर, संतोष, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ. बात करिए ना फिर. हाँ सर, ये मैं बोल रहा हूँ कि मेरी जो है नई कंपनी मैंने स्टार्टअप करा है. एक्चुअली ये जो प्रोग्राम शुरू हुआ था आप लोग का होस्टिंग, मुझे पता नहीं था किस टॉपिक पे डिस्कस हो रही है. हमें भी नहीं पता था. सर आप होस्ट कर रहे हैं, आपको तो पता होगी कि किस टॉपिक पे बात चल रही है यहाँ पे. तो मुझे आप लोगों से सर ये आइडिया लेना था कि एक्चुअली मैंने नया मैं बैंकिंग सेक्टर से हूँ, तो मैं अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अभी रजिस्टर्ड कराया हूँ दिल्ली से. बोलिए, सुनाई दे रहा है, बोलिए, क्वेश्चन पूछ लीजिए. गए क्या? हेलो. हाँ, आवाज कट गई थी. दो जल्दी से पूछो ना, आपका कनेक्शन पैची है. अच्छा, मैं बोल रहा हूँ ना सर कि जैसे क्या है, मैं बैंकिंग सेक्टर से हूँ. सुना. आवाज आगे बताइए. नई कंपनी रजिस्टर कर रहा हूँ, बट इसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा है नहीं. कंपनी को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे उसको. यार ये अपन ऑफलाइन ले लेते हैं, बिकॉज इट विल नॉट बी रिलेवेंट एंड इट्स नॉट इजी टू आंसर इन 10 मिनट्स. ओके, आप मुझे पिंग करना, मैं आपसे ऑफलाइन डिस्कस करता हूँ. ओके. ओके सर. नेक्स्ट क्वेश्चन. रवि, आज आप बहुत लंबा रुक गए, मुझे को इतनी खुशी हो रही है, मतलब उम्मीद नहीं थी आप इतने बिजी रहते हो. हाँ, अलेक्जेंडर बोलिए. मैं ITR फिर से रिव्यू कर रहा हूँ, तो आपका स्पेस सुन रहा हूँ और ITR भी चल रहा है साथ में. तो पोर्टल चल रहा है ITR वाला अभी? मैं तो थर्ड पार्टी यूज करता हूँ, तो वो चल रहा है. क्या बात है. डिपार्टमेंट का आपकी तो पार्टी है. अलेक्जेंडर, प्लीज गो ऑन. Hello sir, good afternoon. Actually sir, I joined the discussion lately and I heard about traveling. So sir, मैं मेरा बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बोलना चाहूँगा. मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, मतलब बैंक में मैनेजर था. अभी मैं 27 साल का हूँ और मैंने जॉब छोड़ दिया, ट्रेडिंग किया, क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग बहुत अच्छा लगता है. मेरा पैशन है, तो इसके वजह से ट्रेडिंग करने लगा जॉब छोड़ के. और पोर्टफोलियो शुरू किया था 5 लाख से सर, अभी 40 लाख अराउंड है ट्रेडिंग में. तो आगे मैं ट्रैवलिंग का प्लान करना चाहता हूँ शादी से पहले. तो थोड़ा आप लोग अगर मुझे गाइड कर सकते हैं कैसे मतलब क्या करना चाहिए, तो नहीं तो भैया अलेक्जेंडर, मेरे को ये बताओ कि आपको अपनी होने वाली वाइफ से क्या प्रॉब्लम है? उसके साथ भी तो ट्रैवल कर सकते हो, शादी से पहले क्यों ट्रैवल करना है? खर्चा कम होगा इसलिए. यार 5 लाख का 40 लाख कर लिया तुमने, तो अगला जो धीरू भाई अंबानी, हर्षित मेहता का कॉम्बो तुम ही हो, और तुम बोल रहे हो कि मेरे को शादी से पहले ट्रैवल करना है. 40 का 4 करोड़ हो जाएगा ना, पैसा तो आता जाता रहेगा. हाँ सर, वो तो जिंदगी का असली मजा तो शेयर करने में यार, एक्सपीरियंस शेयर करो. आई एम नॉट अ फैन ऑफ सोलो ट्रैवलिंग. जब एक्सपीरियंस शेयर करोगे, जब साथ में घूमोगे, तब तो मजा आएगा. अभी तो मैं बोलूंगा आप ट्रैवल करो ही मत, बचा के रखो. थोड़ा गाइड कीजिएगा प्लीज. मैं अगर मतलब प्री मैच्योरली ट्रैवल कर लूंगा या कुछ गलती हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा डर रहा हूँ. तो मत करो ट्रैवल, वही तो कर रहा हूँ. पूरा दिमाग ट्रेडिंग और ट्रैवल ये ऐसा है जैसे कि समझो कि
पेट्रोल और पीने का पानी दोनों नहीं मिला सकते। वो ट्विटर पे अच्छा लगता है, मैंने पिछले 15 साल में हर दिन ट्रेड किया है, ओके। लेकिन जब जब मैंने ट्रैवल किया है तो मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ है, और इट्स नॉट एडवाइजेबल थिंग टू डू। आप देखते हो लोग पूल में नहा रहे हैं, डिप मार रहे हैं, और वहां से बाय द डिप भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में। ट्रेडिंग डिमांड्स मतलब आपके दिमाग की तो दही हो रखी होती है, इवन इफ यू आर मेकिंग प्रॉफिट, ओके। तो ट्रेडिंग डिमांड लॉट ऑफ फोकस, और आप अपने आसपास के लोगों पे चिड़े रहते हो फॉर द मोमेंट, तो आप ट्रैवल को भी इंजॉय नहीं कर पाते। ट्रैवल ब्रिंग्स एडिशनल स्ट्रेस, तो ये दोनों को नहीं मिलाने का है, ओके। अगर आपको ट्रैवल करना है तो आप एक ब्रेक लो, आप ट्रैवल कर लो। नोबडी ट्रैवल्स 365 डेज अ ईयर। आप 5-6 दिन 10 दिन ट्रैवल कर लो, और मैं तो बोलूंगा कि किसी लड़की के साथ ही ट्रैवल करो, भले आप अपनी वाइफ के साथ करो या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करो, अकेले मत करो। और उसके बाद फिर वापस आओ और खुले दिमाग से फिर से ट्रेडिंग करो, फिर पैसा कमाओ, फिर ट्रैवल करो। ऐसा करना है बारी बारी से। जी 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 जी। नहीं सर, मैं 21 साल में जॉब पा लिया था, और उसके बाद 6 साल बाद मैं सिर्फ ट्रैवलिंग के गोल के हिसाब से मैं जॉब छोड़ा, क्योंकि जॉब के साथ ट्रैवलिंग करना बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए जॉब था। लेकिन मैं और आपके आपसे अगर थोड़ा सा हेल्प मिलता रहेगा बीच बीच में तो सर मेरे से क्या हेल्प चाहिए अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। यू वांट मी टू ट्रैवल विथ यू? नो सर, नो सर। एक्चुअली सर गाइड चाहिए थोड़ा, मतलब कैसे कैसे शुरू करना है, और वो सब मतलब जैसे आप अभी बोले कि नहीं वाइफ के साथ ट्रैवल करने से अच्छा है, तो ये हाँ, तो ये तो कोई भी बोलेगा यार। जी जी जी। ये तो कोई लाइफ चेंजिंग एडवाइस दी नहीं मैंने अभी तक तुमको। तुमको कहाँ कहाँ ट्रैवल करना? वेयर डू यू स्टे? वेरी इंटरेस्टिंग यार, वेयर डू यू स्टे? सर मैं ट्रैवल कर वर्ल्ड पूरा ट्रैवल करना चाहता हूँ। हाँ, तो कहाँ से शुरू करोगे? पहला स्टेशन कौन सा है? पहला स्टेशन तो सर मेरा होगा बेल्जियम से। नहीं, अभी कहाँ रहते हो जहां से ट्रेन पकड़ोगे? अभी सर उड़ीसा में हूँ। और उड़ीसा में कहाँ से? उड़ीसा तो बहुत बड़ा है। हाँ, उड़ीसा सर भुवनेश्वर से हूँ। ओके, तो भुवनेश्वर से जाओगे, और तुम्हें बेल्जियम क्यों जाना है? बेल्जियम में मेरा एक दोस्त है, मतलब चाइल्डहुड फ्रेंड है, वो सेटल्ड है, तो उसके साथ पहले मतलब थोड़ा वहां पे मुलाकात भी हो जाएगा और घूमना भी हो जाएगा, इसके हिसाब से। ओके, आई एम नॉट जजिंग यू, बट जिस तरह से तुम्हारी स्टोरी जा रही है एक अलग ही डायरेक्शन में जा रही है। जी जी जी। ओके, तो तुम बेल्जियम जाओगे अपने दोस्त से मिलने, ओके। बेल्जियम तो देखो बहुत अच्छी जगह है, इसमें नो डाउट, बट मैं बोलूंगा अगर तुमने अभी ट्रैवल किया है कहीं पर सर इंडिया में बहुत जगह किया हूँ ना मैं सर। जब जॉब छोड़ा जब, तो मुझे घर में बहुत, क्योंकि मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, अगर जब मैं जॉब छोड़ा तो घर में सब बोले कि नहीं ये ठीक नहीं है, वो तो मैं प्रेशर में आके मैं घर से चला गया था शिमला। शिमला में ठहरा था 7 महीने के लिए, तो शिमला से ही मेरा ट्रैवलिंग शुरू हुआ था। तुम खास शिमला में थे या आसपास कहीं थे? नहीं, शिमला में ही ठहरा था मैं। शिमला में कहाँ पे रुके थे शिमला में? शिमला में वही वो जगह का नाम थोड़ा याद नहीं आ रहा है। 7 महीना रहे, तुम्हें जगह का नाम याद नहीं है दोस्त? शिमला में तो बहुत अच्छा मतलब माल भी मिलता है, तो मुझे लग रहा है फूक तो नहीं रहते। नहीं 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 सर, तो वहीं पे वहीं से तो वो होटल था कि धर्मशाला था, या किसी दोस्त का घर था, या किसी नहीं सर, वो मेरे साथ कोचिंग ले रहा था एक बंदा, वो पुलिस में था, तो उसके साथ में ठहरा था। उसके घर पे? हाँ, उसके घर पे मतलब वो भाड़ा पे रहता था वहां पे। उसका घर है बद्दी, तो बद्दी से आके वो वहीं पे भाड़े पे रहता था। तो 7 महीना तुमने शिमला में क्या किया? कुछ नहीं सर, ऐसे ही मैं बुक्स पढ़ता था और गिटार बजाता था, और ऐसे सोचता था कि जिंदगी के साथ क्या करना है। तो वहां से फिर ट्रेडिंग करने का सोचा, और ट्रेडिंग में कैरियर शुरू किया। ओके 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 ओके, नाइस यार। तो एक काम करेंगे, तुम्हारी तो लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है, और तो तुम ऑफलाइन मुझे पिंग करो, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने तो इंडिया तो पूरा घूमा हुआ है, और विदेश में भी ठीक ठाक कवर किया हुआ है, तो मैं जो भी तुम्हें गाइड करना होगा तो मैं कर सकता हूँ।
बट मैं तो स्ट्रांगली एडवोकेट करता हूँ कि अकेले घूमने में कोई मजा नहीं है। जी जी और सर। तुमने भी रियलाइज किया होगा। और फिर आदमी वही है, गिटार बजाता रहता है और कंटेम्पलेट करता रहता है कि लाइफ में क्या होगा करके। एंड जो रियल जॉय और हैप्पीनेस है वो शेयरिंग इज द रियल जॉय मेरे हिसाब से। तो कनेक्ट करो मेरे से, फिर मैं बात करता हूँ उनसे। जी ठीक है सर। थैंक यू सर। Okay. Yeah, next question. I'm not able to add any speakers. So a lot of people have DM'd me that they are sending requests and they're not able. So are there any? Send me an emoji if you have sent a request and if I have not added you. Yes, I can see a couple of speaker requests. Please add them. Please add them. हेलो। हाँ बोलिए। सर मैं ट्रेडिंग के बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज तो है नहीं, बट मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ इस फील्ड में, तो थोड़ा सा गाइड करेंगे? यार पहले तो कौन बोल रहा है? नाम क्या आपका? यश बोल रहा हूँ। यश जी। मुझे दिख ही नहीं रहा प्रोफाइल में। यश एलन मस्क की फोटो आप ही की है? जी मेरी है। यार यही मैं आपको बता रहा हूँ, ये यश की आप ध्यान से सोचो कि किसी से स्पेसेस में या किसी का यूट्यूब वीडियो देख के या किसी से एक दिन में आप ट्रेडिंग नहीं सीख सकते हो। तो ये अप्रोच मत रखो आप कि आप कैजुअली किसी से पूछोगे वो आपको कुछ बता देगा। नहीं, आप गाइड करेंगे ना। इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। हाँ मैं गाइड कर रहा हूँ, ये गाइडिंग का प्रोसेस ही है। इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस एंड आपको इसमें 4 से 5 घंटा डेली देना पड़ेगा। पहले 3 महीने तो बिना पैसे लगाए आप सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करो, लिखो। ये डिसिप्लिन बहुत कम लोगों में होता है। लिखो क्या हो रहा है, आपने क्या ट्रेड ली होती है, जिसको आप पेपर ट्रेड बोलते हैं। लॉट ऑफ पीपल डोंट लाइक पेपर ट्रेड बट आई एम टेलिंग यू इट हेल्प्स अ लॉट इन अंडरस्टैंडिंग द मार्केट स्ट्रक्चर। मैंने कुछ 102 यूट्यूब पे वीडियो बनाया है, आप उनमें से कुछ वीडियो देखो। उसमें मैंने मार्केट के बारे में बात करी है, मैं क्या यूज करता हूँ, मैंने काफी ट्रांसपेरेंटली सारा कुछ बताया हुआ। वो देखो। फिर आप जब मेरा वीडियो देख चुके होगे, 10-12 वीडियो आप देख चुके होगे, तो आपको यूट्यूब साइड में सजेशंस देगा बहुत से ट्रेडर्स के, उनको वीडियोस देखो। दिन में 4-5 घंटे आप वीडियो देखने में बिताओ। किसी को आपको कोई पैसे नहीं देने, आप देखो कौन क्या यूज कर रहा है, कितने तरीके की ट्रेडिंग होती है, पोजिशनल है। जब सारे जार्गन्स आप सीख लोगे, जब सब कुछ आप सीख लोगे, तब आप अपना पहला ट्रेड डालना। सब कुछ सीख लोगे एज इन कि स्प्रेड क्या होता है, कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, आयरन कॉन्डोर क्या होता है, आयरन फ्लाई क्या होता है। जब सब कुछ मैं आपको नींद से जगाऊं और पूछूं आयरन फ्लाई क्या होता है, आप मुझे बना के दिखा दो। जब इतना आ जाएगा तब आप पहला ट्रेड डालना अपना। इसमें 3 से 4 महीने लग जाएंगे। और इस जो जैसे कोई टर्म आए, किसी का ट्विटर में देखा आपने या स्पेसेस में मैंने बोल दिया आयरन कॉन्डोर, फटक से जाके उसको गूगल करिए, देखिए क्या होता है, उसको यूट्यूब पे डालिए, देखिए क्या होता है। 4 से 5 घंटे इस लर्निंग पे लगाते रहिए। 3-4 महीने में ये इंसाइट आ जाएगी कि आपको किस टाइप की ट्रेडिंग करनी है, कितने टाइप की ट्रेडिंग होती है, तब आप अपना पहला ट्रेड डालना। ठीक है? और आप मेरे से टच में रहो। जब 3-4 महीने बाद आप काफी कुछ सीख चुके होगे तो फिर आप बताना मुझे, तो फिर अपन और बात करेंगे। नहीं सर, तो ऐसा नहीं है। जैसे कुछ लोग, जैसे आप अपना ट्रेडिंग चला रहे हैं, तो ट्रेडिंग में भी होते हैं कि कुछ बंदे आपके साथ में होते होंगे। मेरे साथ तो कोई नहीं है दोस्त, मैं जिंदगी में बहुत अकेला हूँ। सर अकेला तो सारे, सच बोल रहा हूँ। अकेला पर ट्रेडिंग तो लोनली प्रोफेशन है। मैंने ट्वीट भी किया था इस पे, काफी लोगों ने काउंटर किया था। ट्रेडिंग इज ए लोनली प्रोफेशन, आपको अकेले ही करना है। साथ में तो कोई ट्रैवलिंग आप साथ में कर सकते हो। अभी कौन थे वो चले गए। नहीं हाँ, ट्रेडिंग तो नहीं कर सकते किसी के साथ। नहीं, ट्रेडिंग नहीं कर सकता। जैसे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपके साथ में हूँ, तो आपके साथ लर्निंग कर रहा हूँ। स्कैम है वो सब। मैं भी बहुत लोगों को लर्न कराने वाला हूँ, बट मैं उनसे पैसा कमाऊंगा, अपना रिटायरमेंट सिक्योर करूंगा। टेलिंग यू ऑनेस्टली, शायद वो इस चीज में कुछ सीख जाए, बट वो बहुत लेजी तरीका है। दैट इज नॉट द बेस्ट वे। अच्छा, तो YouTube से ही सारा कुछ करना होगा उसमें। YouTube देखिए, किताबें पढ़िए, ट्रेड स्ट्रक्चर समझिए। किसी के ट्वीट में आता है, जैसे मैं कई बार शेयर करता हूँ कि मैं बुलिश हूँ, अब देखो कि मार्केट क्यों बुलिश है, उस बंदे ने उस दिन बुलिश पोजीशन क्यों ली थी, चीजों को एनालाइज करिए खुद से। साथ में भी बहुत लोग वर्कशॉप चला रहे हैं, बहुत लोग मेंटरशिप चला रहे हैं। कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है मुझे पता नहीं। 10 में से 9 खराबी है, और दैट इज नॉट द बेस्ट वे टू लर्न। मैं भी चला रहा हूँ, बट दैट इज नॉट द बेस्ट वे टू लर्न। ओके। देखो मैं कितना ऑनेस्ट हूँ, मैंने एक कस्टमर को ना बोल दिया। नहीं है ना। इसके तो मुझे कोई इमोजीज मिलने चाहिए कि नहीं। श्योर। एनीवेज, ओके, मूविंग ऑन। हाँ, बहुत लोगों ने हाथ उठाया हुआ है। जल्दी जल्दी पूछिए यार। मैं तो बात करना चाहता हूँ अगले 8 घंटे, लेकिन कभी ना कभी तो खत्म करना पड़ेगा। पूछिए। जुगल बंदी और मैं, सॉरी ओनली जुगल। Yeah. So when we talk about personal finance, no, so next question is like, how do we should we park our funds? Like कौन से asset में कितना allocation करना चाहिए?
बिकॉज यार देयर आर देखो हेल लॉट ऑफ मतलब रेशियोज तो काफी है क्या, इक्विटी में इतना कर दो, फिर जो इतना तुम्हारा एज है उसमें से माइनस करके इतना तुम इक्विटी में कर सकते हो, तो लाइक व्हाट इज द परफेक्ट एलोकेशन अकॉर्डिंग टू यू? आई एम कमिंग टू दैट। कौन बोल रहा है, लोकेश बोल रहा है कि जुगल बोल रहा है? जुगल। जुगल, लोकेश। हाँ, तो देखो जुगल कैसा है कि जैसे अभी आपकी उम्र हो रही है 22 साल, ठीक है? तो ये बहुत ही इंडिविजुअल चॉइस होती है और बहुत ही एज स्पेसिफिक होती है, बहुत ही बैकग्राउंड स्पेसिफिक होती है। अब अगर आप मान लो आपकी उम्र 22 साल है तो अभी आप काफी हेल्दी भी दिखते हो, तो अभी आपके पास बहुत टाइम बचा हुआ है लाइफ में पैसे जुगाड़ने का, रिस्क लेने का। तो ऐसे में आपका जो एसेट एलोकेशन होगा वो इक्विटी हैवी होगा। इक्विटी में 20%, 30%, 50% का भी डिप आ जाता है, कई बार आता है, अगले 10 साल में 2-3 बार आएगा, बट आप झेल ले जाओगे बिकॉज आप यंग हो। अभी अगर कोई बंदा रिटायर कर रहा होता, 60 साल उम्र होती है और 2 साल में लड़की की शादी करनी होती है, लड़के की शादी करनी होती है, अच्छा एक्सपेंस होता, तो मैं उसको नहीं बोलता कि आप 80%, 90% इक्विटी में जाओ, क्योंकि उसको पैसे तुरंत निकालने पड़ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह नहीं निकालने पड़ेंगे। आप सेट हो लाइफ के लिए, राइट? कुछ नहीं होगा तो आप मॉडलिंग कर सकते हो, राइट? तो इसलिए आपका इक्विटी एलोकेशन एग्रेसिव होना चाहिए। 80%, 90% आप इक्विटी में डालो, लॉन्ग टर्म इक्विटी में डालो। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो, अगर आपका इंक्लिनेशन नहीं है, तो आप इंडेक्स फंड में डालो, डायरेक्ट इंडेक्स फंड में डालो, एसआईपी करते रहो और आप 10 साल 15 साल में अच्छा कॉर्पस बना लो। ओके, आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ डेट फंड, एटलीस्ट इन दिस करंट इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट। पूरा इंटरेस्ट रेट कवर करने का मैंने एक अलग स्पेसिस किया था, आज नहीं कर पाऊंगा। अभी राइजिंग इंटरेस्ट रेट में बॉन्ड का प्राइस कम जाता है और आपका डेट फंड का नैव घटेगा, तो केवल 10 से 15% शॉर्ट टेनर डेट में डालो। अगर आप चाहते हो गोल्ड को भी डालें तो अप टू 20% आप गोल्ड में जा सकते हो एट योर एज, विच गिव्स लेसर वॉलेटिलिटी टू योर पोर्टफोलियो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग टू मच ऑन रिटर्न्स। तो आप 60 इक्विटी में और 20 गोल्ड में, या 65 इक्विटी में और 20 गोल्ड में डाल सकते हो। रेस्ट यू कैन पुट इन वेरी शॉर्ट टेनर डेट, 65, 20 एंड 15 फॉर यू। और गोल्ड में सिर्फ आरबीआई को जो एसजीबी होता है वही करना है, बाकी सारा स्कैम है। देयर आर लाइक टू ऑप्शंस, राइट? फिजिकल वन और लाइक वही आंसर कर देना पहले, एसजीबी को छोड़ के बाकी सब स्कैम है। फिजिकल गोल्ड के बारे में बताऊं तो बीच में बहुत बात चली थी कि टेम्पल्स के पास बहुत गोल्ड है, तो आरबीआई ने, ये पब्लिक डोमेन में न्यूज है, आप देख करके देख लेना। एसजीबी इज लाइक वो टर्म लिमिट होता है लाइक 5 इयर्स, राइट? 5 इयर्स 7 हाँ, तो आपको जल्दी क्या है, अभी तो आपकी शादी भी नहीं हुई है और आप तो अभी बहुत टाइम है, राइट? तो आपका पड़ा रहेगा, वो अप्रिशिएट होता रहेगा, आरबीआई की गारंटी है उसमें। लाइक वी गेट 2.5% पर एनम इंटरेस्ट। हाँ, तो अभी जो फिजिकल गोल्ड है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो बहुत सी बीच में चली थी टेम्पल का गोल्ड एंड ऑल दैट, तो आरबीआई ने एक सैंपल किया था साउथ इंडिया के एक बहुत ही फेमस टेम्पल का गोल्ड जो है उसको सैंपल किया था, तो आरबीआई ने 35% गोल्ड जो है फेक पाया था, 35%। तो अभी टेम्पल में जो मैं जाता हूँ या आप जाते हैं, कोई भी जाता है, जब भगवान को हम गोल्ड चढ़ाते हैं तो हम अपनी तरफ से तो जो बेस्ट होता है वही चढ़ाते हैं, राइट? द बेस्ट ऑफरिंग वी गिव टू गॉड। तो जो कंज्यूमर है उसने बेस्ट गोल्ड चढ़ाया, लेकिन जब उसने खरीदा था तो उसको 35% फेक मिला था। तो इंडिया में फिजिकल गोल्ड मार्केट जो है 35% तक फेक है। ये सैंपल जो टेम्पल में पुराने जमाने से गोल्ड आ रहा था उसमें से पाया गया, राइट? तो फिजिकल गोल्ड में दूसरा ट्रांजैक्शन चार्जेस बहुत हेवी होते हैं। जब आप खरीदने जाओगे तो 100 रुपए का मिलेगा, जब उसी गोल्ड को आप बेचने जाओगे तो आपको 80 रुपए भी नहीं मिलेगा, मेकिंग चार्ज काट लेंगे, ये चार्ज वो चार्ज काट लेंगे। तो इसलिए वन एंड ओनली प्रोडक्ट विच आई एडवोकेट इज सोवर्जिन गोल्ड बॉन्ड, जो कि आपको आप अप टू 15 to 20% पोर्टफोलियो को एलोकेट कर सकते हो। राइट? नहीं, गोल्ड बीज में काउंटर पार्टी रिस्क है, यू आर टेकिंग अ रिस्क ऑन एएमसी। एएमसी से रिलेटेड फ्रॉड हर 5 साल में एक बार होता है, एंड दीज आर लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट, खरीदो और भूल जाओ टाइप्स, राइट? दैट्स व्हाई गोल्ड बीज इज नो। ओके, या थैंक्स अ लॉट। और बाकी इक्विटी तो आप जान ही रहे हो, राइट? या थैंक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Hello, sir. हेलो सर, बोलिए मयंक जी। Yeah. So a bit background about me. So I graduated in 2020 from DC and then joined as a software engineer at LinkedIn. So yeah, 2020 was work from home. So yeah, I got a lot of saving. The salary was good also, right? And then I invested in 2021, like in some equities, and 2021 was a bull run, right? So I made a good amount of money, right? And then after like 2021 in October, I started trading in options selling basically. So currently I'm doing the option selling. So from around 6 to 8 months. So now what is happening? Like I'm now shifted to like offices are opening in Bangalore. So I also switched the company to a startup. Now shifted to Bangalore. So now in Bangalore. So I went to Bangalore and like the whole scenario is changed. Like you have to go to office and you can't manage the trades. So I shifted to Elgo.
and at the same time, my personal finance has also like been a hit because in Bangalore the rents are pretty high currently. Like you get a 3 BHK for 90K or 1 lakh. So I just wanted to ask, like, because being in COVID, like we were all in work from home and all the savings were being, accumulated, but being in a different city and so how to manage, like it's the first time going outside, and how to manage the saving estimate as well as do the investing at the same time. So if you can throw some light on that. नहीं यार, क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ तुम्हें. मैं तुम्हारी प्रोफाइल पिक्चर ही देखते रह गया. ये तुम हो क्या इतने हैंडसम? अरे ऐसे लड़की से शर्मा रहे हो, क्या बात है? मैं सच में नहीं समझ. आई ट्राइड वेरी हार्ड टू कंसंट्रेट, बट क्या मतलब ये सब क्या है? फिल्टर्स का जमाना है, कैसे? लाइक हाउ डू यू डू दैट मैन? सर ये दिस इज विदाउट अ फिल्टर फोटो. विदाउट अ फिल्टर. इतना शर्मा रहे हो तुम, मतलब इतना तो मेरे बेटा भी नहीं शर्माता है. चलो तो तुम्हारा क्वेश्चन फिर से बोलो यार, शॉर्ट में. वर्क फ्रॉम होम किया तुमने, डीसी की तुम पैदाइश हो, तो डीसी में कौन सा सब्जेक्ट है तुम्हारा? सर कंप्यूटर साइंस. कंप्यूटर साइंस. और अभी तुम्हें जॉब लग गई है? हाँ, जॉब लग गई है, मतलब कैंपस प्लेसमेंट. कंप्यूटर साइंस की देखो सारी जॉब धीरे धीरे वर्क फ्रॉम होम ही होने वाली है. Right. So get used to working in your undies and from your home. Right, sir. It makes sense, right? Sir, चाहे वो Quora हो, चाहे वो आपका Facebook हो, चाहे वो Google हो, lot of companies have already announced, right? Right. So computer science में get used to. तुम्हारा question क्या था? It's really मैं तुम्हारी प्रोफाइल पिक ही देख रहा था and then I realized कि DC के मेरे बहुत से स्टूडेंट्स थे दिल्ली में, like all of them were like super smart and super handsome and they had like best of the girlfriends. But तुम उनसे भी like 10 on 10, right? थैंक यू. बोलो सर. सर मैं पूछ रहा था कि सर जैसे वर्क फ्रॉम होम है तो उसके अलग एडवांटेजेस है, राइट? बट एज यू सेड दैट मूविंग टू अ डिफरेंट सिटी एंड हैविंग दैट एक्सपीरियंस आल्सो काउंट्स, राइट? मतलब अरे वो बंदा एमबीए था ना, तुम तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो. तुम्हें ऐसे ही जिंदगी काटनी है कि घर पे ही बैठना है और बस वीकेंड का वेट करना है और कोडिंग करनी है 14 घंटे 15 घंटे, स्टार्टअप के सपने देखने हैं. तुम्हारी जिंदगी अलग है दोस्त. बड़े शहर में जाओ, पार्टी करो, अगर अच्छा लगता है बैंगलोर वगैरह जाके सेटल हो सकते हो, वहां से वर्क फ्रॉम होम कर लो. If you want to change the city, see, going outside your hometown always helps. It broadens your perspective. It gives you new insight about life. You get heartbroken, which is even inevitable in life. वो सब होता है, तो जाके वहां से वर्क फ्रॉम होम कर लो. बट कंप्यूटर साइंस में हो, अच्छे हो, डीसी से पढ़े हो, तो तुम्हारी जिंदगी वर्क फ्रॉम होम के अराउंड ही घूमनी है. गेट यूज्ड टू इट. अब जैसे मैंने पहले बोला था स्पेसिस के शुरू में, एक और जने थे कि अगर अच्छी सैलरी पा रहे हो तो घर में एक अच्छा सा ऑफिस बना लो, एक अच्छा सेटअप बना लो, बड़ी सी डेस्क, अच्छा कंप्यूटर. डोंट डू इट फ्रॉम योर डाइनिंग टेबल. दैट्स द एडवाइस आई कैन गिव यू. यू आर इन व्हिच सिटी राइट नाउ? सो आई एम न्यू दिल्ली ओनली, करंटली न्यू दिल्ली. पेरेंट्स के साथ रह रहे हो? यस. ओ तौबा यार, बाहर निकलो यार, बाहर निकलो. या दैट्स बाहर निकलो. कहाँ है तुम्हारी जॉब? कौन सी सिटी में है? कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो चले जाओ बैंगलोर, चले जाओ, वहां पे अपना लिव इन वगैरह कर लो, इजी रहेगा तुम्हारे लिए. तो वो तो मस्ट है यार. पेरेंट्स के साथ मत रहो, वो भी दिल्ली जैसे शहर में यार. मम्मी पूछती होंगी इतनी देर तक कहाँ थे? 8 बजे ही पूछना शुरू कर देती होंगी, राइट? कब आ रहा है? तो दे आर चिल, मतलब दे आर चिल. हाँ. अपनी गर्लफ्रेंड को मिला दिया मम्मी से? हाँ, माय गर्लफ्रेंड इज आल्सो इन दिल्ली, तो फिर दिल्ली में रहो यार. फिर तुम्हें इतने कंफ्यूज क्यों हो? मतलब शी इज आल्सो फ्रॉम डीसी, राइट? No. She is a fitness trainer. Like she has a like studio. भाई बड़ा हाथ मारा तुमने, सही बात है. फिटनेस ट्रेनर मतलब सही है फिर तो. भी क्या ही बोलूं मैं, पब्लिक फोरम है ये. Yes. तो फिर दिल्ली में रहना, फिर तो कहीं जाना ही नहीं है, राइट? शी हैज अ बिजनेस इन दिल्ली. तो कैसे तुम्हारा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है या टाइम पास है? सर अभी तो मैं 23 का हूँ, तो पता है अभी तो जो चल रहा है वो चल रहा है. मतलब चलो ये टाइम पास है. ये सारे जवाब ना दिल से हाँ नहीं निकलता है ना तुरंत, तो टाइम पास ही होता है. होप शी इज नॉट लिसनिंग. तो अभी तो जब तक चल रहा था तो देखो, इसीलिए मैंने बोला ना पर्सनल फाइनेंस बहुत कुछ इंटरलिंक्ड होता है तुम्हारे रिलेशनशिप से. अब तुम दिल्ली छोड़ ही नहीं सकते. अब तुम आईटी में हो, तुम्हें वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ है, लाइफ को एंजॉय करो, अपना क्रेडिट कार्ड ले लो अच्छा था 8-10 लाख की लिमिट वाला. बस दिल्ली में तो कोई कमी नहीं है यार एंजॉयमेंट की. नाइट लाइफ कितनी मस्त है, खाना कितना अच्छा है. So yeah, just I was wondering what's the opportunity cost to not moving, just like zero in IT is zero. Invent something new and they will have a headquarter in Delhi only, in Gurgaon only. Zero in IT. कुछ अच्छा सा स्टार्टअप बना लो जो गूगल एक्वायर कर लेगी, फिर दिल्ली में गूगल भी आ जाएगी तुम्हारे भरोसे. जीरो है, सच बता रहा हूँ. मैं बैंगलोर में रहा हूँ और बैंगलोर, I mean, with all due respect to all the people who stay there, it's not a livable city anymore.
Right. So according to one like ranking that got published recently, like it was the least. मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ यार. You're like half of your wake up life you are spending in traffic, right? Right. Plus everything is so महंगा. प्लस नॉर्थ इंडियन फूड जो होता है ना, जो स्ट्रीट फूड जो दिल्ली का होता है, वो तो मिस करोगे बैंगलोर में, राइट? Yeah, you have to survive on dosa and idli. See, local food is very good. I'm not saying it's not good, but given your choices, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है जो फिटनेस फ्रीक है, जो दिल्ली में है, तुम्हारी जॉब ऐसी है विच वर्क फ्रॉम होम एंड ऑल दैट, सो अभी रहो दिल्ली में 1 साल, फिर देखो. Sure. Yeah. Thanks a lot. Thanks. Okay. Next question. सर लोकेश जी. सर नमस्ते. नमस्कार, कैसे हैं आप? सर बढ़िया हूँ मैं सर, एमपी इंदौर से बात कर रहा हूँ. बोलिए सर. मैं आपने जो पिन मैसेज किया था, यस, हाँ, प्रिंट आउट निकाल के सर उसको मैं रोज पढ़ता हूँ. उस पे अमल करते हैं कि नहीं रोज, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. सर अभी तो उसको मैंने प्रिंट आउट लगा के रोज पढ़ रहा हूँ. अब उस पे अमल करना चालू किया है, पर मेरे को जो टाइमिंग मिलता है वो 4 बजे के बाद का मिलता है, तो उसको कैसे अप्लाई करना है? क्रूड ऑयल ट्रेड करिए. क्रूड ऑयल शाम को 5:30 बजे से लेके रात के 11:30 बजे तक आपको 2-3 ट्रेड्स मिल जाएंगी. ठीक है सर, बस यही पूछना था. थैंक यू सर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. हेलो, नमस्ते सर. नितिन जी बोलिए. अच्छा, पहले पार्थ को मौका देते हैं. हाथ उठाया पार्थ ने, बहुत ही शालीन किस्म के इंसान लग रहे हैं. पार्थ. हेलो, हाय सर. मैं स्टार्टिंग से था स्पेस में, मतलब मेरा था, मतलब थोड़ा इन्वॉल्व हो गया था हर चीज में, तो अलग अलग चीजें जानने मिली. बट सर मैं रिसेंटली अभी देख रहा था कि आप जो बता रहे थे प्राइवेट एंड पब्लिक मेडिक्लेम, और वो जो पब्लिक वाला जो होता है, तो उसमें तो मैंने जो नोटिस किया कि मैंने अभी तक जो भी है मेरे डैड के लिए यूज किया और मेरे मॉम के लिए, दोनों के लिए यूज किया था. बट मैंने अभी तक सिर्फ प्राइवेट ही मतलब ऑप्ट किया था, एंड मेरे को तो उससे बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हमेशा. तो शेयर करिए. अच्छा एक्सपीरियंस तो आप नाम बता के शेयर कर सकते हैं. इट विल बेनिफिट एवरीवन. नहीं, वो बताइए किसका यूज किया था, क्या हुआ था. नहीं, हम किसी की बुराई नहीं करते कि कोई हमारा कत्ल ही कर दे, इसलिए आई एम जस्ट फॉर माय ओन सिक्योरिटी, आई डोंट टेक एनी बैड नेम्स. आपका अच्छा एक्सपीरियंस हो तो डेफिनेटली शेयर करिए. नहीं, अभी रिसेंटली एक्चुअली मेरे डैड का ये उनको हार्ट अटैक आया था रिसेंटली, तो मेरा जो एंजियोप्लास्टी और ये सब हुआ था, तो कितना खर्चा आया था? मेरे को अराउंड 2.7 लाख का खर्चा आया था. 2.7 लाख में एंजियोप्लास्टी हो गया और एंजियोग्राफी एंड एंजियोप्लास्टी. कितने स्टेंट लगे थे? दो स्टेंट लगे थे. ओके. एक्चुअली स्टेंट की कॉस्टिंग ज्यादा थी और बलून्स जो यूटिलाइज हुए थे वो भी ज्यादा यूज हुए थे उसमें, तो उसके लिए ओवरऑल कॉस्टिंग बढ़ गया था. और आपका इंश्योरेंस किसके साथ था? HDFC अर्गो के साथ. ओके. फिर क्या हुआ? मैं बोल रहा हूँ, मेरे को एक्चुअली जब कैशलेस था मेरा पूरा ट्रीटमेंट, मेरे को खाली 300 रुपीज का कॉस्ट पड़ा है इस पर. कौन सा हॉस्पिटल था? जाइनोवा. जाइनोवा. कहाँ पे, कौन सी सिटी में? सर मुंबई में. ओके. तो मुंबई में आपने कराया, शेल्बी का हॉस्पिटल था, और उसमें आपका अराउंड 3 लाख में आपको कुछ भी नहीं देना पड़ा, कैशलेस था. वेरी गुड. HDFC 300 से 400 रुपीज का उनका ये डॉक्यूमेंटेशन चार्ज था कैशलेस का, वही एक खाली चार्ज था, बाकी कुछ भी नहीं. ओके, वेरी गुड. ये एक था. और मेरे को दूसरा ये जानना था, आप जब बोल रहे हो कि आप टर्म इंश्योरेंस खाली 60 तक अगर आप सोच रहे हो करके लेने के लिए, तो 60 तक लेना. बट व्हाट इज द लाइक मेजर डिफरेंस? अगर मैं अभी चेक कर रहा हूँ, रेट्स एंड ऑल देख रहा हूँ, तो वो 75 तक भी अगर आप लेते हो तो इट इज अ मियर डिफरेंस, लाइक 3000 रुपीज का ही फर्क आता है आपके ओवरऑल ईयरली प्रीमियम पर. अब वो एज पे डिपेंड करता है. आपकी एज कितनी है? सर मेरी एज अभी 29. हाँ, तो कम एज है तो अभी डालो, एज 40 डालो. हाँ, वो एक है कि अगर आप हायर एज से लोगे तो वही मैंने बोला ना, इंश्योरेंस बहुत ही पर्सनलाइज सब्जेक्ट है. इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक स्टार्टअप शुरू कर दूं, रवि जी को पार्टनर बना लूंगा, बिकॉज ही इज टू गुड एट इट, जिसमें मैं सिर्फ लाइफ एडवाइस दूंगा और इन्वेस्टमेंट एडवाइस दूंगा. ज्यादा नहीं, 500 रुपए महीने का लूंगा. चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा ना, बिकॉज ये बहुत ही इन्वेस्टमेंट एडवाइस इज वेरी पर्सनलाइज सब्जेक्ट. 40 साल के बंदे को अलग एडवाइस चाहिए और 25 साल के बंदे को अलग एडवाइस चाहिए. बराबर. एंड द सेम सिनेरियो वाज लाइक आपने जब बताया कि राइडर्स नहीं ऑप्ट करना चाहिए करके, बट रिसेंटली अगर मेरे को ऐसा मतलब मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है कि मेरे एक फ्रेंड है जिसका एक बाइक से एक्सीडेंटल डेथ हुआ है उनके पास तो एक्चुअली बेसिकली कुछ नहीं था, उनका कवर ही नहीं था. तो अगर वो एक्सीडेंटल का अगर कवर ले लेते थे, राइडर जो लेते थे एक्स्ट्रा, तो उनको तो मतलब बेसिकली जो मिलता था वो डबल ही मिलता था ना, उनका जो कवर होता उसका.
नहीं देखो दोस्त, कैसा होता है ना, पार्थ ही बोल रहे हैं ना? हाँ सर। पार्थ, हाँ ऐसा होता है ना कि प्रीमियम में बहुत फर्क नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि एक्सीडेंट से डेथ होगी तो आपको 3 करोड़ चाहिए और नॉर्मल में 1 करोड़ चाहिए, 3 टाइम्स, राइट, विच इज अ स्कीम ऑफर्ड बाय मेनी इंश्योरेंस कंपनी। तो मैं बोलता हूँ 3 करोड़ का टर्म ही ले लो ना, कितना फर्क है? एक पड़ रहा है 12,000 रुपए का और एक पड़ रहा है 36,000, वो भी साल का। इतना तो अपन बाहर खाना खा लेते हैं, राइट? हाँ बट सर उसमें डिपेंड करता है कि अगर अपन अभी ये पॉइंट ऑफ एज से चालू कर रहे हैं तो आपकी इनकम के बेसिस पर भी आपको टर्म मिलता है ना, जैसे कि अगर आप हाँ कमाते हो तो ठीक है, नहीं मिलता ना ठीक आपको है। वो चीज। यार मेरे को ये लगता है, देखो टू गिव यू अनदर पर्सपेक्टिव, कि जो घर का ब्रेड विनर है, जो पैसे ला रहा है घर में, उसकी डेथ एक्सीडेंट में हो या हार्ट अटैक से हो, फैमिली को लॉस ऑफ इनकम उतना ही होता है। तो आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंशिएशन व्हेन इट कम्स टू कवर फॉर द कंज्यूमर। जितना एडिक्वेट लगता है उतना ले लो। अब वो डेथ चाहे एक्सीडेंट से हो, चाहे सुसाइड से हो, चाहे वो नेचुरल कैसेस हो, फैमिली को उतना पैसा मिल जाना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी हैगलिंग एट द एंड ऑफ द विद द इंश्योरेंस कंपनी, जो कि टर्म इंश्योरेंस में बहुत ही एडा का बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉज है, बहुत इजी है प्रूव करना, आपको 90 डेज के अंदर क्लेम सेटल हो जाता है। तो आई थिंक, आई मीन दैट इज माय हम्बल ओपिनियन कि राइडर्स नहीं लेने चाहिए। ओके। और सर एक फाइनल आखिरी क्वेश्चन था, मैं आपको बहुत पहले से फॉलो करता हूँ। मेरा एक ये जो क्वेश्चन है उसके रिलेटेड है। मेरे को पता है आपकी एक कार थी, आपके पास पसाट थी, आपने रिसेंटली उसको निकाल दिया, बट बेच दिया। बहुत दुख हुआ, मतलब रोया मैं उस दिन, तो मैं रोया। पता है सर, मैंने आपका ट्वीट एंड ऑल पढ़ा था ना, मेरे को याद है। मैं अभी एक्चुअली मतलब मैं मुंबई में रहता हूँ तो मेरे को पता है कि यहाँ नई कार लेना उससे अच्छा, मेरा एक ऐसा हम्बल ओपिनियन है कि सेकंड हैंड कार चलाना मुंबई में बेटर है। तो आई वाज सजेस्टिंग कि आप सेकंड हैंड को मतलब ऑप्ट करोगे फाइनेंशियली, या अभी आप अगर नहीं ले रहे हो तो नहीं लेने का सोचोगे? यार देखो, मैं क्या बोलूंगा, अब जैसे मैंने कार जो बेची तो किसी ने ली होगी, उसके लिए सेकंड हैंड कार होगी, राइट? बराबर। तो 10 साल हो गया था, मैं वो गाड़ी बेचता नहीं, बट वो गाड़ी तकलीफ देना शुरू कर दी थी। तो इट ऑल डिपेंड्स कि यार, अब मैं जैसे उसको बेचने जा रहा था तो मेरी गाड़ी बड़ौदा के पास खराब हो गई। तो कार हैज ऑल्सो एन एंगल ऑफ रिलायबिलिटी, दो मतलब outside of BMW and Mercedes, Passat is the fastest car around. 0 to 100 goes in 8 seconds. मतलब आपको जब आप पैडल मारते हो तो धक्का सा लगता है सीट से, इट जस्ट गिव्स यू जूम। मतलब और आजकल हाईवे भी इतने अच्छे बन गए हैं, ये यमुना एक्सप्रेस वे, और ये जो आप अहमदाबाद से बड़ौदा जाते हो, तो 0 to 100 इज अ ब्रीज। बट कार में आई थिंक मैंने ओन करने के बाद देखा कि द बिगर इशू इज रिलायबिलिटी। भले आपके पास एक मारुति की गाड़ी हो, but it should be reliable that you will reach from point A to point B safely, securely, without any hassle. वो उसमें Volkswagen की गाड़ी में नहीं रह गया था। That is the reason I sold it. नहीं तो मैं बेचता ही नहीं इसको। I wanted to have it for like another 3-4 years. तो मैं in a city like Bombay, जहाँ पे time is money, I won't recommend a second hand car. Okay. So depending, again it's a very personalized advice. पहली कार आपकी first hand होनी चाहिए, भले छोटी गाड़ी हो, which will serve your commute purposes. अगर आप ड्राइविंग इंथुजियास्ट हो, जो कि मैं हुआ करता था, अभी भी हूँ, थोड़े पैसे और आ जाएं तो एक और गाड़ी खरीद लूं, तो इन दैट केस यू कैन बाय सेकंड कार एज योर सेकंड हैंड कार, जिसमें आप जितने भी ऐड ऑन करने हैं, जितना भी जूम करना है, जितना भी इंजन मॉडिफिकेशन करना है, आप करा लो, अपनी तसल्ली पूरी कर लो, चला लो, खराब हो गई तो बेच दो, दैट काइंड ऑफ थिंग। बट फर्स्ट कार हैज टू बी फर्स्ट हैंड, जिसकी रिलायबिलिटी 7-8-10 साल होती है, और preferably any of the Japanese companies, it gives you better service as well. Okay. But no doubt, I mean, जो ये फास्ट कार्स हैं, इनको चलाने का अलग ही मजा होता है। मतलब कोई भी दूसरा मजा, अभी रवि जी पूछ रहे हैं ना, what makes you happy, तो ड्राइविंग कार फ्रॉम 0 to 100, और जो बगल वाला टोयोटा वाला होता है वो पीछे देखता रह जाता है, उसमें बहुत मजा आता है। या पार्थ, गो ऑन। नहीं सर, बस मतलब बेसिकली ये 2-3 सवाल थे। या नितिन। हाँ हाय सर। हाय। लास्ट टाइम बात हुआ था हमारा, एक 15-20 दिन हो गए सर। वो आप आर्मी में हो ना? नहीं, मेरा एक बिजनेस है, जेसीबी का बिजनेस। लास्ट टाइम लातूर से महाराष्ट्र। अच्छा, हाँ जेसीबी, हाँ आपने बताया था, धूले राइट, वो जो भूकंप आया था, भूकंप, लातूर, हाँ। तो सर मेरा एक क्वेश्चन है,
जब मार्केट में थोड़ा सा काम करते समय स्मार्ट मनी को कोई ट्रैक करने का कोई मेथड प्रॉपर वे? नहीं, वो सब मैं भी बहुत लिखता रहता हूँ स्मार्ट मनी के बारे में, बट एज इन ऑर्डर टू मेक मनी एट योर लेवल यू डोंट नीड टू बी डिस्ट्रैक्टेड बाय स्मार्ट मनी और एनीथिंग। एक सिस्टम पकड़िए, उसको ट्रेड करते रहिए कोई भी उसमें, और उस सिस्टम का कोर हैज टू बी रिस्क मैनेजमेंट, नॉट कहाँ एंट्री कर रहे हैं कहाँ एग्जिट कर रहे हैं। कोर हैज टू बी रिस्क मैनेजमेंट। ऑन एनी गिवन ट्रेड यू शुड नॉट लूज मोर देन 0.5% or 1%. On any given day, you should not lose more than 2%. Right. ओके। बाकी स्मार्ट मनी कहाँ है, बदलता रहता है। पिछले 6 महीने में जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई है तो अचानक से FII की सेलिंग आती है, कभी 12 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी सुबह ही फर्स्ट टिक में। लेकिन जब भी आती है तो 5-6 रेड कैंडल बनती है। डेफिनेटली दैट इज अ स्मार्ट मनी, वो वहां कर रहा है, बट किस टाइम आएगी नोबडी नोज, राइट। बराबर है। बहुत लोग ट्राई करते हैं ट्रैक करने का, बाद में पता लग जाता है। उस एनालिसिस में बहुत अच्छा साउंड करता है कि इतने बजे ये हुआ, इतने बजे हुआ। ट्रेड करते टाइम जब आपका दिमाग गर्म है, वो वेरिएबल कितना काम आएगा नहीं आएगा, आई डोंट थिंक सो। वही सेम बात होती है सर। सबके साथ वही है, मैं तो 15 साल से देख रहा हूँ, और वो बदलता रहता है। अभी वो FII सेलिंग खत्म हो गई है, FII रिसेंटली हैव बिकम नेट बायर्स। तो आप देखोगे मार्केट में वोलेटिलिटी भी कम हो गई है, स्मार्ट मनी भी एक डायरेक्शन में टुक टुक करके धीरे धीरे मूव करती है। तो वो एक डिफाइंड रूल होना बहुत मुश्किल है स्मार्ट मनी के बारे में। अच्छा, मेरे को लगा कोई मेथड वगैरह है फॉलो अप। नहीं, ये बहुत बड़ा वो है कि हम इसको मार्केट को एज अ पजल देखते हैं कि इसमें कोई ऐसी चीज है जो डिस्कवर करनी बाकी है। बहुत सिंपल सी चीज है। अभी जब मार्केट 15,200 पे आया था तो वहां पे उसने सपोर्ट बना लिया, 15,300-400 पहुंच गया। मैंने ऐसा नहीं किया, मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं जेम्स बॉन्ड हूँ, लेकिन अगर वहां पे कोई बाई करता है विद स्टॉप लॉस बिलो द लो, देन इट गिव्स अ गुड रिस्क रिवॉर्ड, राइट। सिमिलर अगर कोई स्टॉक है जो काफी ब्रेकआउट दे रहा है, आप ब्रेकआउट पे बाई करते हो विद अ स्टॉप लॉस विच इज लाइक फार अवे फ्रॉम ब्रेकआउट लेवल। जैसे अभी यस बैंक ने ब्रेकआउट दिया, HDFC बैंक ने ब्रेकआउट दिया है। हम सही अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हो तो एक शॉर्टलिस्ट बनाओ, उसमें ब्रेकआउट करना है या ट्रेंड रिवर्सल करना है, जो भी एक मेथड लेना वो पकड़ो। 4-5 तरीके की ट्रेडिंग होती है, ब्रेकआउट होती है, ट्रेंड रिवर्सल होती है, वोलेटिलिटी एक्सपेंशन है या वोलेटिलिटी और थीटा डीके वाला है। तो इसको ही आप देखो, एक तरीका पकड़ के 3 महीने 6 महीने ट्रेड करो, छोटे से छोटे अमाउंट से ट्रेड्स को लिखो, उसकी लर्निंग को देखो, 1 घंटा तो सोचो कि आज मैंने क्या किया, कैसे किया, उसमें क्या गलती थी, इंट्रोस्पेक्ट करो, उसको फिर लिखो। वहीं से मार्केट इज द ग्रेटेस्ट टीचर, वहीं से आपको आएगा समझ। अच्छा, ओके सर। ओके, या विकास। Good afternoon, sir. I'm from Bangalore. I'm 22 years old. So I am a discretionary trader. Like I trade the way like Shreyas Bandhi and Praful does on expiry. So, but now my college doesn't allow me to do that. Like I cannot take a day off on Thursdays and then keep trading because I have my labs also on Thursday. So I'm looking to like diversify into system trading because on other days, right, my capital is like unused. So I want अभी तक एक्सपायरी में कैसा have you documented it? कैसा पैसा बन रहा था एक्सपायरी ट्रेडिंग करके? Sir, the thing is till June, right, I used to do good with expiry. I used to make like 2-3%, but then I got into a drawdown. But since then I've been making too many mistakes. So I had a losing streak of 5 back-to-back expiries. So I'm looking to diversify. Total कितने एक्सपायरीज ट्रेड किया अभी तक? So since January. ओके। और कॉलेज में कौन सा साल है? 20 to 24 एक्सपायरी। नहीं, कौन सा साल है कॉलेज में? कौन सा साल है? चौथा साल है सर? फर्स्ट ईयर ऑफ MSc। फर्स्ट ईयर ऑफ MSc मास्टर्स। या ओके। और बैचलर्स में क्या किया था? फिल्म मेकिंग। हाँ, फिल्म मेकिंग में बैचलर्स किया। और MSc किस में कर रहा है? वो भी फिल्म मेकिंग में। फिल्म मेकिंग इज ए पैशन, उसमें करियर बनाना है या ऐसे ही कर रहे हैं माँ बाप का दिल रखने के लिए? I mean, I was सच बोलना, झूठ नहीं। After, sir, I was actually passionate, but after looking into the industry, how it works, it's not at all structured. So इंडस्ट्री में बहुत फेवर्स देने पड़ते हैं, डर रहे हो? No, तो मैं तुम्हारा कोई एडवांटेज उठा लेगा? हाँ, बुला लेगा तुम्हें, कास्टिंग काउच कर देगा? अरे नहीं सर,
it's more like I want to get into like UX kind of set of things, UX designing and stuff. So Hey, even not that is not also what you want, what you are doing right now. Like, are you into it right now? Give me an honest answer. into filmmaking, no sir. Yeah. Huh? But I'm studying. I'm not into like really making films and stuff like that. वो Are you assignment passionate होता about है, what you're learning right now in your MSc? How much is the fees? fees is 1.75 lakhs per year. Per annum कितने साल का कोर्स है? 2 years. 4 लाख. 4 lakh. Okay. और are you passionate about what you're learning? Given a choice, you really want to do it, or ये मम्मी का दिल रखने के लिए कर रहे हो? सच सच बताना, झूठ बोलने की हो ही नहीं रही आज. Not really that passionate. I'm more करना क्या है? about trading. ओके, ट्रेडिंग. और ट्रेडिंग में 40 एक्सपायरी कर चुके हो, उसमें आधी एक्सपायरी में प्रॉफिट हुआ है. नेट प्रॉफिटेबल हो कि नहीं, सच सच बताना. Sir, I mean, since this 5 expiries losing streak, I'm still at break even now. So whatever money I made in 4 months, I've lost in 5 expiries. So that's little concerning for me. एंड ओके. यार अगर फिल्म मेकिंग में दिल नहीं है, मम्मी का दिल रखने के लिए कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से तो मत ही कंटिन्यू करो. ये कोई ऐसे एमबीए जैसी डिग्री नहीं है कि जो करनी जरूरी है. प्लस तुम नुआंसेस सीख ही चुके हो, तो अगर फिल्म मेकिंग में तुम्हारा कुछ मन है तो यू कैन मेक अ करियर विदाउट डूइंग एमएससी. Sir, but the thing is, UX designing है ना, like we need to learn color theories, all that stuff. तो फिल्म मेकिंग में वो भी आता है. तो वो करना, डिसाइड करो ना. अब तो बच्चे थोड़ी रह गए, ट्रेडिंग करनी है कि फिल्म मेकिंग करनी है, डिसाइड करो. अभी नहीं, 6 महीने के अंदर डिसाइड करो. ओके, एक्सपायरी ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हो तो बीटीएसटी करो. बस तुमको इतना गेस करना है, कल मार्केट किधर ओपन होगा, गैप अप होगा या गैप डाउन होगा या रेंज में रहेगा, फ्लैट ओपन होगा. इतना अगर गेस कर लेते हो बैंक निफ्टी के बारे में, तो देयर आर गुड टेक्निक्स. राइट. तो स्प्रेड्स कर सकते हो, 15 से 20 मिनट ही लगेगा. यस सर. नहीं, एल्गो मत करो अभी, एल्गो मत करो अभी. तो फोकस करो कि करना क्या है. तो ट्रेडिंग में एक्सपायरी बंद कर दो अगर फिल्म मेकिंग का कोर्स करना. हालांकि अगर बिल्कुल दिल नहीं लग रहा है तो पेरेंट्स का दिल रखने के लिए 2 लाख रुपए खर्चा मत करो, छोड़ दो इसको. अगर दिल लग रहा है तो उसको करते रहो. एक्सपायरी ट्रेडिंग छोड़ दो और ये बीटीएसटी करो. बीटीएसटी में सौरभ सेन गुप्ता जी कैन मैनेज बोथ सर, वैसा है. तो कहाँ है? थर्सडे तो नहीं कर पा रहे हो. क्वेश्चन तो स्टार्टिंग यही था ना, थर्सडे को अलाउड नहीं है. No, if I get into system trading. नहीं, आई डोंट रिकमेंड सिस्टम ट्रेडिंग टू यू. ओके. मैंने करी है काफी सिस्टम ट्रेडिंग. आई डोंट रिकमेंड इट टू यू. हैव टू अंडरस्टैंड द नुआंसेस ऑफ द मार्केट. वो तभी आएंगे जब तुम स्क्रीन टाइम दोगे, एनालाइज करोगे. यू कांट बी बैकडेटेड सिस्टम के भरोसे. उससे कुछ नया नहीं सीखोगे तुम, अनलेस यू आर इनटू कोडिंग एंड ऑल, व्हिच यू आर नॉट. राइट. सिस्टम तुम किसी और से बनवाओगे, कुछ करोगे, इट्स नॉट वर्थ इट. नो सर, सिस्टम मैंने ही बना, लाइक आई विल डू द सिस्टम, बट कोडिंग हाउ यू विल मेक द सिस्टम. हाँ बताओ मुझे, मैं करा देता हूँ कोडिंग. कैसे कराओगे? इट्स नॉट इजी. You don't have that much of insights yet. अभी 6 महीने से तो ट्रेडिंग कर रहे हो. अभी you need to have more screen time. It's been like 3 years since I'm investing and 1 year since I'm trading. But expiry trading I've been doing for just 6 months. तो it's okay. तो it is not either or. सिस्टम भी बनवाओ और बीटीएसटी भी करो. और फिल्म मेकिंग के बारे में अगले 6 महीने में सोच के रखो, करना है कि नहीं करना. इट्स अ वेरी यूनिक, डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म, डिफरेंट काइंड ऑफ फील्ड. तुम्हारा एकदम अलग है यार. वो करना है कि नहीं करना है, इसमें अभी तक तुमको समझ में आ जाना चाहिए था. राइट. दूसरे का दिल रखने के लिए पढ़ाई मत करो यार. बहुत आगे चल के दिल कि लाइक बट जिंदगी का 1 साल कम हो जाएगा ना यार. बहुत होता है 1 साल. 1 साल 2 लाख मन है नहीं तुम्हारा. प्लस इट इज हिंडरिंग यू फ्रॉम ग्रोथ इन अदर फील्ड्स. सोचो. आई एम नॉट सेइंग कि टेक माय एडवाइस एज गॉस्पेल ट्रूथ. थिंक अबाउट इट वेरी सीरियसली. यस सर. या ऑन बीटीएसटी करो, सिस्टम भी बनवा लो साइड बाय साइड. एक्सपायरी ट्रेडिंग अभी के लिए बंद कर दो, क्योंकि फोकस नहीं करोगे तो फिर से लॉस होगा. तो सिस्टम वैसे नहीं बना है कि कुछ स्टॉक में लाइक आई वेंट एंड पुट सम 25% स्टॉप लॉस. नॉट लाइक दैट. आई हैव बिल्ट अ सिस्टम विद प्रॉपर लॉजिक. So I haven't really backtested it. I need to simulate it on all expiries and other days and then need to see. So the करो. No, but see that doesn't require any day time. तो शाम को उसको टेस्ट करो, टेस्ट करवाओ, but don't spend too much of money. There is a lot of scam going on in back test. जब तुम्हें back test करना आता नहीं है तो अगला बंदा जो भी टेस्ट करके दे देगा तुमको बिलीव करना है. There is a lot of scam going on in that as well. So simulation तो खुद करूँगा मैं. Like I'll go to like backdated options and ये stock market में simulate करो. That is an additional activity. Yeah, if you have time, do it. No problem.
बट ट्रेडिंग भी करते रहो BTST, छोटे अमाउंट से, बहुत छोटे अमाउंट से करो. थिंग्स अमाउंट विच यू हैव अर्नड और यू विच यू आर विलिंग टू लूज, उससे करो. ट्रेडिंग मत छोड़ो, बैक टेस्ट करते रहो, सिमुलेशन चलाते रहो, और फिल्म मेकिंग के बारे में सीरियसली सोच लो. Yes, sir. Sir, I have one more stock specific question. Can I ask? Yeah, go ahead. What do you think of India Mart? Sir? No idea. I'm not tracking it. Sorry. Okay. और है क्वेश्चन तो पूछो. That's it, sir. Like Nifty, like almost recovered, right? We're just down by 7%. So when the last time Nifty was at 17,000, my portfolio was up by 10%. But now, when after this dip and when it got back, my portfolio is down by 7% at the same level, which means I'm clearly underperforming the index. But the thing is, sir, I have like whatever stocks in Nifty 50, the best of the stocks are in my portfolio. This small 8 to 7% underperformance happens. Yes, sir. You can't do much about it. मैं बोलता हूँ अगर ट्रेडिंग में फोकस करना है, देन इन्वेस्टिंग को छोड़ो, इंडेक्स फंड में पैसे लगाओ. इंडेक्स फंड को प्लेज करके यू कैन डू ट्रेडिंग एंड ऑल. दोनों मत करो. अभी बहुत यू टू यंग, बहुत नॉइस हो जाएगी. फिल्म मेकिंग भी करना है, प्लस अभी यंग भी हो, पार्टी भी करना है, ट्रेडिंग भी करना है, सिस्टम भी बनाना है, इन्वेस्टिंग भी करना है. तो एलन मस्क भी 40 साल की उम्र में एलन मस्क बना, राइट? तो इसलिए इंडेक्सिंग में, इंडेक्स म्यूचुअल फंड में पैसे डाल के छोड़ दो. इट विल गिव यू डिसेंट रिटर्न. साथ में ट्रेडिंग का सिस्टम बनाते रहो और BTSC जैसा नहीं बोलो. Sure, sir. That's when it's reduce number of distractions in your life. Okay, sir. Yeah. Thank you. Okay, I would like to wind up in another 10 minutes. Those who have joined now, please ask your question. Hello, sir. This is Natraj. I have one question. Before I ask that question, I want to just give the context so that it makes sense of asking that question. I'm 43 years old. I started my trading career in 2007. Lost a lot for 1 year. Then I had taken off from the market. I again entered in 2012. Did the same thing, trading without doing any knowledge or something. Purely, gambling kiya. Again loss हुआ, and then I had taken back all this investment. 2015-16 मैंने पूरा के पूरा पैसा जो भी कमाया investment कर लिया. The mistakes that I made in trading, I said it is not my cup of tea. So whatever money I earned of my lifetime, I put into stock market. 2015-16 18 तक पूरा fully capital allocate कर लिया. COVID came, मेरा portfolio around 50% cut हो गया. So I was panic, and then I thought like if it still goes, I'll become bankrupt sort of thing. मैंने थोड़ा पैसा निकाल के that is the first time I purchased a property, land में purchase किया, so that it will take care of my family करके. Then I was retrospecting myself. I started trading, loss हुआ 2 times. Then I put it buy and forget philosophy में गया. That also lost because I don't have a hedging mechanism at that time. And then मेरा capital इतना ज़्यादा हो गया कि I cannot average it also. Even if I want to put, मेरे पास little less capital था average करने के लिए और additional units खरीद करने के लिए. So then I started investigating, retrospecting myself. Hey, how do I hedge this kind of falls, severe falls? फिर अभी option trading सीखा 2000 में. तो अभी तो ज़्यादा no profit no loss type है. My question now is, since my age is 43, my assets allocated like 60% in stock market and 40% in the real estate property buying. Now I was thinking the market will go up in next 5 years. Is it a good idea to sell my properties, land, and bring that capital back into capital market? Okay. You're Natraj or you're surgeon? Natraj. I'm Natraj. Yeah, Natraj. See, Natraj, don't take my advice personally, but I'll not give you a superficial advice. Okay. You are 43-year-old, and whatever happened to you, it happens a lot. And it takes a lot of courage to admit what you're saying, that, you started trading, you lost, and then investing and you panicked and so on. So I have done a dedicated spaces of 3 hours on our gambling instincts and gambling in stock market.
Okay. See, and that Spaces was co-hosted by one of the top psychiatrists. What I believe that gambling being one of the most addictive things in the world, some people are more prone to gambling addiction, and stock market has that core ingredient of gambling, which is random outcomes of individual trades. Okay, so you earned, you lost, and then you took a decision again, you panicked. So all these are ingredients of one particular thing that you are not very in a position to handle your own money uh, in a very efficient manner, and you run a very high risk of blowing up your capital. At 43, you'll not get a second chance or third chance. Okay, and this risk is very common among many of us. In the spaces I have also confessed, and I started my journey as a gambler only when I was in class 10th. So, long story short, I mean, if recording is there, you can go and hear that spaces. Long story short, what I want to tell you is you should not be handling your own money. Okay, and usko, and this is a very common problem. It's very courageous of you to admit it. That's why to tackle this problem, and this is a problem at society level because gambling leads to ruined families, lot of crime and things like that. So government has also tried to handle it. How? By having various kinds of lock-in periods. For example, PPF, it has a lock-in period of 15 years. Even if you want, you can't take out the money. If you buy land, it's not very easy to sell it, even if you want. It takes like 5 years, 10 years for land prices to develop and so on. So I would strongly advise you to stay away from any kind of stock market activity. I have done a spaces how Nifty is going to go 2 times, 3 times because of effect of inflation and growth and GDP and all that. I've also done a spaces where I have my personal opinion I've given that land prices are going to skyrocket like anything. They will be the first beneficiary of ensuing inflation which we are seeing in day-to-day life. Land is also going to do very well. So don't sell your land. Try to have alternate source of income by having more property. If you can buy a 2 BHK or 3 BHK, depending on what kind of capital we are talking about, if you can run it efficiently on rent, it has also other kind of risk. I don't know which city you are in. My advice is specific to South India. Then get into businesses which will give you assured cash flow without your temptation of acting impulsively. So, and this happened, a lot of people have admitted it. This happened in 2020 downfall with a lot of people, they panicked and they sold their assets. It's a very normal thing to happen with a lot of people. So don't hate yourself for doing that, but be prepared for future eventualities. अगर वापस से दोबारा होगा, how do we know you'll not react in the same way? The fear of going bankrupt, right? So invest in properties you can rent, invest in more in land. There are a lot of people who have never come to stock market. They have always invested in properties and all that, and they have also made wealth. Ultimate aim is to make wealth, not to be smart in the stock market. So whatever limited thing I know about your story now, I would tell you a allocation. Don't be more than 15 to 20% of your net worth in stock market. Go totally into land and property, which by definition is immovable, not easy to sell. You can't take impulsive decision with that, which will suit your personality. And next 10 to 15 years, property in cities like Bangalore or NCR have seen stagnation for 10 years now. So you will see very good appreciation on leverage property. Don't go too much leverage. And try to save more from your job, buy more land assets, more properties you can rent, and that is the way to go for you. I'm being very blunt in my advice. Yeah, Nataraj. Okay, sir. But I think since all my learning, right, I feel like I was only equity market is the one that I liked it, but real estate something that I didn't like it. But I'll consider your advice and then. But I still I'm not saying stay away from equity market completely. Go 15 to 20%, make it double. Write down your learnings, then make it double again. Very soon it will surpass your land assets, but don't sell your land and keep it 80% at least right now. And 20% भी छोटा नहीं होता है, उसको let it grow, show your talent there,
You can be honest to yourself. Make an Excel, see where it is going, whether it is beating index or not. Beating index is not easy. Half of the mutual fund managers who are from IIM and IIT and 20 years of work, they are underperforming index. It's insurmountable challenge, right? Right. I And agree me with and you. you have limited data. Tell me. So I agree with you. So all the losses I make for last 10 years, I recovered in 2000 जो bull market हुआ last 2 years में. All the losses I made it for like whatever trading period, right? Everything got recovered in my equity portfolio. I think I just wanted the another asset is like I cannot work lifelong, right? I think that somewhere I think I don't want to be doing that rat race. If I go to 2 BHK, What is your day job? What is your profession? I am an IT, working in UK, but I am from Hyderabad. So right now you are sitting in UK. I'm in London right now. Wow, man, I love London. This is where I'm just. I came like 4 months back. I'm intent to work for next 2 years, but my aspiration is buy good properties in Bangalore. The rent which will come from the property, that will be your retirement plan in next 10 years. But sir, it is not more than 2 to 3% of your capital allocation. How do you still advise, right? Let's say I could see 1 crore property. See 1 crore property in Bangalore will give you 2 to 3% of rent. Yeah. So do you think? And then in next 10 years, no, it's not about good or best investment. It should suit your temperament. See, you are an excellent trader when you're saying you recovered everything in 2 years, but a sustainable trader is someone who makes money every quarter, even if it is like 2% or 3% or even 1%. He has to make money every quarter. That is the sustainable trader. That is someone who can scale it up, right? Yeah. So it's not the best investment. I'm not saying that, but a lot of people do that and they create a lot of wealth because it will give you stickiness. It will give you peace of mind. Imagine you are in London within 2 years, 3 years. Inshallah, you will buy 2-3 properties in Bangalore. Combined rent itself will be 2 lakh rupees, right? Then sit back and relax. Drink your pina colada in Scotland. No, I think my dividend income is around 12 lakhs right now. Whatever the investment that I made, I'm making around 12 lakhs per annum. My dividend income. I have another way to counter your problem. Whatever investment you're doing, don't look at it on a daily basis. Forget password or give it to your spouse or manage it in such a way that you don't look at it, and it has to be ultra long term. I have done that in my couple of my demat accounts. I don't even look at it. So you have to see, as I always say, the devil lies within. We are our own enemy when it comes to our own personal finance, right? So make a resolve that market 50% be correct hoga, you will not sell. So forget that password, keep it in. Abhi to possible nahi hai. Otherwise, there was a guy in my office. He took out the shares and usko physical form mein locker mein dal ke rakha tha. Abhi to it is not possible, right? Okay, so do something like that where you are protected from your own impulses. So you'll get good dividend. That is the best form. I have never bought any property in my 15 years. So I'm not saying that's a blanket solution for everyone, but to control impulses. My portfolio also dipped almost 40-50% when it went down a couple of times in 2008 as well and so on. But to hold your nerve when shit hits the fan, right? Property is a better option in that sense. Okay. Yeah. Makes sense. So, and I'm not saying that I don't know you, right? So it's a very limited information which I got. Yes. If you think that you can sustain yourself as an investor, definitely it will give you 2 to 3% income, your portfolio, which you're saying 12 lakhs you're already getting as dividend, right? Yes, that's true. Yeah. And managing property from abroad is also not easy. So a lot of ifs and buts are there. We can take it offline, but always see the biggest risk in the room, which is you, which is me, right? We are our own enemy, because the temptation is very high. I mean, if you have profits for 3 months, you will think you are the king of the market, right? You know everything. And that is when market takes away everything. If you have 3 months of continuous losses, not only the losses, the confidence will take such a dent that you will make more mistakes. Yeah? Yeah, I completely echo with that. Yeah, thank you. Yeah, Surgeon, you're there or you're connecting? Aman, go ahead quickly. I need to wind it up here, guys. Hello, Anand bhai. So I have a question कि मैं कोई ज़्यादा बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ,
बट आपके लिए ये सवाल है कि मेरी एक फुल टाइम जॉब है जो काफ़ी डिमांडिंग है। सो मैं इन्वेस्ट करता हूँ ऐसे लोगों पे या फिर ऐसे स्टॉक्स में जिन पे मैं भरोसा रखता हूँ, बट मेरे को अगर ट्रेडिंग में जाना हो तो क्या आप बता सकते हो कि मेरे लिए एक सस्टेनेबल तरीका क्या होगा कि जहाँ पे मैं सीख भी पाऊँ, उसको यूटिलाइज भी कर पाऊँ एंड इन फ्यूचर में बहुत अच्छा ट्रेडर बन भी पाऊँ। डे जॉब क्या है आपकी? मैं एक कंसल्टिंग कंपनी में काम करता हूँ। ओके यार, कंसल्टिंग कंपनी में काम करके लंच ब्रेक में ट्रेडिंग नहीं सीख सकते। दैट इज द ब्लंट आंसर। आपको चाहिए तो आप BTST करो या शाम को क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग करो अगर इंट्राडे करना है तो, बट इट्स एन अपहिल टास्क, बहुत डिफिकल्ट है। कंसल्टिंग अब चूस लेता है अंदर से इंसान का, आपका खून निकाल के उसमें सब वो हेट्रेड भर देता है लोगों के बारे में। तो वो इट्स नॉट इजी टू कंबाइन ट्रेडिंग एज वेल, इट्स नॉट अ गुड इंग्रेडिएंट। तो वी हैव टू डील विद द चॉइसेस वी हैव बीन गिवन, राइट? सो ट्रेडिंग मत ही करो, दूसरों पे भरोसा मत करो, किसी को भी पैसे मत दो, किसी का कोई प्रॉमिस मत लो। 10 में से 9 लोग फ्रॉड ही निकलते हैं। यू लूज मनी, यू लूज कॉन्फिडेंस, यू लूज रिलेशनशिप्स। नोबडी इज एक्सपर्ट इन द मार्केट। सो दैट इज द आंसर टू योर अदर क्वेश्चन। इन्वेस्ट करो यार, कंसल्टिंग में अच्छी सैलरी मिल रही है, तुम्हारी प्रोफाइल पिक देख के लग रहा है 2-2.5 लाख रुपए महीने की सैलरी है। अच्छा खासा इन्वेस्ट करो, ओके? उसको लेट इट ग्रो। व्हेन इट कम्स टू अ लेवल, साइड में थोड़ा बहुत समझने के लिए शाम को क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग कर लो या BTST कर लो, या अगर ऑप्शंस की ट्रेडिंग करनी है तो मंथली ऑप्शन में कर लो जिसमें बहुत ही कम एडजस्टमेंट लगते हैं। वो सारा यूट्यूब पे दिया हुआ है। और बहुत थोड़े अमाउंट से, अमाउंट विच यू आर विलिंग टू लूज, जो तुम्हारे एक महीने का खाना पीने का और पार्टी करने का बजट होता है, उससे तुम ट्रेडिंग करो। और इट्स एन अपहिल टास्क बिकॉज कंसल्टिंग की जॉब के साथ लंच ब्रेक में ट्रेडिंग करना, पैसे कमाना, बहुत लाइफ चिड़चिड़ी हो जाएगी। यू विल हेट एवरीवन इंक्लूडिंग योरसेल्फ। नॉट अ गुड पाथ यू हैव चोजन। समटाइम्स सर्कमस्टेंसेस आर लाइक दैट। और दूसरों पे तो कोई भरोसा करने की जरूरत नहीं है। ओके आनंद भाई, एंड एक और फॉलो अप क्वेश्चन है बोल, अगर आप हाँ अलाउ बोल। करें तो बिल्कुल। आनंद भाई, जैसे मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ, तो बहुत मतलब मेरे दोस्त हैं जो भी हम साथ में पढ़े हैं, तो वो लोग भी अभी बोर्ड बना रहे हैं कुछ लॉजिक्स पे, बट उनके पास अच्छे खासे लॉजिक हैं और उनके पास लर्निंग है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं समझ सकता हूँ कि मैं पूरा टाइम बैठ के ये नहीं कर सकता कि ट्रेड कर पाऊँ मैं, बट मैं इनिशियल 1-2 साल में अगर आप मेरे को कोई वे सजेस्ट कर पाओ कि जहाँ पे मैं सीख पाऊँ कम से कम कोई अच्छे सोर्सेज से, रिलायबल सोर्सेज से, तो हाँ that यार will देखो also तो, be- यार देखो, तुम्हें कोई तभी लेगा जब तुम्हारे अंदर कोई यूनिक वैल्यू एडिशन है विच यू ब्रिंग टू द टेबल। ओके, समझ रहे हो? तुम IIT दिल्ली के पढ़े हुए हो, मैनेजमेंट कंसल्टेंट हो, कैट में तुम्हारा परसेंटाइल 99.48 है, बट व्हाट इज द यूनिक थिंग यू विल ब्रिंग टू द टेबल टू द गाइज यू आर टॉकिंग अबाउट? आर यू गुड इन ट्रेडिंग? आर यू गुड इन कोडिंग? Money is not the unique value addition. Money everybody has. If anybody wants to include you because of your money, he's trying to scam you. What is your unique value addition you'll give it to this group? So मैं आपसे वही जानना चाह रहा हूँ सर कि मैं ट्रेडिंग में अच्छा करना चाहता हूँ, तो उसके लिए सीखने का तरीका मैं आपसे जानना यार हाँ, तो पहले क्वेश्चन अलग था, राइट? कि मैं उनके साथ कुछ करूं कि नहीं करूं, राइट? Why will they take you? नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि मैं चाहता हूँ कि मैं ट्रेडिंग में अच्छा करूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को अगर कोई एक रास्ता बता पाओ कि जिससे चल के मैं सीख पाऊँ, क्योंकि मैं ट्रेडिंग में बहुत कंफ्यूज रहता हूँ कि मैं क्या फॉलो करूँ, कहाँ से चालू करूँ, किस डायरेक्शन या में तुम्हारी जॉब ऐसी है कि तुम इंट्राडे ट्रेडिंग तो नहीं कर सकते हो, राइट? करनी भी है तो तुम कमोडिटीज में शाम को कर सकते हो, अगर शाम को उतने थके हारे नहीं रहते हो तो। कौन से शहर में रहते हो? बॉम्बे? नहीं, अहमदाबाद, बट ऐसे गुड़गांव, जॉब गुड़गांव अभी में। कहाँ पे? गुड़गांव में जॉब? वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो? हाँ, वर्क फ्रॉम होम, यस। कब तक है वर्क फ्रॉम होम? मेरा वर्क फ्रॉम होम रहेगा यार, मतलब जब तक मैं चाहता हूँ तब तक। क्या बात है, मर्जी के मालिक हो तो करो फिर, तो करो फिर, शुरू कर दो ऑप्शन सेलिंग। करते करते आ जाएगा। स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, सीख जाओगे। 2-3 लाख रुपए से लगाओ, विलिंग टू लूज ऑल द मनी दैट यू हैव। 2-3 लाख रुपए 6 महीने में जब जीरो हो जाएंगे, साल भर में जीरो हो जाएंगे, तो सीख भी जाओगे। कोई भी किताब या कोई भी किसी का वेबिनार, किसी को पैसे देने की तो कोई जरूरत है ही नहीं। मतलब यूट्यूब वीडियो देखो, मार्केट को एनालाइज करो, मतलब घुसे रहो उसी में। क्लीशे है लेकिन इट शुड बिकम योर लाइक पैशन काइंड ऑफ अ थिंग। उसमें लगे रहो। बाकी पेड वेबिनार, पेड कोर्सेज तो मैं भी चलाता हूँ,
बट आई वुड रिकमेंड इट टू यू. ओके, तो खुद से मार्केट को टाइम दो, प्रिडिक्ट करो क्या होने वाला है, गो रॉन्ग ऑन दैट, लूज मनी ऑन दैट, गेन मनी, ब्रेक इवन. 3 महीने 6 महीने साल भर में सीख जाओ. Your best bet is those investment trading related books and YouTube videos. और कई लोग डेडिकेटेड स्पेसेस भी करते हैं, रोज रात को करते हैं, कल क्या होगा परसों क्या होगा, उसको कोरिलेट करो तुम्हारी एनालिसिस से, whether they are wrong or you are wrong. Don't spend any money on all this, बट फ्री में जितना भी ज्ञान है सब बटोर लो. तुम्हारा सी आर ब्रेन इज लाइक अ मशीन लर्निंग टूल. जैसे जैसे बस डेटा फीड करते रहो और अपने आप इट विल कम अप विद सम स्ट्रेटजी. ओके ओके आनंद भाई. और कुछ? ये तुम्हारी असली की फोटो, इतना स्मार्ट तुम वाकई में हो. सर ये तो मैं सबको नहीं बोलता हूँ. ये देखो विकास हंस रहा है. विकास तो मैं गलत बोला क्या? कब की फोटो है ये? एंगेजमेंट में जा रहे थे क्या भाई की? नहीं यार, ये थोड़ी पुरानी फोटो है, जब मैं भी देखो बना दिया पुरानी फोटो लगा के. ओके, थैंक यू आनंद भाई. या कीप इन टच यार, कीप इन टच. मेरे को तो ऐसे लोगों की जरूरत है who will add some value, so we'll keep in touch. शौर्या, सर्जन, सॉरी सर्जन इज आल्सो देयर. वो काफी देर से वेट कर रहे हैं. सर्जन जी बोलिए. हेलो सर, कैसे हो आप? मतलब आप भी सर बोल दोगे? मेरे को तो 2-3 सर्जरी करानी है अभी. आप कौन से शहर में हो? आप वाकई वाले सर्जन हो या ये स्टॉक मार्केट के सर्जन? अरे नहीं सर, स्टॉक मार्केट का ही बनने की कोशिश में लगे. अरे अभी तो मेरा हो जाता है. हैप्पी बर्थडे. हाँ ओके सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब स्टार्ट मैंने इससे नॉर्मल स्टॉक्स की ट्रेडिंग से किया था, बट अब मुझे मतलब उसमें सर रैंडमाइजेशन, मतलब बहुत ज्यादा रैंडम चीजें आ जाती हैं. लाइक मुझे स्टॉक का नेचर नहीं पता होगा ऐसे करके, तो मैं अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा हूँ. बट सर ऐसे जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो बोलते हैं कि आपको स्टार्ट नॉर्मल स्टॉक्स ही करना चाहिए. नहीं, निफ्टी से करो, कोई दिक्कत नहीं. समझने में टाइम लगेगा, निफ्टी समझने में टाइम लगेगा. निफ्टी से ही करो. वो कितने दिन से ट्रेडिंग कर रहे हो? सर मुझे अभी 6 महीने हो गए हैं. तो मतलब 6 अब महीने मुझे लग बहुत रहा कम है यार. एक बच्चा पैदा होने में भी 9 महीने लग जाता है, राइट? तो थोड़ा इट विल टेक टाइम, बट स्टिक टू निफ्टी. एंड हाउ मच यू लूजिंग ऑन एनी गिवन ट्रेड परसेंटेज? सर 500. आप मेरी प्रोफाइल खोलेंगे सर तो मैं डेली वो डालता हूँ. मतलब हाँ, तो बस फिर उसमें लगे रहो, आ जाएगा, इनसाइट्स आ जाएगा. जितना हो सके इनपुट्स लेते रहो. फ्री का जितना मिले उसको इनपुट लेते रहो. योर माइंड विल फिगर आउट समथिंग. ओके. 6 months is too small a time period. ठीक है सर. तो मतलब मैं तब तक, मतलब जैसा आपने अपनी प्रोफाइल पे लिखा है कि 1 लाख से स्टार्ट करो, तो जब तक स्केल अप मत करो जब तक ऐसे 1 साल ना हो जाए, तो वो नहीं करना है मुझे. मतलब और दूसरा, जब तक प्रॉफिटेबल ना हो जाओ, होपफुली 1 साल में हो जाओगे प्रॉफिटेबल. जब तक प्रॉफिटेबल नहीं हो जाते हो कंसिस्टेंट बेसिस पे, तब तक स्केल अप नहीं करना है. ओके सर. सेकंड मेरा ये था कि मतलब मैं स्टार्ट ऑप्शन बाइंग से किया था, बट उसके अंदर सर वो नहीं होता है, मतलब रिस्क मैनेजमेंट नहीं ठीक बैठता है. कभी कभी हम ज्यादा क्वांटिटी ले लेते हैं ऐसे करके. स्प्रेड्स करो. अच्छा सर, तो मैं ऑप्शन डायरेक्शनल कर रहे हो ना, डेबिट स्प्रेड करो. हाँ सर, मैं सेलिंग में ही आ गया. मतलब मैं डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग ही करने लगा हूँ. मतलब मैं बाइंग तो छोड़ ही दिया हूँ, मतलब सिर्फ डायरेक्शनल. चलो. बट सर मैं वो नहीं करता ना. हाँ वही सर, मैं वैसा नहीं करता. मतलब मैं कुल पुट और कॉल दोनों साथ में नहीं करता, मैं फिर सिर्फ डायरेक्शनल ही करता हूँ. तो ये ठीक है ना? मतलब ऐसे कुछ मतलब इसको मैं स्केल अप भी कर पाऊंगा ना? It's very difficult to comment on without looking at your results and what you're doing exactly. सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा के करो अगर डायरेक्शनल कर रहे हो तो. हाँ सर, वैसे ही करता करो, हूँ. कोई दिक्कत नहीं, बस फिर होगा, हो जाएगा. और सर एक लास्ट क्वेश्चन बस. सर थोड़ा पर्सनल लाइंस पे है, मतलब. बट ऐसा कुछ मत पूछ देना कि वो रीता तुम्हें फोन क्यों नहीं कर रही है, राइट? नहीं सर, वैसा नहीं. बट आप मत आंसर दीजिए तो भी ठीक है. पूछ लो. तो सर ऐसा था सर, लाइक ऐसे कॉलेज में सर ऐसे गर्लफ्रेंड थी, तो अभी अब कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हैं, तो वो यूएस जा रही है, और उसका ऐसा प्लान है कि उसे यूएस में ही सेटल होना है. और मुझे सर नहीं जाना यूएस. मतलब मुझे इंडिया में ही रहना है. मेरा भारत महान.
तो अब वो सर ऐसे डेली का ही वो हो गया है, ऐसे कि वो पूछती रहती है कि क्या करना है, कैसे आएंगे, कैसे मिलेंगे, ऐसे वैसे करके। तो इसी बात पे लड़ाई होती रहती है, और मतलब ये क्लियर ही है सर कि वो नहीं आएगी और मैं नहीं जाऊंगा, तो क्या करूँ हाँ। मतलब बस तो फिर कुछ। डिसाइडेड है, ये तो बस ड्रामा बचा है लाइफ का, डिसाइडेड है। मैंने क्या बोला, दो 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 जिंदगी के सच मैंने बताया ना आज के स्पेशस में। एक तो तुम्हारा दिल टूटेगा, तो वो प्रोसेस है। अब ये प्रोसेस में भी मजा आता है, होने दो, इट विल टेक सम टाइम। तो उसको बोलो ना कि हम लोग जाएंगे, बातें करेंगे और फेस टाइम करेंगे, गिव ऑल द एश्योरेंसेस, राइट, व्हिच यू मीन इट आल्सो। तुम ऐसे थोड़ी ना तुम बोल रहे हो कि नहीं करेंगे, राइट, यू विल सर ट्राई। ऐसे कभी कभी जाने के लिए ठीक है, बट ऐसे जाके चले रहने भी का तो जाना, नहीं है। चले एक बार का 2.5 लाख का किराया है, चले भी जाना। अरे सर ट्रेडर बन गए यार तब तो जाने के ठीक है। 3 महीने के अंदर उसको एक वाइट ड्यूड मिल जाएगा, दैट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। तुम्हारा दिल टूट जाएगा, वो तुम्हारा फोन उठाना बंद कर देगी, सब जगह तुमको ब्लॉक कर देगी, हैपेंस विद एवरीबॉडी, ओके। एंड उसके 3 महीने के बाद तुम सुधर जाओगे। अरे क्या ही टूटेगा सर, कॉल तो मैं नहीं उठाता अभी उसके, बट बस तो वो अभी देखना ना, जब वो नहीं उठाएगी ना तब बहुत मिर्ची लगेगी, और तभी दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी लाइफ में। अरे सर अभी तो टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो ना, उसको ब्लैकमेल कर रहे हो और वो कर रहे हो। जिस दिन वो नहीं उठाएगी ना फोन, उसी दिन देखना, फिर फोन करना मुझे, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। कब जा रही है, कब का टिकट है? अगस्त का है सर, फर्स्ट वीक में। हाँ तो अगस्त में जाएगी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। वैसे भी दिसंबर में वहां पे बड़ी कौन सी सिटी में जा रही है? सर सिटी शायद न्यूयॉर्क के पास में है कॉलेज। हाँ तो दिसंबर में चिल्ला जाड़ा पड़ेगा, वहां पे बर्फ पड़ेगी, और वहां बहुत लोनलीनेस होती है, और बहुत मतलब डिप्रेसिंग हो जाता है यार, कई दिन सूरज नहीं निकले तो। और फिर तुम्हारा टाइम जोन इधर का अलग, और तुम तो वैसे ही पहले से तुम इंडिया में रहना है, ऑल दैट। बस तो दिसंबर तक चलेगा तुम्हारा। दिसंबर से 3 महीना और रख लो तुम्हारे डिप्रेशन का और सैड सॉन्ग का, तो मार्च से तुम ठीक हो जाओगे। अच्छा सर, ठीक है सर। तो इसके लिए जरूरी है कि तुम्हारी कोई अच्छी स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन और हॉबी है। ये आने वाले विंटर स्टॉर्म के लिए तुम तैयार रहो, अच्छी स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन हॉबी, क्योंकि ट्रेडिंग भी डिप्रेसिंग गेम है, गर्लफ्रेंड जा रही है वो भी डिप्रेसिंग गेम है। मेरे को सर इतना मेरे को रिलेशनशिप से फर्क नहीं पड़ता अब, जितना ट्रेडिंग से पढ़ने लगा है भैया। ये जो बाल सफेद हुए ना हमारे, ऐसे थोड़ी नहीं 250 लोग सुन रहे हैं, कुछ वैल्यू मिल रही, तो ऐसे तो कुछ तो हम जीवन का सार तुम्हें बता रहे हैं जो होने वाला है तुम्हारे जीवन में। तो ये फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। कितने साल का रिलेशनशिप था? रिलेशनशिप सर फर्स्ट ईयर के एंड में मिले थे, फिर 2 साल तो लॉकडाउन में घर से ही थे, वर्क फ्रॉम रिलेशनशिप ऐसे घर से ही चल रही थी। तो बहुत फर्क पड़ेगा यार, फट जाएगी। तो मैं तुम्हें फॉलो कर लेता हूँ, तो मुझे पिंग करना, मैं इस मर्ज की भी दवा रखता हूँ। तो तुम, हाँ, बट सर ये झूठ अपने आप को मत बोलो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, और रोक तो उसको सकते नहीं हो, तुम तो जा ही नहीं सकते हो, क्योंकि अंकल सैम तो वो फादरलैंड में तुम्हारा वीजा लेके बैठे नहीं है, राइट। तुम जा नहीं सकते हो, वो रुक नहीं सकती, तो ये टूटना ही है। मैंने टाइमलाइन भी तुम्हें बता दिया। हाँ सर, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मतलब जा तो सकती हूँ, ऐसे मैं सॉफ्टवेयर फील्ड में ही हूँ, तो जॉब तो कर ही सकता हूँ वहां जाके। यार जा सकता होता ना तो मैं ही चला जाता 10 साल पहले, इतना इजी नहीं है दोस्त। तो वो अपने पापा के पैसे से जा रही होगी ना? नहीं सर, लोन लिया है। एक ही बात है यार, लोन में तो पापा गारंटर हुए होंगे, तो तुम नहीं जा सकते, वो जा रही है, 6 महीने की बात है। और गलती से भी सैड सॉन्ग वगैरह मत सुनना है, वो फिट हो कि नहीं तुम अभी लाइफ में? अरे बहुत फिट हूँ सर, आप मिल लो एक बार। तो हाँ, तो बस फिटनेस पे कायम रखना, और सोशल सर्किल अपना सॉलिड रखना। 2-4 यार दोस्त बहुत जरूरी होते हैं ऐसे टाइम पे, कमीने यही टाइम काम आते हैं, राइट। और बस सर ट्रेडिंग की कोई एडवाइस दे दीजिए, मतलब ये सब तो चलता रहेगा ट्रेडिंग का। चले बताओ, ट्रेडिंग में क्या तुमने पूछा, क्या था मैं भूल ही गया। सर मैं ट्रेडिंग का सर वही है ये था कि अभी मैं जॉब के मतलब मैं सुबह 9 से 12 में ट्रेड कर पाता हूँ, 12 के बाद जॉब का वो रहता है, तो यही कि मैं डायरेक्शनल ट्रेडिंग करता रहूं या फिर सर स्टॉक्स पे शिफ्ट हो जाऊं, मुझे मतलब वही कंफ्यूजन सर। तो मैंने ब्रेकआउट स्ट्रेटजी तो शेयर करी है 9-16 वाली, वो भी कर सकते हो जो सुबह सुबह करनी होती है। बाकी अगर तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा है तो शाम को क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग करो, बहुत से तरीके हैं यार, टाइम डिपेंडेंट थोड़ी ना ट्रेडिंग। अच्छा सर। और ये इच्छा मत दिमाग में पालो कि कोई तुम्हें स्पेसेस में कोई तरीका बता देगा जिससे तुम प्रॉफिटेबल हो जाओगे। यही इसी जो कमजोरी का और इसी लालच का फायदा उठाते लोग जो तुमसे पैसा कमाते हैं। मैं भी उसमें शामिल हूँ, लेकिन तुम चूंकि मेरे दोस्त हो इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। तो ये लालच को दिमाग से निकाल दोगे, कोई शॉर्टकट मिल जाएगा। ओके, ये शॉर्टकट तुम्हें मार्केट में चार्ट देख के मिलेगा, जैसे मैंने बताया ना कि ब्रेकआउट है, फेल्ड ब्रेकआउट है, सुबह सुबह डिसाइड हो जाता है। तो उस सब में कुछ ढूंढने की कोशिश करो, बट खुद ही से मिलेगा, कोई बता नहीं पाएगा। अच्छा,
चलिए ठीक है सर, थैंक यू। और अभी जब तक वो नहीं गई है तो टाइम को एंजॉय करो यार। सर इतना Don't take सीरियसली anybody for नहीं granted. लेता, मतलब पता मेरी नहीं इतना एडवाइस को सीरियस। सीरियसली लो, लाइफ को सीरियसली मत लो। हाँ सर, नहीं लेता मैं रिलेशनशिप को भी सीरियसली, इसलिए तो यहाँ बोल दिया, बट हाँ बट यही गलती करते हो ना भाई, मैं तो बता रहा हूँ ना, इतना दुख होता है ना बाद में। खैर चलो ठीक है सर, आपने बोल ही दिया, ओके आपको ही करूंगा मैसेज। ठीक है बस ठीक है। चलिए फिर, अभी बहुत से स्पीकर रिक्वेस्ट फिर से आ गए यार, अभी मैं थक गया हूँ बोलते बोलते, मैं कुछ खाऊंगा अब। आनंद एक मिनट यार, हाँ बोलो। Yeah. So this is Shaurya. So Anand, I basically wanted to kind of get an idea from you. If I'm not very financially literate. Okay, so in March 2020, when the dip happened, prior to that, of course, I had invested some money, which went down, but I didn't panic. I just kind of continued and stayed invested. And then March 2020 के time पे मैंने थोड़ा थोड़ा करके invest किया है. So the fund that I've kind of invested is in positive, but obviously it's fallen down from what it was during its peak, right? So it almost went up by 50%, but then now it's coming down to about 30% or whatever it is. So, but I haven't done anything actively. I've just chosen to invest in stocks, that felt meaningful, not by looking at charts, but fundamentally sound, in the companies that we believe in. And I've kind of done this. What I wanted to understand from you is, one, there are a lot of these PMCs which come into the market who do active management and kind of give assurances that they would be able to kind of beat the market, of course, on a longer horizon. Is that advisable for someone who's actually not necessarily that good at the market? That's the first question that I have. The second one is, I seriously wanted to look at trading as an option to kind of learn, and possibly as a retirement as well. So I'm close to 45, and I just don't intend to work in the corporate ladder for too long. So I wanted to kind of get into trading. So what would you advise for me to kind of get to learn these tricks over a period of time, so that I can actually build something sustainable over a period, as a monthly, yearly? Yeah. So second question I got, I'll answer. What was the first question? I missed it. The first question was on the PMC, portfolio management, thing. So I know 50 lakhs is the bracket. PMS. अभी तक जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, लास्ट यू आर ऑलरेडी 45, तो जो लास्ट 10-15 साल का इन्वेस्टमेंट किया है, ऑनेस्टली बताना, हैज इट बीटन द इंडेक्स? It has. By what but margin? Again, but so I'm saying, by and large, the maximum investment that I did was during the dip, which is March 2020. So I got lucky, I would say, to that extent. So I'm no, you're not lucky. That is a time even I panicked. I did not make any fresh investment, though I had money. So you are not lucky. You're courageous. It's a rare trade, which is very good actually. Yeah. So I did. And such opportunities will come again, and everybody will be afraid. So it's a rare trade. I should commend you. Thank you. Continue with your investments. Mm-hmm. I have shared my list of stocks from time to time. I believe in a investment methodology of coffee can, where you buy 15 to 20 good market leader stocks and you hold them, you keep averaging them, and they outperform the index. You can read more about it. You can also do momentum investing, or you can do value investing. These are not difficult choices to make, but whatever choice you make once, you stick to it. Don't fiddle. Okay. Sure. So there are 3-4 ways of investing. Then you stick to it. That's one. Trading cannot be done in a lunch break. So if you're committed to trading, don't spend any money on any seminar or webinar. Try to learn from your YouTube videos. Your YouTube with pen and paper should be more than 2 to 3 hours every day. All tasty trade videos, all my videos, all such traders videos. A lot of people have shared their entire trade log with whatever they did during the day. Praful is there, Shreyas Bandhi is there. Try to learn from free material, whatever. Before you put your first trade, 3 to 4 months, you should be well versed with all the terminologies which are being thrown around, discussed. It's a huge field, but interest है तो आ जाता है. No, I definitely want to. Yeah. Sure, go ahead. After 3 to 4 months of doing that, either you will feel extremely tired and worn out, or you will feel extremely excited. Then you put your first trade and start putting very small money, and from there, market will teach you. When your money is on the line, market is the biggest teacher.
Either you earn or you learn from the market. Yeah. No, I've learned the hard way. I mean, I think the first stock that I bought was Yes Bank. And, I invested almost about 3-4 lakhs, which was down immediately, the way it actually tanked, right? So, but I didn't panic. I mean, I said it's fine. So I invested despite that loss that I had. And obviously, I think stocks like Reliance, HDFC, etc., more than made up for all the losses that I took on Yes Bank, and then kind of turned it positive in terms of the overall portfolio. So I'm kind of okay to kind of be there for a longer period of time and not necessarily panic on this. So I think that's possibly one strength that I have. I won't kind of go on a knee-jerk reaction to kind of shed it off immediately. But the other question that I have is, when do we actually see the one is invest and keep it for a longer period of time, but there has to be a point of time that a lot of people actually exit while it's doing a reasonable amount of profit and then come out, while some stocks take a beating. So how do we actually know when to exit some of these stocks and then reinvest back into those stocks? Is there See, a way? when it comes to investments, as I said, I follow coffee can investing style, which says that you never sell. If it is a good stock like Bajaj Finance or HDFC or Asian Paints, you never sell. Right. That's the philosophy I follow. Having said that, you might follow some other philosophy, which is value investing. So you buy underpriced assets and you buy when it value is discovered or when it becomes overpriced PE wise, or you can follow simple momentum. I don't follow those two strategies. So you can decide rules, pretty simple rules given on YouTube. Difficult to stick around, but simple rules. Once you follow those rules, you will have exit strategy. Okay. For example, momentum, when momentum is broken, there are a lot of momentum indicators you can plot on weekly time frame or monthly time frame. When momentum is broken, you can replace that stock with some fresh entry. Got it. Okay. So you're fundamentally saying that try and learn these, Yes. It's your money on the line, so you have to learn a lot. I don't know how much your job will permit, but 4 to 5 hours of learning every day. Yeah, so mornings is something that I would have on my hand, because it's only in the evenings that I actually have. We are not talking about watching the market. You have to learn from your YouTube videos, whatever you want to do. Right. Nuances and everything. Yeah. And what would you say on option trading? Is that something that I should dwell into, or at this stage? Yes, you can dwell into, but it's a full-time job. You cannot do with your job. You can learn part-time. Once you have learned enough and more and you're confident, start with a small amount. Yeah. Okay. Don't do the mistake which everybody does, that first they invest or trade, lose money, and then they start learning. Don't do that. Fair enough. No, I take your advice. Like whoever is in the audience, if they want to do option selling, what is a spread, what is iron condor, what is a seagull, what is all these terms you should know by heart. Then only you should place your first trade. Okay. And what's your advice on property? I mean, I was seeing you giving advice. Very bullish on property. Very bullish on property. Okay, so you're saying apartment, because I mean I see it stagnant. I'm basically from Bangalore. Where? Which city? Bangalore is not stagnant anymore. Started inching up last 2 years. Yeah, but I'm saying if you look at the rental from 2012 to 2020-21, it was stagnant. But the way it has grown in last 12 months, I think in future it will grow very fast. See the kind of jobs and salaries which are being generated in Bangalore. Very bullish. Yeah, that's true. But I'm saying there's so much surplus of inventory everywhere. It gets absorbed very quickly because it's a question of sentiment. People, when they start buying it, husband and wife both working, Google getting a salary of 1 crore, they buy 2 apartments. My sister has 3 apartments. She bought in last bull run, which was from 2005 to 2012. Okay, fair enough. Yeah. So property, it gets governed also from demand and supply, but also about where the sentiment is heading. For example, NCR, because of all the litigation related to Amrapali, Unitech, Supertech, people have faith. The entire generation has lost faith in property as an investment. People have not got possession for 10 years, 12 years. So that sentiment is negative. So NCR will find it very difficult to see a turnaround in terms of prices. But Bangalore, Hyderabad, already it's going up. Bombay, already going up. Smaller cities, already going up. Sure. Thanks, Anant. This is useful. Okay. Shall we end it now? I'm very sorry to people who raised their hand later on. And a special thank you to Gurleen, who has been my co-host for like more than 100 sessions now. And I allow very little time to Gurleen, and thanks to Vikas as well. And I'm really, really sorry. If you want to add anything,
Vikas, if you're awake, Gurleen, if you're still there, please give your concluding remarks. My sincere thanks from the bottom of the heart. Thanks to Ravi as well today, who decided to stay till the end. I think we'll conclude it now. Thank you so much, guys, for attending. Yeah, Gurleen, you wanted to say something. Go ahead. Yeah, no, I was just, adding to the point that I was saying earlier that, money is a powerful thing. And if I just have to, maybe conclude it in the line. So there's a saying in Hindi that, किसी के भी कच्चे देख के अपने पक्के नहीं तोड़ने चाहिए. So I guess that, that should be the personal finance rule that one should live by. And that would be my closing remark for this वाह, space. फिर से बताइए जरा, फिर से किसी के कच्चे देखकर अपने Oh, पक्के I नहीं heard something तोड़ने. else only. Oh shit. Okay. Yeah, so Yeah. yeah. Gurleen, you have such a sweet voice. Do you sing as well? No, I don't sing, but I am into, kind of playing the synthesizer and all instruments. Uh-huh. Nice. Oh. What about you, Vikas? You sing? Okay. I have to leave now, guys. Thank you so much for attending. See you in other spaces. If you want me to conduct such marathon spaces, which I did today from 11 to 4, 5 hours continuously speaking without having my lunch, you got to retweet. There are no free lunches in life and in finance. If you think this was free, sadly mistaken. If you enjoyed it, you have to take a screenshot, you have to retweet it, you have to give me the reach. Otherwise, I am better off without doing it, right? So make me happy, guys. Spread the word. Thank you so much. Bye-bye.